माननीय सभापति जी, Honorable members, as agreed to by the House yesterday, there will be no 0 hour, no question hour, and further discussion on the motion of thanks on President address will start immediately after laying of the papers and other business of formal nature, and will continue without lunch break. The answers to questions listed for today are, however, deemed to have been laid on the table of the House. Papers to be laid on the table. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy of the Maritime Anti-Piracy Bill 2022 passed by the Houses of Parliament and assented to by the President since a report was last made to the House on 31st of January 2023. Dr. Munspra Mahendra Bhai. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House on behalf of Srimati Smriti Jubin Irani papers listed against her name at serial number 1 of today's revised list of business. Thank you, sir. General Retired P.K. Singh. Sir, with your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 2 of the revised list of business. Shri Ramdas Athawale. Chairman, sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 3 in today's revised list of business. Thank you. Sadhvi Niranjan Jyoti. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित प्रपत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। श्री नित्यानंद राय। आपकी अनुमति क्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री पंकज चौधरी। माननीय सभापति जी, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री राजीव चंद्रशेखर। With your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 7 of the revised list of business in the Rajya Sabha for today. Shri P. Muralidharan. Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers listed against my name at serial number 8 in today's revised list of business. Dr. Subhas Sarkar. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against the name of my colleague Minister Srimati Annapurna Devi at serial number 9 in today's list of business. Shri A. Narayan Swamy. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I lay the papers of the table, the House mentioned at the serial number 10 of the today's revised list of business against the my name of my colleagues Sri Pratima Bhumika, Honorable Minister of Social Justice and Social Justice and Empowerment, sir. Dr. Subhas Sarkar. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 11 in today's revised list of business. Statements of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, श्रीमती गीता उर्फ चंद्र प्रभा। महोदय, आज मैं कार्यसूची में अपने नाम के सामने यथावत अन्य पिछड़ा वर्गों की कल्याण समिति की गई प्रतिवेदनों की अंतर्दृष्टि सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले 2 विवरणों को अंग्रेजी और हिंदी संस्करण एक सभा पटल पर रखती हूँ। Honorable members, I have received
4 notices under Rule 267 from Sri Sanjay Raut, Dr. K. Keshav Rao, Sri Sanjay Singh, and Srimati Priyanka Chaturvedi. They have sought suspension of the listed business for today. Honorable members, I reiterated my stand. I have carefully gone through them. I do not find the notices in order. I am constant not to allow them. Yesterday you made a request to us. Sir, yesterday you made a request. JPC की amendment. You had made a reference to two parties, which you have no right. It is our party. We know what to do. Also know about the courtesy. And I belong to Santali families. I know what it is. We don't call us tribal all the time. One second. There is nothing like tribal president in this country. She is an Indian citizen. She is a great leader. She is happen to come. This Brahmin order should not be there. Why every time you say a tribal? Dr. Keshav, take your seat. Take your seat. Dr. Keshav, it is most unfortunate the kind of aggressive body language you are reflecting. You have perhaps not had the occasion to go through what I reflected yesterday with full sense of sublimity, sobriety, and seriousness. Once again, please take your seat. Take your seat. You are a senior member. Take your seat first. Please take your seat first. This is not the way we conduct this house. Kindly, one second. Please take your seat. And what I said is on record. You can take recourse to rules. This is not the way to do it. I have conveyed my sentiment, and those are the sentiments of millions of people. For the first time in this country, first time, a history of the wrong type has been created by engaging in proclaimed boycott of the president. I leave it at that. No, absolutely. Nothing to explain. No. No, I have declined. Sanjay Singh, I have declined, please. Motion of thanks on President's address. Shri Surendra, nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Shri Surendra Singh Nagar. धन्यवाद सभापति जी। Shri Surendra Singh Nagar. माननीय सभापति जी, कल कुछ विषय मैंने अपना अनुभव 2009 से 2014 की यूपीए की सरकार थी, उसमें जो भ्रष्टाचार और जो I would urge the members, as I have said repeatedly, we are sending a very, very dangerous signal to the people. Their anger, anguish is now beyond tolerance. Every time in the morning they see the spectacle of the house being plunged in disorder as a part of strategy. This leave it, please. Surendra Singh Nagar. Shri Surendra Singh Nagar, who had not concluded his address yesterday, will continue. मैं आपसे एक अनुमति चाहूंगा। कल मैंने 2009 से 2014 के बीच के अपने लोकसभा के अनुभव कुछ सदन में रखे थे। उसमें से अगर आपकी अनुमति हो तो एक दो विषय रह गए, उससे मैं शुरुआत कर सकता हूं। अगर आप अपने समय अवधि में नियमों के अनुसार विषय की गंभीरता को देखते हुए मैंने जो जिक्र किया था, जो उस समय पूरे 9 से 14 यूपीए की सरकार के जो घोटाले थे, कोयला घोटाला, सीडब्ल्यूजी घोटाला, टेलीकॉम घोटाला और एक
एक घोटाला जो में रह गया था वो था GMR का, जो देश का एयरपोर्ट है, नई दिल्ली का एयरपोर्ट। Honorable member, while you will be heard with rapt attention, we will hear everyone in the house with decorum and rapt attention. But bear in mind, if you make any assertion which is in the nature of free fall of facts, you shall be called upon to authenticate the documentation and substantiate the same by laying the same on the table of the house Thank you. on the same day. Bear that in mind. जी सर, आप कार्रवाई बिल्कुल सही है। तो वो अब आप बैठिए। तो सर हो गई है। GMR का घोटाला भी उस समय रह गया था, उसका जिक्र करना मैं भूल गया था। आज देश में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इस देश में घोटाला भ्रष्टाचार की चर्चा वो कर रहे हैं जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा घोटाले हुए CAG की रिपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं। और उसके साथ अरे करेंगे कर देंगे हाँ कर देंगे। अरे बैठिए। और चेयरमैन साहब, दुर्भाग्य यह है कि भ्रष्टाचार पे आज वो चर्चा वो लोग कर रहे हैं जो खुद, जिनका पूरा परिवार जमानत पर है। जमानत अब जेल चले जाएंगे, पता नहीं नेशनल हेराल्ड केस जेल में चले जाएंगे। उस पे कौन जमानत पर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो लोग इस बात की चर्चा भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिनकी सरकार में सबसे ज्यादा घोटाले हुए। आप तो रोज समझौते करते हैं। आज रोज आपकी नीतियां बदलती हैं। आप रोज नए समझौते करते हैं। आज आपने उसके साथ समझौता किया जो आज इस देश में संविधान, जिसने 370 और 35A का विरोध किया, जो पार्टी कश्मीर की है, उसके साथ भी, जिसको देश तोड़ने की और जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उसके साथ आपने भारत जोड़ो युद्ध, देश तोड़ने वालों के साथ आपने भारत आपके साथ रहे। आप हमें समझाइए, देश को तोड़ने वालों के साथ आपने भारत यात्रा की, कश्मीर में उन लोगों के साथ यात्रा करने का काम किया। Honorable members, please. सर मैं बैठ जाता हूँ। Honorable members, one second. I can take it. बैठिए। One second. Honorable members, sir, have my assurance. Chairman, I am taking note of everything. If there will be expediency and requirement of a document to be authenticated, and I find that such a document is already authoritatively in public domain, I may skip that, rest I'll call upon. Go ahead. Sir, and be cautious about it. Sir. And I may indicate to you, honorable member, I have given such a direction to some other members. There has been non-compliance of that. I am taking steps because such a transgression has to lead to exemplary consequences. So be aware of it. Go ahead. धन्यवाद सभापति जी। इस देश में मैं अपने को सीमित करना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देश की जो पॉलिसी पैरालिसिस था, उस पे मैं इस सदन का ध्यान, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया। अगर मैं बात करूं, इस देश में 2000 यूपीए की जब सरकार थी, उस समय इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे प्रोजेक्ट्स थे, उनकी हालत क्या थी?
अभी बताएंगे तो थोड़ा सब्र कीजिए। क्या चोरी की आप? थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र। अगर आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, टेक योर सीट। तो मैं क्या कर सकता हूँ? टेक योर सीट। मिस्टर नागर, वन सेकंड। क्यों नाराज हो? रंजिता जी, ऑनरेबल मेंबर, आज बताइए। आपके पास कभी नहीं बैठे थे आप चोरों वन सेकेंड, चोरों के साथ कभी नहीं बैठे। आप जान वन सेकेंड, मिस्टर मुरलीधर, व्हाट इज हैपनिंग टू योर बेंचेस? इनके साथ बातें कैसे कीजिए? Sit down. सर, अपने बारे में सोचिए। Would you sit down? Honorable members, अपने बारे में सोचिएगा। अपने दिमाग पर सोचिए। honorable members, honorable member, Mr. Nagar, take your seat. Mr. Nagar, I do not approve of this conduct. One second, please. Mr. Nagar, I am not yielding anymore. no, I don't approve this conduct. Some member speaks, there's transgression. You start communicating. It is so elementary. Please take your seat. Take your seat. Why are you contributing chaos in the house? सर Please, I have not called upon you to speak. Honorable members, please, honorable minister. So the treasury benches, if they behave like this, sit down. Honorable members, it is with pain that both sides in the house are working in a manner that is not desirable. The members are not required to speak to each other directly. We are violating something which is textbook preposition, meant even for newcomers. Mr. Nagar started reacting. There is someone sitting in this chair. The one sitting in this chair has authority, and that authority is by way of constitutional obligation. It is my bounden duty to ensure order in the house. If there is disorder in the house created by anyone, I have to ensure consequences flow. You have contributed to disorder. Even two of the senior members from this house started speaking. Are we in chorus? I would urge everyone to listen to every speaker in silence, with rapt attention. If you have an objection, take recourse to rules. Yes. There may be an objection. There may be other point of view. Raise it in accordance with rules. Don't jump on your seat immediately. And what I find is, senior members need to guide others. Fact is, they are taking lead in this. I am sure the House will bear this in mind. Mr. Nagar. सभापति जी, मैं इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से आता हूं, और उत्तर प्रदेश के भी उस हिस्से से आता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को हमारे विपक्षी दलों ने बीजेपी का घोषणा पत्र का, मैं कुछ चीजें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपको भी उसकी जानकारी है, फर्क घोषणा और संकल्प पत्र में क्या है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि मोदी सरकार संकल्प लेती है और उसे पूरा करती है, और जो यूपीए सरकार थी वो घोषणा करती थी, उसे पूरा नहीं करती। इसका मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं, और इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, मैं वेस्ट यूपी से आता हूं, नोएडा से हूं मैं, मेरठ उससे जुड़ा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कब सैंक्शन हुआ? 96 किलोमीटर का था। इसकी घोषणा यूपीए की 2006 और ये कंप्लीट किसने किया? 2018 में नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। और इसका लाभ किसी विशेष, ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष लोगों का लाभ हुआ हो। जिस एनसीआर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए,
उसी से जुड़ा हुआ ये प्रोजेक्ट था। और आज जिस मेरठ को जाने में 2.5 घंटे का समय लगता था, आज 45 मिनट से दिल्ली में आप मेरठ पहुंच जाते हैं। ये काम किया है, ये हालत की, ये सुधार हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा, दिल्ली में हमेशा पॉल्यूशन की चर्चा होती है। एक समय आता है पॉल्यूशन की चर्चा होती है, उससे सब लोग प्रभावित हैं। उसके लिए कई बार योजनाएं बनी कि किस तरीके से जो हमारा व्हीकल्स हैं उनके पॉल्यूशन को किस तरीके से कम किया जा सके। उसके लिए योजना बनाई कि जो ट्रक्स हैं, जो हैवी ट्रैफिक है, हैवी व्हीकल्स हैं, उनको दिल्ली में उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। और उनके लिए एक ऐसा रोड बनना चाहिए कि जो दिल्ली में एंटर भी ना हो और दिल्ली के बाहर से निकल जाएं, जिससे दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण से मुक्ति मिल सके। उनके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वहां से भी वो होकर गुजरता है। सभापति जी, क्या है स्थिति है इसकी? ये सैंक्शन कब हुआ? 2006 2006 में यूपीए की सरकार में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ। और इससे बड़ी बात आप देखिए, मैं वो भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है हुआ है, मैं वो उसकी चर्चा कर रहा हूं। 2006 में इसकी जो बिडिंग है वो एक बार नहीं, कई बार कैंसिल की गई, कई बार कैंसिल की गई। पता नहीं इसके पीछे इच्छा क्या थी। या तो दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्ति नहीं देना चाहते थे, इच्छा नहीं थी। लेकिन ये काम अगर किसी ने पूरा किया 2018 में, मोदी सरकार ने 2018 में ईस्टर्न पेरिफेरल बना के इस दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया। अभी मैं नॉर्थ में रह गया अभी तो। अब मैं चला, अगर साउथ की बात करूं, हमारे कर्नाटक के साथी भी हैं। शिवाजी आज नहीं है हमारे यहाँ। ऑनरेबल मेंबर, नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इज थ्रू मी। ओके, लुक एट मी सर, एग्री। और मेरा चेहरा भी ठीक ठाक है। नहीं सर, बहुत इंप्रेसिव है सर, उससे प्रेरणा मिलती है हमें। फिर भी हमारे सर, बेंगलुरु, वो चेन्नई एक्सप्रेसवे, ये साउथ में है। ये सैंक्शन कब हुआ? 2011। काम कब शुरू हुआ? यूपीए सरकार ने 2011 में एक सैंक्शन किया है। और इसको पूरा 2024 करने कौन जा रही है? एनडीए की नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और इसका लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ किसी विशेष आदमी को नहीं मिलेगा। जो दूरी है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की, वो 3 घंटे से दूरी घटेगी। ये काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार। रोड से कांग्रेस वाले भी जाएंगे, कांग्रेस वाले भी उसी रोड से जाएंगे। मेरे पास और अटल टनल की हम बात करें। अटल टनल के प्रोजेक्ट किसने बनाया? आप लोगों ने सपना देखा, घोषणा की, लेकिन पूरा किसने किया सर? पूरा किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ये फर्क है दोनों में, घोषणा और संकल्प में, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। अगर आप चले जाएं भूपेन हजारिका सेतु, अगर आसाम पहुंच जाएं आप, किसने सैंक्शन किया? यूपीए ने सैंक्शन किया 2003 सर, 2003। और कंप्लीट किसने किया? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2017 में से पूरा करने का काम किया। ये कुछ नहीं हुआ, ये भी बताओ। अब आप आ जाइए डिब्रूगढ़। एक और ब्रिज है हमारा, डिब्रूगढ़ से धेमाजी ब्रिज है हमारा। हाँ, ये अच्छे से बता सकते हैं। कुछ नाम लेने में थोड़ा मुझे प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, लेकिन सर स्थिति क्या थी?
ये प्रोजेक्ट सैंक्शन कब हुआ? ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ 1997 और इसको पूरा किसने करा? इसको पूरा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में पूरा कर दिया। इससे फायदा क्या होगा? अभी हमारे मित्र बैठे हैं मनोज झा जी, बिहार को लेके दिल बड़ा होना चाहिए, सोच छोटी छोटी, सोच थोड़ा दिल बड़ा करो, सोच बड़ी करो, देश के लिए सोचो। रोड बड़ा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा कोसी रेल ब्रिज महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था बिहार का, कब इनिशिएट हुआ? 2003। महत्वपूर्ण, मिथिला शायद वो जोड़ता है, वो मिथिला से दोनों को जोड़ने की दूरी कम करता है, बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज है ये बिहार का। ये कंप्लीट हुआ कब? किसने किया ये कंप्लीट? नरेंद्र मोदी जी ने। ये नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस ब्रिज को पूरा करने का काम किया, बिहार को सौंपा देने का काम। ऐसे अगर मैं रेल प्रोजेक्ट्स बहुत से ऐसे हैं देश में जिनका मैं अगर जिक्र करूंगा, कश्मीर की बात आई, अभी तो भारत जोड़ के आए तोड़ने वालों के साथ, लेकिन कश्मीर जहां झंडा तिरंगा फहराया गया 370 और 35 से हटने के बाद, लेकिन उसके डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या सोच है उसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उसके डेवलपमेंट के लिए आपकी सोच है कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट। कब सैंक्शन हुआ? 1995। और ये पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने इस कंप्लीट पूरे किया। ये सोच है हमारी कश्मीर के लिए, ये सोच है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए। जो विकास का पैसा कुछ लोगों की जेब में जाता था, उससे आम आदमी के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का काम, सबसे बड़ी लाइफलाइन देने का काम इस रेल प्रोजेक्ट को बनाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। इसके अलावा फिर कर्नाटका में चले जाइए आप, बीदर कलाबुरी रेल लाइन है, 110 किलोमीटर की लाइन है। ये सैंक्शन कब हुई? ये हुई 2000। अटका रहा प्रोजेक्ट क्योंकि घोषणा थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार संकल्प लेती है और उस संकल्प को पूरा किया और 2017 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। ये फर्क है हमारी। सभापति जी, आज नॉर्थ ईस्ट की बहुत बात होती है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा इग्नोर किया गया इस देश में। सिक्किम एयरपोर्ट जिसकी बात मैं करना चाहता हूं, जिक्र करना चाहता हूं, सिक्किम एयरपोर्ट सैंक्शन कब हुआ? 2008। और सिक्किम एयरपोर्ट को पूरा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2018 में। ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारी सोच। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हमने किया है। अगला उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अगर एयरपोर्ट की आप बात करना चाहते हैं। सभापति जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। कंक्लूड। एक दो विषय रख के मैं अपनी बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश। 1 मिनट कंक्लूड। अगर आप 1 मिनट कहेंगे तो फिर मैं आखिर में आ जाता हूं। एक विषय रखना चाहता हूं। सभापति जी, कुछ योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं, बाकी चीजें नहीं करना। शहरी आवास योजना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के गुलावटी में पैदा हुआ, वहीं मेरा घर है। मैं एक दिन 2019 का लोकसभा का चुनाव था, एक कुछ लोग मुझसे मिलने आए, मेरे पड़ोस के थे।
अल्पसंख्यक समुदाय से वो लोग थे और कह रहे थे कि एक व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर कह रहा है, वो अल्पसंख्यक समाज से था, कि मुझे मोदी जी को वोट दें। मेरी भी उत्सुकता बढ़ी। मैंने पूछा कि भाई ऐसी क्या वजह है। मैंने उस व्यक्ति को बुलाया और उसके आसपास के जो लोग थे उस पर दबाव बना रहे थे कि तुझे मोदी जी को वोट नहीं देना। ये प्रेशर उसके ऊपर बना हुआ है। कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस वाले। मैंने सभापति जी, मैं उससे मिला और मैंने पूछा, तुम ईमानदारी से बता भाई, मुझे मेरा पड़ोसी भी था वो, कि मैंने ईमानदारी से बता भाई क्यों वोट देना चाहता। मैंने तो ऐसी भाषा में साधारण शब्दों में उससे पूछा। बोला, सांसद जी वोट तो इसलिए दूंगा, मैं तो जीवन में कभी नहीं सोचा था मेरा घर भी बन सके, मेरा तो घर मोदी जी ने बनवाया इसलिए वोट दूंगा। अगर मैं आखिर की बात करूं, एक चीज फार्मर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने क्रिएट किया, एफपीओ की अगर बात करूं, मैं जिस जनपद से आता हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक जनपद में एक एफपीओ चलता है, 772 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। और आज उस जो एफपीओ है हमारा, वो उदाहरण है पूरे देश में। आज वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पैदा कर रहे हैं और इसके एक मिनट का समय और लेकर अपनी बात समाप्त करूंगा। और वो आज स्विट्जरलैंड, जापान, अन्य देशों को फ्रूट वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अंत में मैं सभापति जी, देश के उन लाखों करोड़ों जो लोग हैं जिनके लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हुए, उनकी कुछ बात मैं एक शेर के माध्यम से कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। सुनाओ। वो कह रहे हैं, दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता। ये हम सब मानते हैं कि दुनिया में जान से कोई प्यारा नहीं होता, लेकिन वो बाद में इसके बाद क्या कह रहे हैं, कुछ लोग मगर जान से भी प्यारे मिले हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए वो कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Leader of the Opposition, Shri Mallikarjun Kharge. सभापति महोदय, मुझे कल बात करना था, लेकिन मेरी तबीयत आज भी उतनी ही खराब है, लेकिन मेरा कर्तव्य भी मुझे निभाना है। तो ये मैं राष्ट्रपति जी का जो भाषण देखा और ये मेरा दुर्भाग्य है, उस दिन मैं काइंड सेशन में हाजिर नहीं हो सका, क्योंकि कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से बहुत से वहाँ के फ्लाइट्स कैंसिल हुए। और अक्सर मेरी आदत होती है कि जब पार्लियामेंट चलती है मैं हमेशा यहाँ पर हाजिर होने की कोशिश करता हूँ। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि एक महिला राष्ट्रपति जो इस देश के लिए संदेश दी, और उन्होंने कुछ चीजें, अक्सर ऐसा होता है कि सरकार जो कहती है वही राष्ट्रपति, गवर्नर वही कहते हैं। तो मुझे तो थोड़ा उम्मीद इसलिए था कि राष्ट्रपति जी भी अपना कुछ प्रेशर बना के समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे और कुछ ठोस काम बताएंगे, ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन मैं निराश हो गया। सर, एक विजन
स्टेटमेंट ये नहीं है। ये हमेशा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें बहुत से चीजें बताए जाते कि हम आगे क्या करने वाले हैं और किस ढंग से इस देश को आगे लाएंगे, किन किन पॉलिसीज पे हमारी क्या है आगे कदम होंगे। लेकिन उसमें ज्यादातर यही था कि पिछले उन्होंने क्या किया और कितना उन्होंने अचीव किया, और कभी कभी ये भी उसमें आया कि पिछले की गवर्नमेंटों ने क्या की। ये मैं अपेक्षा नहीं करता था कि आप जो करते हैं वो बोलिए, कितने दिन वही बोलेंगे कि पिछले आपने क्या किया। और अभी भी मैं भाषण सुन रहा था साहब का, बहुत ही लिस्ट बना बना के कौन कितने काम किए, कौन से प्रोजेक्ट अटक गए थे, उसका पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। लेकिन मेरे पास पूरा है, समय नहीं है, और समय नहीं रहने की वजह से मैं वो सारी चीजें नहीं बताता। मेरे पास अध्यक्ष महोदय यहाँ अगर टेबल पे भी रखूंगा तो ये रिकॉर्ड में भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषण जो हम कहते हैं वही रहेगा। मैं 1947 के पहले इस देश की स्थिति क्या थी और 2014 तक स्थिति क्या है और 14 से लेकर आप तक क्या किया, ये सब मेरे इसमें है। ये अगर उतना टाइम अगर आप देते हैं, मैं कंपैरेटिवली बोल सकता हूँ। लिटरेसी रेट पहले क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था, इन्फेंट मोरालिटी क्या था, फीमेल लिटरेसी क्या था, SC ST क्या था, सब सारी चीजें बता सकता हूँ। लेकिन इतने काम करने के बावजूद भी आप में इतने क्या कहेंगे हम, इतने झलस से क्यों है? भाई अपने बात को आप रखिए, लेकिन दूसरे जो काम किए उसकी भी थोड़ा सा कहिए। अगर बुनियाद नहीं है तो हमारा बिल्डिंग कहाँ खड़ा होगा? जब बुनियाद नहीं है, आप बुनियाद में जो पत्थर जाते हैं वो किसी को नहीं दिखते, लेकिन ऊपर जो रहते हैं वही इनॉग्रेशन के नाम दिखते हैं। इसीलिए मैं ये 10 पेज का पूरा यहाँ पर रखूंगा, लेकिन बोलने के समय भी मुझे कम है। लेकिन आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे नहीं मान्यवर, हाँ। ये समय आपने निश्चित किया है, आपकी पार्टी का समय बचा हुआ है। निश्चित किया गया कि आप 30 मिनट बोलेंगे। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, जयराम रमेश ने इनको 10 मिनट और दे दिए, पर अब भी जितना समय है आप उसका उपयोग कीजिए। नहीं, मैं उतने समय का तो उपयोग करूंगा, लेकिन आपको डिस्क्रिशनरी पावर है ना सर। हमने तो दिया है आपको, इस हाउस को आगे बढ़ाने का भी टाइम आपको आपके पास है। सबका सभी को पूछ के घंटा 2 घंटे 4 घंटे चला सकते हैं, तो सब सुप्रीम पावर आपके पास है। मेरे पास तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने का है। कल मैंने कोशिश की थी कि हाउस को 8 बजे तक चलाएं जी, समर्थन नहीं मिला। बड़ी कोशिश की थी, क्योंकि द हाउस इज मेड फॉर डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो पाए। मेरा समय भी जा रहा है सर। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो हमेशा
इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हाल। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। हाँ? सर, ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो। ये नजदीकी संबंध है। उन लोग भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई। 8 अगस्त को आपने कहा था, और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा। मेरे प्रेडिसेसर ऑफिस में थे यहाँ, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहाँ सताए, मौसम ठीक है। आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेयर्ड। मैंने ये कहा था, उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे। कहा मेरे लिए था कि नहीं, आगे बहुत सताएगा। नहीं, सुनिए, आप उस वक्त नायडू साहब बैठे थे। मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है, ऐसा मैं बोलूं तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है। बात करने नहीं देते, और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए। फिर बाद में सरकार है, उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ, तो भी हम सलाह देते हैं। तब दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ, तो अपनी बात बहुत से जगह कही, और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है। ये एक 3600 किलोमीटर चलना और लोगों के विचार को सुनना, और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहाँ पर जो सदन में मैं देखता हूँ, सदन के बाहर भी मैं देखता हूँ कि अभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अरे सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते?
समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं, समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया। बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है नहीं। अरे धर्म एक है ना, ऑनरेबल, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी प्लीज, सर, I can inform Mr. Jairam Ramesh, LOP doesn't need your support. No leader of opposition knows how to handle his affairs. Every time you get up, whether it is Digvijay Singh or someone else, that is not appropriate. Every member in the house stands on his own leg. One second, please. One second. LOP brings on the table huge experience of decades. When sitting in the chair, I find the gestures of LOP are little beyond his normal discourse. It is my bounden duty to request him to maintain composure. Sir, we are not in aggressive mode. This house is meant for sober dialogue with sobriety, so that we understand each other's point of view. Honorable LOP will bear this in mind. This is my request. Please. सर, मैं दुख के साथ कहता हूँ, मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम कौन लगाते हैं उसी को महसूस होता है। जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं मालूम, तो उसी को मालूम होता है। तो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से वो भी नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और सर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मौनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट गई। It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. It doesn't suit your stature. मैं छोड़ो, It doesn't suit your stature. Frankly speaking, there are certain positions. On which we have to have great regard. It was in this house, on 8th December, I said, when leader of the house will speak, leader of the opposition will speak, and the two former prime ministers will speak, I will look to the rule book later. Why? These positions have august stand. I said so. Similarly, he cannot treat institutions with that kind of observation. You are a very senior member, sir. If anyone in the house, 1 second, if anyone in the house
was to use an expression for LOP, I would come to the rescue of LOP. It's an elevated constitutional position. At least I expected from you, Mallikarjunji, that you will raise the level of a debate and not use those juicy expressions. They are not good. They are not appropriate. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat, Mr. Venugopal. Take your seat. Take your seat. Mr. Venugopal, take your seat. Mr. One second. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. No, I am on the chair. No, please take your seat. Honorable members, take your seat. No, I will not allow debate to go to that level. No, please, sorry. Mr. I would urge the LOP to control his members. I would urge you. Mr. Digvijay Singh, you are such a senior member. When I am on my feet, it is elementary. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. All of you take your seat. Take your, Mr. Venugopal, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. Honorable members, when the LOP made reference to Ambedkar ji, you made reference to what was said in the Constituent Assembly. Am I right? Yes. Rightly. Yes. I remind you of the same observations, that it is bound and duty of every member of this house to enhance decorum. Sir, please. Please sit down. Sit down. Take your seat. No. The chair cannot allow. It is for the LOP to take a call to what level he wants to raise a debate. If LOP comes to that level, yes, Mr. Mallikarjun. Please take your seat. देखिए साहब, मुझे Please take your seat. देखिए आप इतना इमोशनल मत हो जाए साहब. सर मैं नहीं हो रहा वाले नहीं हैं. नहीं मल्लिकार्जुन जी, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, 1 second. For every wrong practice, 1 second, Mr. Jairam Ramesh, 1 second. Honorable members, time has come for us कि हर गलत परंपरा को जस्टिफाई करने के लिए रियल व्यू में देखते हैं. We will not, please bear that mind. Mr. Mallikarjun Kharge, leader of opposition. सर, अगर आप ऐसा इंटरप्ट करते गए, मेरा कहने का मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब फ्लो में हम बोलते हैं, कहीं गलती है आप एक्सपेंज करो, अगर कहीं ठीक नहीं है, जो शब्द इसमें यहाँ पर please. Don't break his flow. Direct, take your seat. एक साल मैं आपको और बताना चाहूंगा, वहां पर मैं 5 साल फ्लोर लीडर था. मैं बहुत सी बातें करता था, लेकिन उसको उत्तर भी प्राइम मिनिस्टर देते थे. यहाँ पर मैं 2 साल हो गए, यहाँ भी हूँ. नीचे 9 साल था वहां पर कर्नाटक में, और 5 साल डिप्टी लीडर था. वो एज गुड एज मैं ही कहलाता था उस वक्त, क्योंकि जो लीडर थे वो थोड़े से बीमार थे. तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब, इसीलिए कहा है. लेकिन आप बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे. आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे, मुझे बोलना भी सिखाएंगे. No. Take your seat. Honorable members,
all throughout, one second, all throughout, I have shown highest respect to the leader of the opposition. And this house is witness to a spectacle. When I invited the honorable leader of the house to my chamber, he said, I don't want to quote, leader of the opposition. Number two, yesterday was a sad day. Digvijay Singh ji was speaking. He used an expression for the president. I did not make an issue of it. I immediately cautioned him. He withdrew immediately. What he said was, what has the president done to get that office? It could have been very different. It is my duty here to ensure there is cordiality, congeniality, and real debate and discussion. If I have urged, one second, sir, if I have urged the honorable leader of the opposition that at his elevated level, the discourse has to be very different. I am sure nothing wrong with it, please. सर, आपने तो मुझे सलाह दी, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सलाह दोनों साइड होना चाहिए, मैं यही अपेक्षा। और सर, 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? Sir, no. The speech, the discourse, one second, the discourse cannot go to allegations which you can't substantiate. Not mentioned anywhere. No. Not mentioned anywhere. No, one second. I cannot allow this house to be a platform of free fall of information. Using these loose expressions, casting aspersions without any basis. Leader of the House. The Honorable Leader of the Opposition I'm calling upon Leader of the House. Is a very distinguished senior leader, as you rightly pointed out. Very distinguished. We also have the distinguished former finance minister who has run this government before our government came in for many years. Honorable Leader of the Opposition is making an allegation which A, neither can he substantiate, B, an association which has absolutely no basis whatsoever, C, he's talking of a purported wealth which does not have any merit, because that's a share market calculation on which the government has no role to play. It's for the regulators to see and for the share market participants to decide what value they get. So any aspersion being cast and trying to assess and suggest that a large wealth was being created is completely baseless, and I would urge him to learn from his former finance minister what is this valuation and how this is created, whether it results in wealth or it's a valuation that's a market force driven wealth. One second. I would urge you, under what rule? 38A. Yes. 238A says, no allegation of a defamatory or incriminating nature shall be made by a member. One second. Jairam, don't jump to your seat.
shall be made by a member against any other member or a member of the House unless the member making the allegation has given previous intimation to the chairman. No. You see, the honorable member. One second. Well, you see, I have insisted right from day one, we have to be extremely careful. We cannot. One second. I don't know, there's a problem. Every time any speaker of your party speaks, you want to help him out. Let them do it. Sit down. I would urge leader of the opposition. One second. I would urge leader of the opposition that the point raised is a valid point. This house cannot be a platform to level allegations. There are no allegations. What's wrong with you? What's wrong with you? Jairam Ramesh, I know. What is your statement? Mr. Mallikarjun Kharge, sir, what your team is doing? No. I call upon Mr. Mallikarjun Kharge to put documentation on record right now, which he has done with respect to allegations involving the name of the Prime Minister. You have used expressions which are not appropriate. Sit down. There is a difference between valuation and allegation. He's giving valuation. I know. Allegation. Sit down. Take your seat. So, Mr. Kharge, Honorable LOP, I call upon you that we must work. I know you have made some very strong observations regarding me also a while ago. I can assure you, you bring on the table huge experience. I also bring on the table modest experience. I am imploring you that what's the problem? What's the problem? No, the debate in the House, the debate in the House has to be firmed up on duly authenticated record. This House cannot be a platform for free fall of information. One can't trade anything one likes. We cannot have a spectacle which we had recently. No, I would urge you, sir, request you, in the name of your seniority, in the name of position you hold, I am saying so because you have, in last 3 minutes, used expressions which you know are stigmatic. No. Authentication. No. Every allegation will have to be authenticated, Mr. Mallikarjun Kharge. That's the direction of the chair. Have to be authenticated. Go ahead. No, sir. Point of order. The point of order, sir. Yes. Under which rule? Sir, he said 238(2)(1). 1 and 2, when Honorable Sushil Modi ji referred to that rule, sir, while speaking shall not make a personal charge against a member. He didn't speak anything like that. He was continuing his speech, sir. And how the point is valid? Mr. Siva, Valuation. Value is not against any member, sir. Sit down. Judicial decision is pending, but he didn't quote that. It was quoted only 2. 238(2) was quoted. 238(2) was quoted. He's a distinguished chartered accountant. The leader of the opposition is talking only of valuation. No. You are not listening carefully. No. He's not making any allegation.
about valuation. This is all about passing wealth. Yes. Yes. Honorable Finance Minister. Honorable Finance Minister. 1 second. Honorable Finance Sir, if Minister. I can make some sense of what is going on, it's very smart to say we are giving data, we will corroborate it, we will leave it on the table. We are not talking about a member, all this. But it is completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting to. Please put the whole thing. You should agree. Sir, one second. Sir, after listening to the Honorable Finance Minister, I thought everyone will agree. Every word she spoke, there is sublimity, and you are objecting. Sit down, sir. Sit down. दोस्ती नहीं है सर, दोस्ती नहीं है. Mr. Digvijay Singh ji, what Khadge ji said was beyond insinuation. Now, just believe. No. You have been Chief Minister for 10 years. We are making reflection about Prime Minister of the country. Yes, that has been what. Yes, Mr. Khadge said so. No. No, sir, yesterday you were very reasonable. When the highest constitutional office came in for suffering at your hand, you immediately relented. He should also relent. No. You see, sir, you have great experience at your back. Can you allow an institution to be so treated? President, Prime Minister, no. Please. What has he said against the Prime Minister? Please. I would like to know what has he said against the Prime Minister. Listen to him carefully, you'll know it. No, listen to him carefully, you know it. Yes. No, sir, it's not. देखिए सर, मैं ये कहा एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई, बढ़ी है, और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई. अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए? ये कहा है. और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल जाना नहीं चाहता और फिर ऐसा गड़बड़ी क्रिएट करके मेरा टाइम तो चले गया, लेकिन मैं और आगे इसको बढ़ाना नहीं चाहता. नहीं, आप तो नहीं बढ़ा रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ, कहीं से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर लेंगे. नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी. We have to rise to a level. मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है सर. My suggestion is, let us believe in ourselves. Let us believe in our strength. Exactly. Let us believe in our institutions. Exactly. हर किसी को अपनी institutions को analyze करने के लिए अधिकार दे दिया. Someone is speaking somewhere, will speak something about us, and we will get rocked by it. This can't be wrong. तो बेबुनियादी विदेशी रिपोर्टों पे निर्भर कर रहे अपनी बातों को, और वो तो कांग्रेस का तरीका है. ये विदेश में क्या करते हैं, कभी चाइना के साथ, कभी किसके साथ साठगांठ करते हैं. मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ. इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं. वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं. ये देख लें कि उनकी संपत्ति
शेयर की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ। The leader. तो मैं देखिए इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। सर एक चीज आपके अनुरोध करूंगा, एक अनुरोध करूंगा, हर बार नहीं मिस्टर चिदम्बरम प्लीज, no, while sitting you are speaking not good. Sir, I have a request to make to the leader of the opposition. Sir, every time your member rises, you are a very senior member. Digvijay Singh is a very senior member. Every time Mr. Jairam Ramesh will rise to give support. Now I want to tell him, one second, take your seat. You must know the rule. I am on my feet. So sir, I request you that the member must be allowed to stand on his own feet, and you are capable of it. The world knows it. Don't bring down the stature of LOP or other senior members. He can defend himself. He can make his point on his own. Every time I say something to the LOP, you rise. Not good. LOP. सर देखिए डिसरप्शन बहुत हो रहा है। आप तो नहीं चाहते डिसरप्शन, लेकिन जब मेरा भाषण हो रहा है तो डिसरप्शन हो रहा है। नहीं तो सर मैं आपके सामने कि इस व्यक्ति को जो प्रोत्साहन मिला है कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस ग्रुप ने 82,000 करोड़ रुपए तक लोन दिया। एक उदाहरण देता हूं साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मोदी साहब को ये मालूम होगा कि गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ, किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर्ज चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर। 13 पैसे के लिए अगर यहाँ ये तो है नहीं सर it will have to be authenticated. नहीं आप in accordance with rules the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका। The honorable LOP is called upon to authenticate this information. के जमीन during course of the day रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए हाँ सॉरी 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। और सर करोड़ों रुपए लूट के सर what you have read is required to be authenticated for 3 reasons. One, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं सर, ये कोर्ट का नहीं है। Honorable LOP ये कोर्ट का नहीं है। You put that on the table of the house during course of the day. अच्छा ठीक है। Now do it, authenticate it. Yes. And ask him to do it.
और दूसरी चीज ये है कि ये जो उनको देखिए शॉर्ट पीरियड में डिफेंस, एयरपोर्ट, पोर्ट, हाईवेज, सोलार, विंड गैस, मीडिया, सीमेंट अब मेरे पास भी आ गए। गुलबर्गे में एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी परसों ही खरीदे। वो अब भाषणों में, चुनावी प्रचार में मोदी साहब मेरे पीछे लगे, पैसे में सीमेंट वो लेकर वहां पर कारखाना मेरे पास शाहबाद में खरीदे ना, ठीक। तो ये इनको पैसा तो पब्लिक सेक्टर ने दिया, बैंकों ने दिया, पैसा भी मेरा, यानी मेरा मीन्स जनता का, पैसा भी हमारा, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड भी हमारे, चलो हमारे ही पैसे से पब्लिक सेक्टर खरीदो। और इसमें जो सामान्य लोगों को नौकरियां मिलते थे पब्लिक सेक्टर में, वो सब डूब गए। अगर पब्लिक सेक्टर जिंदा होते तो उसमें रिजर्वेशन मिलता। आज आपको मालूम है साहब, तो पहले इससे भी मैंने आंकड़े निकाल के रखे थे और बोला था, सरकार में चाहे डिफेंस हो, चाहे BSNL हो, दूसरे जो जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ये सब नौकरियों का अगर आप जायजा लेंगे, 30 लाख वैकेंसीज हैं। 30 लाख में 30 लाख में 15 लाख तो रिजर्वेशन को मिलते हैं, SC को, ST को, बैकवर्ड को, सब आप भी उसी में आते शायद, उसी में आते शायद, ये बैकवर्ड्स में OBC में आते शायद, आपको भी उसका फायदा होता था। तो 15 लाख और 15 लाख नौकरियों में से फिर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर, ये नौकरियां क्यों नहीं दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे, क्यों भर्ती नहीं कर रहे, और ये प्राइवेटाइज कर करके इनको नौकरी भी नहीं मिल रही है, और एश्योर्ड जॉब जो लोगों को मिलता था वो भी खत्म हो रहे। और आप तो गरीबों के लिए ज्यादा काम करने वाले हो, तो ये क्यों कर रहे हो? पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो ना, प्राइवेट सेक्टर में पूरा पैसा भेज रहे 82,000 करोड़, उसके बजाय पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करो। 10 लाख लोग पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, और अदानी के पास 82,000 करोड़ आप देख के, उसके पास सिर्फ 30,000 लोग काम करते हैं, 30,000, फिर भी उसको प्रोत्साहन मिलता है। One second, please take your seat. One second. India has robust mechanism where how people get contracts. One second. No. Honorable LOP. No. One second. Take your seat. No. We cannot send a signal. India. No. We cannot allow. Mr. Chidambaram, you know it more than anyone else. We have a transparent, accountable, robust mechanism. I am only cautioning the LOP. He is trying to give an impression that India is a country where contracts can be given like this. No. Contracts are given on the basis of accountability and mechanism. No. I know the rules are such. LOP will bear this in mind. Please. No. Take your seat. You are a senior member. Let others do it. You are very senior. One second. Sir, let the finance minister answer. No. Let the prime minister answer.
Take your seat. Take your seat. Okay. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, I have got input. Honorable members, I have got input from very senior quarters in the country and outside the country that Parliament should not be allowed to be used to run down our transparent, accountable, robust mechanism. No, LOP said as if something has been given on a plate. No, take your seat. LOP. You cannot reply. Honorable Chair, give me a minute. Honorable Chair, the opposition is trying to allege that the chair should have not have made these comments. I would like to point out to the honorable leader of the opposition and his other colleagues that the chair. Honorable Chair, Honorable Chairman, I would like to urge the honorable leader of the opposition and his other colleagues that the chair is duty bound to protect the dignity of India. The chair is duty bound to ensure that national interest is not compromised. This is the Council of States. If any member makes a comment which insinuates, and I have the definition of insinuation, if he makes a comment which insinuates, Sir, you cannot reply. Please take your seat. Take your seat. Yes, sir. You reply. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Honorable members, take your seat. We have to say from this platform only that which is in national interest. Authenticated. It can't be allegation without substantiation. No. LOP. LOP. Shri Mallikarjun Khadge, please. What comment has he made? Yes, I'll tell you. One second. Ask them to take the seat. Mr. Mallikarjun Khadge, please. Ask your members to take their seats and please. Yes. Sir, you cannot reply. I'll tell you. You take your seat, I'll tell you what he has said. Please, take your seat. Take your seat. No. Please take your seat. Take your seat. Yes, go ahead. Mr. Mallikarjun Khadge. Mr. Mallikarjun Khadge. Not appropriate. Objection. Tell him. Mr. Mallikarjun Khadge, please resume your address. Please. Take your seat. Take your seat, Mr. Jairam Ramesh. Take your seat. Why I said so? An impression was explicitly given by the leader of the opposition that the largest democracy on earth is giving context like this. No. Not the context. No. LOP. Please, LOP. Leader of the opposition. Yes. Yes. Mr. Mallikarjun Khadge, please. Please. Sir, I beg of you. I differ with your opinion.
Yes. If I speak truth, it is anti-national. Sir. I am not anti-national. I am more patriotic than anybody of you. I am a Bhumiputra. I have not come from Afghanistan or from Germany or from other countries. I am native of this man. I am Mool Bharati. And you don't try to suppress me, my feeling. You are looting the country and you are telling I am anti-national. Sit down. Mr. Khadge? Yes. One second. I am Khadge. Mr. I said Mr. not Khadge. Mr. We greatly appreciate you are a patriot. All of us are. There is no one here who is not a patriot. Number one. Number two, it is for the first time with a man of such experience and you are unable to control them when they are violating the chair. No. I will not yield on this point. No. Let me tell you, one second. I am neither this side nor this side. I am on the side of Constitution. I am not on this or that side. I can't be enlisted. No. Mr. Khadge, please. Mr. Khadge. And sir? Request. Chair rarely speaks. Is the House of Commons dictum. Chair rarely speaks. Sir, every time you go outside, there is enough in our country to learn. You go to House of Commons. Sir, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखा कि किस ढंग से एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया और 2 ही साल में 12 लाख की संपत्ति के पर कब्जा करके आज बैठा है। कब्जा तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। ये पूरा भार 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12 लाख का भी आएगा। हिडन जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे, वो भी आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर उसमें से ये लोग जो घोटाले करने वाले हैं पवित्र हरिश्चंद्र के जैसा निकले तो जाके आप और हम उनको हार डालेंगे, गले में माला डालेंगे। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तब बैठती है जब आरोप सिद्ध होते हैं, इनके तरह कोलगेट के घोटाले होते हैं, 2G का स्कैम होता है, अंतरिक्ष दिमाग का स्कैम होता है, या सिक्योरिटीज पे सरकार पे आरोप लगता है, तब बैठती है। ऐसे इनके हिसाब से अगर कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल के इश्यू में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने लगे तो कल तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ये भी तय करे कि जो स्कार्फ पहना हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ये लुई विटॉन का स्कार्फ ये कहाँ से आया, किसने इसके पैसे दिए, कितने का स्कार्फ पहने, इनकी वेल्थ कहाँ से आई। अब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इश्यू नहीं हो सकता। इश्यू पे कोई तत्व दे, कोई आरोप सरकार पे लगाए, कोई बताए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई बताए कोई गलत काम किया, तब इसके बारे में बात करें। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से क्यों भाग रहे मुझे मालूम बताया अभी। तो आप भागते जाओ, हम पीछे आपको पकड़ेंगे। सर, एक तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हमारी डिमांड है, सभी पार्टियों ने यहाँ पर रखा है और पूरे पार्टी के लोग एक होकर एक वॉइस में
इस सदन में हमने पूछा है उसको आप मानिए, देश के हित में। ये इसमें तो देशद्रोही का मामला नहीं ना, ये तो देश के हित में है ना। और हम तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम तो कहीं बाहर से ऊपर से तो नहीं टपके। तो इसीलिए मैं और डिमांड करूंगा, बार बार डिमांड करूंगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बनाइए। दूसरी चीज, अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहे इतना कि एक तरफ तो आप तो संविधान बहुत पढ़े हैं, क्योंकि बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं, और आपने कहा You will not have to authenticate it. Go ahead. नहीं, आपने इतने अच्छे साहब, आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नुको, मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, छोड़ देता हूँ फिर साहब, वो नहीं, वो ज्यादा गंभीर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं, जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना, तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आप सदन को नहीं, ऐसा है, मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था, अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे, ये हमारे वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए, अब गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, एक्चुअली लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन has said something significant about me. लीडर ऑफ द हाउस has missed it. इन्होंने ये कहा है, मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएगा। इन्होंने जो ताना बाना बुना था, उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने? And contact. Yes. And the right contact. I had contact with you there. अब तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत पंडित है, माहिर है, और हमारा जो आइडिया भारत है, हमेशा उधर से बोला जाता है, हमारा जो आइडिया है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें हर नागरिक को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस मिले, ये है। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो आदमी सच बोलता है उसको बोलने नहीं देते, जो इंसान सच लिखता है उसको लिखने नहीं देते, जो जर्नलिस्ट अपने विचार को लोगों के सामने रखता है उसको जेल भेजा जाता है, और जो टीवी पे भी अगर डिबेट होता है 10 बजे के देखिए या 9 बजे का देखिए, डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं प्रेशर, या नहीं तो खरीद लेते हैं। नहीं साहब, ये तो स्थिति है, ये मेरे ऊपर आ गया, कल आपके ऊपर भी आएगा। इसीलिए मैं आपको विनती करता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसी बात आप सुनिए। तो दूसरी चीज सर, ये जो भारत का संविधान है,
इस संविधान के तहत अगर हम चलेंगे तो सबको सुख और समृद्धि मिलेगी। लेकिन हर चीज में इक्वालिटी को खत्म कर रहे, लिबर्टी को खत्म कर रहे, जस्टिस तो नहीं है गरीबों के लिए, और फ्रेटर्निटी तो नहीं है। ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये बुद्धिस्ट है, ये फलाना फलाना धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। ये चीजें आप लोग कर रहे हैं और उसका ब्लेम दूसरों पे डाल रहे हैं। और उसके बाद और एक बात, आपके पास बहुत से हथियार हैं डराने के। तो कहीं जनता से चुनी हुई सरकार बनती है, अगर आप लोगों को मेजॉरिटी नहीं मिलती है या आपके मन के मुताबिक वहां सरकार नहीं होती है, तो लगाओ ईडी, लगाओ सीबीआई और ऑटोनमस बॉडी को यूज करके हर जगह तोड़ फोड़ करके सरकार बना। तो एक दो सरकार ज्यादा अगर अपोजिशन करे तो क्या नुकसान होने वाला है? आप तो इतने मेजॉरिटी से आए, क्यों डर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत है, इतनी मेजॉरिटी हो गई कि डाइजेस्ट ही नहीं होता, उतनी मेजॉरिटी है, फिर भी डरते हो। ऐसा मत करिए। कभी कभी होता है आदमी को बहुत मिला तो अपने छांव से भी डरता है, या ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं। जो आप किसी को इनकम टैक्स लगाते हो, अगर आपकी बात कोई मानता नहीं, कोई मेंबर आप में अगर आपके इसमें पार्टी में नहीं आता, तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं चाबी फिरा के आप उसको अंदर लाते। Authenticate. The honorable member will authenticate. Authenticate. कितना सरकार साहब? कर देना सर। कर्नाटक का सरकार, महाराष्ट्र का सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कितने ऑथेंटिकेशन करो? मणिपुर की सरकार, आप सभी एमपी पर एलिगेशन लगा रहे हो, ऑथेंटिकेट कर दीजिए। Put it on the table. साहब और एक इंटरेस्टिंग मशीन है साहब। हाँ सर, और एक इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने, मोदी साहब और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन मोदी साहब और शाह साहब ने खरीदी, वॉशिंग मशीन। खास करके ये वॉशिंग मशीन में जो भी ईडी और इनकम टैक्स घोटाले में सपटते हैं ना मेंबर्स, या उनके ऊपर कुछ केस है, डरा के उनको अपने तरफ लेते हैं, फिर उसको वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वो कैसा? One second. ये निर्मा वॉशिंग मशीन कौन सा? One second. उसमें डाल One second. क्लीन होके निकलते हैं, वो उधर One बैठ second. जाते हैं। One second. बैठ कर One second. अच्छे होते हैं। One second. One second. Sir. Please take your seat. One second, sir. One second. बैठो मैं। Request कर रहा हूँ। Honorable member, such kind of discourse and to ridicule an institution without factual basis does not behave well. No. I call upon the LOP to authenticate the assertions made by him during course of the day. इसकी वाहवाह करें, किसने आया यहाँ? इसकी वाहवाह करें हमारे प्रवचन में। सच्चाई नहीं बोलेंगे तो कहाँ? I can understand. Sit down. Shakti si. Use your Shakti later on. सर ये कोई नहीं, हमने देखा है, ऐसे नहीं होता है। What have I done? सब करेंगे, वो जवाब दे, हमें बोलने ही नहीं दोगे। No. उनकी वाहवाह करने के लिए आए। I tell you. No. Let me tell the honorable member, whatever LOP says is to be responded by them. But. One second. But I am there. I will have to ensure. No. One second. The ruling party
cannot invoke the provisions that I have. If a member makes an allegation against another member, it is my duty to live up to constitutional requirement. Honorable LOP will during course of the day substantiate the allegations with respect to so-called washing machine. He will do it. What? Ask him to sit down, sir. Sir, ask Jairam Ramesh to take his seat. Ask him. आप नहीं, आप देखिए, मैं इसलिए वॉशिंग मशीन का शब्द इस्तेमाल नहीं सर, मुझे दुख हुआ कि आपने कहा, और मुझे दुख हुआ कि आपने जिस लहजे से कहा, आप जैसा अनुभवी आदमी ऐसा कहे, इसीलिए जिसमें कोई तथ्य नहीं है, एकदम खोखली बात कैसे कही जा सकती है? उस मशीन, अरे ऐसा क्यों कर रहे भाई साहब? उस वॉशिंग मशीन में डालने के बाद वो व्यक्ति, कलंकित व्यक्ति उज्ज्वल बनता है और उसके खिलाफ छापे बंद हो जाते हैं और उसको वहां पर लिया जाता है। ये बोलने के लिए मैं वॉशिंग मशीन बोला और कुछ नहीं। और दूसरी चीज, और सब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भी बैन किया गया है, मुझे मालूम है। बहुत से यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर हंगामे हो गए, लाठीचार्ज हो गए, लेकिन जो भी चीजें अगर डेमोक्रेटिकली कोई डॉक्यूमेंट्री बताना भी चाहता है तो बताने दो, आपको क्या होने वाला है? आप तो उत्तर उसका देंगे और इसके बावजूद भी आप मजबूत है ना, फिर क्यों डर रहे हो? तो बीबीसी कि जो आपने तो बयान किया, बहुत से लोगों ने देखा कि शाहरुख खान के फिल्म के जैसा होगा। तो सर मैं बोलता हूँ, बयान आप जितना करते जाएंगे, रोकने की कोशिश जितना करेंगे, लोग उतना देंगे क्या है उसमें, क्या है क्या है। तो इसीलिए मैं नहीं कहा आपको डॉक्यूमेंट्री को, तो ये उसमें है क्या, मैं एक कोट अटल बिहारी वाजपेयी जी का करूंगा, ये तो कर सकता हूं ना। अहमदाबाद में कहा था, सांप्रदायिक हिंसा से विदेशों में भारत की छवि खराब हुई है। मैं नहीं कहा, अटल बिहारी जी ने कहा। क्या मुंह लेकर विदेश जाऊंगा, राजधर्म का पालन नहीं। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। सर, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, सर, लीडर ऑफ द हाउस। सर मैं भी बहुत निकट रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के, और जो सांप्रदायिक दंगा कांग्रेस की सरकारों में रहता था, उससे जो उनकी पीड़ा थी, जिस प्रकार से इनके शासन में दिन रात महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, देश के कोने कोने में बिहार हो, भागलपुर हो, देश भर में जितने सांप्रदायिक दंगा होते थे, उससे जो अटल जी की पीड़ा थी, उसको वो जाहिर कर रहे हैं। Yes, Honorable Finance Minister. Sir, if you allow me one yes, minute, please. I fully appreciate Leader of the Opposition quoting Shri Atal Bihari Vajpayee. But I only wish he quotes him fully. That sentence ends, that paragraph ends with Shri Atal Bihari Vajpayee saying, "Yahi to राजधर्म अभी पालन कर रहे हैं." One second.
One second. Since a reference has been made to a great son of this country, a former Prime Minister, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, I call upon Leader of the Opposition and the Honorable Finance Minister to lay the documentation on the table of the House during course of the day. Yes. 1 more minute, sir. Honorable Finance Minister. 1 more minute, sir. Huh? 1 more minute. Honorable Finance Minister. For having read only part straight. Honorable Finance Minister. For having quoted. The chair has called me. The chair has called me. The chair has called me. For having quoted partly to suit their convenience, they should also, after I corroborate and read that statement here, give a word of apology. I can assure the members what the LOP has said, what the Honorable Finance Minister has said, consequences will flow. Because the entire country is concerned. Atal Bihari Vajpayee ji was a former Prime Minister, Bharat Ratna, and a great son of this country. Any observation made by him, if truncated, tooted, or not given properly this side or that side, it is duty of the chair to deal with the situation. Take your seat. Yes. Yes. सर मैं मेरे मुंह से नहीं बोला, ये 4 अप्रैल का है, अगर आपको डिटेल होना है तो मैं ला। No sir, newspaper reports are no substitute to documentation. सब you have to authenticate what is said. सर अब नहीं देखिए, और गुजरात मॉडल की बात बहुत आई और डबल इंजन सरकार की बहुत, जब कर्नाटक में गए प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन सरकार रहे तो डेवलपमेंट होती, और फिर उसके बाद उसी ढंग से मैं डबल इंजन का, जो गुजरात में डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगा। ऑथेंटिक साहब, गुजरात में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 31% है 1000 बर्थ को। 100 पैदा होने वाले 25% बच्चे कुपोषित होते हैं। गुजरात इसमें 30 राज्यों में से 29वें स्थान पर सबसे नीचे है। ऑथेंटिकेटेड, और मैं नहीं, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग और हार्वर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तमाम हेल्थ इंडिकेटर्स पर गुजरात सबसे नीचे स्तर पर है। और देश के 766 जिले में सबसे नीचे के 10 जिलों में से 6 गुजरात के। साहब आपको तो मालूम है, राम गोपाल साहब, आप हेल्थ कमेटी के Honorable LOP, 15 minutes of your party time is left. You can use it. Only 15 minutes. देखो साहब, अगर आप बोलेंगे मैं खत्म। सर ये इसीलिए ये गुजरात में डबल इंजन का स्वास्थ्य, शिक्षा और ह्यूमन डेवलपमेंट पे है क्या? नहीं, आपको उतना अधिकार नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ये बताना होगा, क्योंकि 13.5 साल तो वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, 9 साल से तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले भी बीजेपी सरकार ही थी। जब 25, 30 साल, 40 साल आप हुकूमत करते हो,
खुद के स्टेट में यह स्थिति है और दूसरों को बताते हैं। सर, मैं इन्फ्लेशन की तो बात नहीं करता, क्योंकि सभी ने तो कहा रिकॉर्ड इन्फ्लेशन इस देश में कैसा महंगाई हुआ, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और इन सारे चीजों में। और यूपी की आप बात नहीं करते हो, जब यूपी के पेट्रोल डीजल के 70 रुपए दाम थे और सिलेंडर 410 में था और तेल के कीमत तो हाई थे, लेकिन आज तेल की कीमत में भी गिरावट आई, लेकिन एलपीजी और पेट्रोल एक्साइज में तो बढ़ती जा रही। बेरोजगारी, सर बेरोजगारी में तो आपको मालूम है, बेरोजगारी वैकेंसी तो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं वो छोड़ देता हूं। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी जो हमको वायदा किए थे इस देश के जनता को, 130 करोड़ जनता को हर साल 2 करोड़ नौकरियां, युवाओं मैं अगर आ गया हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट कहाँ है? ये ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर। तो हाँ, तो 18 करोड़ तो छोड़िए, 50 लाख भी आप नहीं भर रहे हो, 30 लाख सरकारी नौकरी नहीं भर रहे हो, और गरीबों को जो मिलना है रिजर्वेशन में वो नहीं मिल रहा। बार बार गरीबों की बात करना, टोकना, ये इधर चलता है। लेकिन आपने जो किया 2 करोड़ नौकरी यहाँ कहीं भी नहीं मिल रही। और सॉरी 15 लाख को तो बहुत हो गया, फिर वो शाह साहब उसको एक बोल दिए, अरे ये तो चुनावी जुमला था, छोड़ दो बोल। अब वो जुमला तो छोड़ देता हूँ। कम से कम प्राइम मिनिस्टर का ऑथेंटिक रिपोर्ट है। नॉट योर लेवल सर। और ऑथेंटिक रिपोर्ट आई कैन कोट। नॉट योर लेवल सर, नॉट योर लेवल, नॉट योर लेवल सर। और एक सर, प्राइम मिनिस्टर के हर कार्यक्रम देश पे बहुत भारी पड़े, बहुत भारी पड़े। हमारे मेरे को जो हिंदी लैंग्वेज आती है उतने में मैं बोलूंगा, अगर ग्रामेटिकली बहुत ही ठीक है तो आप बोल लीजिए। आपकी हिंदी बहुत मिठास की है सर, हिंदी बड़ा मीठापन है। नहीं, मेरा हिंदुस्तानी, मैं हिंदी नहीं बोलता ज्यादा, मेरा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो इसीलिए साहब अग्निवीर आपका फेल, और मोदी सरकार के नए कार्यक्रम जो नोटबंदी, उससे कितनी परेशानी हो गई लोगों को, और उसका फिर भी तारीफ करते ही रहते हैं। अरे जो नुकसान हुआ, अगर ठीक नहीं है कार्यक्रम, मान लेने में कोई अपमान नहीं होने वाला है। अगर ठीक नहीं है तो ठीक बोलिए। और जीएसटी, कोविड, ये सब मिसमैनेजमेंट, ये सब आपने किया। उसके बाद ये एक डिटोरिएटेड इकोनॉमिक सिचुएशन, और जो खाई बढ़ते जा रही है, गरीब बनते जा रहा है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं, ये फिर भी रिपोर्ट पूछते हैं आप, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है कि टॉप 5% लोगों के पास 62% दौलत है, और वहीं बॉटम के लोगों के पास सिर्फ 3-4% दौलत है। तो आप बताइए साहब, इसको कैसा ठीक कर रहे हैं? आपके इस अभिभाषण में तो नहीं है गरीब को कैसा आप ऊपर ला रहे हैं, लेकिन इन बातों पे आप नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट वालों को 30% से 22% कर दिया, और जो जीएसटी देने वाले लोग हैं गरीब, उनको तो कमजोर कर दिए। जो अमीर लोग आज जो बहुत पैसा कमा रहे हैं वो तो जीएसटी कम देते हैं, तो इसीलिए आप इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और एक SC, ST, OBC
इनकी बात बहुत चली, तो उसमें भी है अपने प्रेसिडेंट के अभिभाषण में। सर, मैं आपको अपील करता हूं, अब सरकार को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज आप निजीकरण बहुत किए, बहुत से कॉलेजेस आज प्राइवेट दिए, SC, ST, OBC और यहां तक कि मैट्रिक स्कॉलरशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, पढ़ो प्रदेश स्कीम सब बंद हो गए। एजुकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं, आप तो हमेशा बंद हुए थे और हो वहीं पर। उसूलों के वजह से बंधे हुए नहीं है, तो आप किसी वजह से बंधे हुए बंद हुए। और दूसरी बात, और तब प्यारा नंबर 26 में आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात कही, लेकिन आज भी मेरे प्रश्न के उत्तर को ही इस सदन में मिला है 41% टीचिंग पोस्ट खाली है। 41। अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे जिनको मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, वो बच्चे कैसे आगे आए? तो ये 41% एकलव्य, और आपने तो जिक्र किया है उसका, और मेरा फिर ऑथेंटिसिटी अगर आप पूछेंगे, मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपके पास दूंगा, और जो रिप्लाई मेरे पास आया अगर वो भी सत्य से दूर है तो मैं कहूंगा कि सदन में ऐसा चल रहा है। सर, आपको लगता नहीं कि यू आर बीइंग अनफेयर टू मी? नो, आई एम नहीं लगता नहीं सर, आई रेस्पेक्ट। एक कानून को मानने वाला व्यक्ति विनम्र तरीके से आपको कुछ चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहता है। बोलिए। एलओपी सर, एक टाइम है कि पूरे नेशनल एसेट्स सब बेचे जा रहे हैं, इसीलिए मैं जेपीसी की मांग किया और उसको प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि डरते नहीं हूं किसी बात, इसको क्यों डरेंगे? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए चलने दो, बोलेंगे तो वो मानेंगे। तो आखिरी में एक अमीर गरीब के बारे में और जो आपकी चिंता है तो उसका मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि समय तो मेरा पूरा हाउस में पार्टी का खत्म हो गया है। नहीं, पूरा हाउस में खाए, पूरी पार्टी खत्म हुआ है। तो एक 4 शब्द बोल के, सिर्फ 4 शब्द बोलूंगा, मैं समाप्त करूंगा। नजर नहीं है सर, मेरे को भी शेर सुनाने की आदत हो गई आपको सुनकर। नहीं सर, नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। सुनिए, प्लीज लिसन टू द ऑनरेबल एलओपी। ऑनरेबल सर, आप दिलदार है सर, शुक्रिया। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू। लगा के आग पहाड़ों की बात करते हैं। लगा के आग पहाड़ों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। क्या आपके ऊपर में जो चंद दोस्त आपके बना रहे हैं उसको मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। नदी सुखा के किनारों की बात करते हैं।
वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं और वही नसीब के मारों की बात करते हैं। मैं इतना कहते हुए विश्राम लेता हूँ। आपने मुझे समय दिया, आपको धन्यवाद। और एक बार ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाना और ये सब घोटाले का बाहर आ जाएगा और दुनिया को ये मालूम होगा साहब हम 3 दिन वेस्ट नहीं करें, हम न्याय के लिए करें। हम जो यहाँ पर आपसे बार बार पूछे, बार बार विनती किए सारी पार्टी के लोग, ये न्याय के लिए किए और न्याय के लिए जेपीसी आप बिठाएंगे ऐसी आशा करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। मेरे को भी माननीय खड़गे जी से प्रेरणा मिल गई और मेरे में भी कुछ शायद जाग गया। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। ऑलरेडी ये मेरा है, ये आई एम द ऑथर, डोंट बॉदर। और एक बात जो मैंने कही और ऑथेंटिकेशन के लिए क्यों कही, ये संस्कृति नहीं हो सकती कि न खाता न बही, मैं कहूं सो सही, ये नहीं हो सकता। श्री जवाहर सरकार। Mr. Chairman, sir, thank you very much for giving me the honor of speaking on the President's address. The President's address is mooted on one concept of Amrit Kal, we have noticed. So I would like to know from you, sir, and from our other friends, what is this Amrit Kal? Amrit Kal hai kya? Have we crossed Achhe Din? Have we crossed Achhe Din? Or are we still to reach Achhe Din? Year after year, sir, these terms are invented. These terms are invented like Amrit Kal, Azadi Ka Mahotsav, Amrit Mahotsav. ये आजादी के अमृत महोत्सव पर मुझे 2 शब्द कहना है कि we were very glad to see those whose genetic ancestors, whose political ancestors did not take part in the Azadi freedom struggle, were celebrating, were condoning, were making... Please, House in order, please. Sir, please, Mr. Nasir Hussain, please go back to your seat. Please, House to be in order. Thank you, sir. As I was saying, Azadi Ka Amrit Mahotsav became a celebration for the atonement of those who had not participated in India's freedom struggle. Those who had not. If you want, I can produce those documents. Now, talking of the other one, Achhe Din. Please. भाई साहब, प्लीज माननीय सदस्यगण, मैं आग्रह करता हूं आपसे माननीय, प्लीज सर, कृपया सदन में शांति बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय जयराम रमेश जी, प्लीज। Sir, I hope this time is not deducted from my very limited account. Now, we were talking about Achhe Din, Amrit Kal, we were talking about Azadi Ki Amrit Mahotsav. These terms are invented every now and then to distract attention. As I said, Azadi Ki Amrit Mahotsav celebration was an atonement by those who did not take part in the national freedom struggle. Aage badhiye, Achhe Din. Sir, I was most expectant, like many other Indians, to be part of the Independence Day of last year, 2022, because several promises were made that would happen by Independence Day 2022. The first promise was farm income will be doubled by 2022 August. Has it happened? I leave it to the wisdom of the House. There was another promise that was repeated and repeated over the social media and the IT cell of a particular party, that we are heading to a $5 trillion economy and that will be complete by 15th August 2022.
Sir, we were nowhere near the $5 trillion economy. We were promised that we will ride the bullet train on 15th August 2022. Sir, only 25% of the work is complete. We were told that there will be electricity in every house on a 24/7 basis by the 15th of August 2022. Whether it has happened or not, I leave it to the House. We were promised that Indian astronauts will be up there in space by that date. I started looking up, but I couldn't find any Indian astronaut. I don't know whether these are promises, whether these are Achhe Din, whether these are part of Amrit. Somebody called them, from their party, called them Jumla. Now, this biggest Jumla was, as you know, that 15 lakhs in everybody's pocket. That is nowhere in the scene. Nowhere has it happened. But the movie that was opposed, Pathan, that represents the essence of plurality, that represents the essence of our oneness, has won through, has secured record earnings. Maybe the 15 lakhs will come from there. Sir, we believe in multiculturalism. We believe in multi-regionalism, looking at the smallest regions. Sir, one appeal that I make on behalf of my party and on behalf of the neglected people of Meghalaya is that Garo and Khasi be placed in the 8th schedule of the Constitution. An official request has been made, I repeat it. Now coming back to the President's address, I repeat, I draw sustenance from paras 9, 10, 13, where discussion has been centered on corruption. As you can guess, the most live issue of corruption now is about a particular conglomerate. Now, enough has been spoken about that issue. But the only thing that I would like to highlight is the role of the regulatory authorities. Sir, I have observed the regulatory authorities and the civil service, the way the regulatory authorities collapsed in the face of hard facts when Adani Green Energy's share value shot up by 5,500% in 2 years, 2.5 years. No regulator, SEBI, did look the other way around. At every point of time, the Reserve Bank has failed us. At every point of time during this economic scam, the DRI has failed us. Of course, DRI did take some steps, to be correct, but certainly not consummate with the steps that should have been taken. The most glaring example of missing in action was the Enforcement Directorate and the PMLA. They were so busy raiding the opposition that they didn't find time to look at one of the biggest scams in the history of India. Our party has supported the claim to send this to a JPC. There is no point in discussing it in the House, but we would go one step higher, sir, and we should place forward a demand for a Supreme Court monitored inquiry. A Supreme Court monitored inquiry, time bound, will be perhaps even a stronger way of ensuring that we are taken seriously. The whole House is taken seriously. Sir, this report mentions about poverty. But poverty, what poverty are you talking about? I mean, I'm unable to understand. Because the entire basis is a report, that's the Consumer Expenditure Survey that was done last in 2011-12, before this government came, 11 years ago. In the last 11 years, or rather 9 years of this government, they did not undertake any consumer expenditure survey. One report that came out in 17-18, they took it off the website because it showed an uncharitable picture of this government. We repeat that the final consumer expenditure survey that is finally happening should be put out in the public domain as soon as possible, so we know whether India's poor constitute 8 crores or more. Sir, the Prime Minister and others have said with a lot of pride that we have been giving free food to 81 crores. 81 crores Hindustanis are lining up for free food grades, and nobody can remove it now. Does it mean that 81 crores out of 240 crores are poor?
You revise your lines of poverty. You revise your norms of poverty. But come forward with facts. Come forward with facts. And in tackling poverty, as everyone knows, it's popular schemes like Narega and others that help. But Narega has been slashed from 111 crores to 89 crores last year, and to 60 crores. And out of this, West Bengal has been selected out maliciously for complete stoppage of Narega. You should come to Bengal to see how welfare schemes are conducted. Without the success of such schemes, we could not have resisted the massive onslaught that was thrown at us in 2021. With all the power of state and all the wealth that was possible, the people of Bengal rejected it with a 48% majority because of welfare schemes. Do take the trouble to come to Bengal for learning how to conduct welfare schemes. So one point I would like to draw the attention of my friends on both sides, that is very soon we'll move to Parliament House, a new Parliament building. Not 1 minute's discussion has been held with the users of Parliament. I have some insight because for the last 1.5 years I have been pursuing it with the minister concerned who gives minister type answers. Not one consultation has been held. We do not know what facilities are there. I inquired, they said, no, we don't have state bank. आपको state bank या banking के लिए बार-बार whose building says building करना है. This space has been utilized for grand halls far beyond our requirement in the near future. And I see a plan behind these large halls. And you know that, sir. As it is, 50% of the members are outside in the lobby and doing their other important thing. So when the camera pans at this house, it looks half empty as it is even now. But if the hall is made 1.5 times more, the TV camera will show that the honorable MPs do not take the house seriously. It is part of the narrative that Parliament is not required. Parliament has to be belittled. And in one state, assembly, I'm talking of the state of Gujarat, assembly sittings were reduced to 29 days in a year. Our is some similar grand plan of belittling the legislature also on in the national parliament. Secondly, sir, why did we talk of consultation? It is not only facility. Look at the building. Look at the grandeur of this building that has lotuses, that has all Indian symbols all around. And you see that triangular building store. You won't get the same gravitas. You won't get the same splendor. There is, at every point of time, and aesthetics has been cast upon us. That will be, the aesthetic will remain as a permanent memory of poor art. And this has been done by an architect specially chosen from Gujarat, who's taking 250 crores. 250 crores for advising on a completely unaesthetic building. We come to health, sir, because that is another point that has been repeatedly mentioned. Ayushman Bharat has saved 80,000 crores. I have gone through the entire health expenditure budget and find this is almost 100% of the budget. Where do they give these figures from? Where do they obtain? If the officers are misleading them, then let them question, where do you get such figures? You talk of 9,000 Jan Aushadh Kendras. Sir, one Kendra for 155 lakh people. And you are mentioning that proudly in your report. 155 lakh people will go to one store. Sir, इस पर दिमाग लगाइए, कोई ना कोई दिमाग लगाइए. Now. Sir, 1 minute more, because 1 minute more only. The total is, our health expenditure total is just 3.6% of the GDP. I couldn't help mentioning. And the Western world has 12 to 19%. China has 5.5%. Mexico has 6%. And we are half. We should hang our heads in collective shame that we have not been able to look after the health sector the way we should have looked after it. So I thank you for the time given. Thank you, Manya Jawahar Sarkar ji. Honorable N.R. Elango. Yes. Honorable Deputy Chair, thank you for giving to me to speak on the Honorable President's side.
Sir, the special address of the Honorable President is to inform the Parliament of the causes of the summons as per Article 87 of the Constitution of India. It is always expected to inform the Parliament that the causes of the summons, namely what the government was doing the last year and what it is going to do the next year. But I could see from the presidential address that what they were doing for the all 9 years and what is that they are visualizing for the next 25 years has been given, but not the causes of summons has been addressed in the presidential address. Sir, great திருவள்ளுவர் said, எப்பொருள் எத்தன்மையது ஆகினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு, which means the mark of wisdom is to see the reality behind everything. With that vision, when I saw the presidential address, I want to make some mention about 3 or 4 points. Democracy and federalism has been dealt in paragraph 79, and I quote, India's democracy was prosperous, strong, and will continue to be stronger in the future. In para 79 it is said that the true federalism in real spirit and substance and not in ornamental form would be seed for vibrant democracy. Democracy have to be practiced, not to be preached, sir. Where all democracy has been violated, I can quote, Union shall not attempt centralization and should envisage decentralization by permitting the states to exercise powers of legislation and executive. The representative of the union government in the state should act as a catalyst, and their deed should not be against the legislative democracy of the state. Delegation of power to state should be real, and colorable intervention by the union would be destructive of the constitutional mandate of federalism. However, states' contribution to the development in various fields should be recognized and appreciated by the union for the sustained cooperation and federalism between the union and states. Sir, for instance, Tamil Nadu government Legislative Assembly passed a bill on NEET, and it was sent to the assent of the president. But for the best reasons known to them, the bill is kept in the cold storage for a long time. That bill has not been approved, and various reasons are given by the union in not approving the bill. The governor of the state of Tamil Nadu is not giving his assent on most important bills of the state, namely banning of online lottery and certain bills which, with respect to the university. The assent neither denied nor returned, the bills are neither assented to or not returned to the Legislative Assembly, kept in the cold storage. This is not only happening in Tamil Nadu, sir. This is happening in Telangana, this is happening in Kerala. How then you talk about democracy and federalism? You have to practice democracy, not only preach in the words. Sir, the judiciary is concerned. Fair and independent judiciary is the hallmark of the civilized society. And it's common knowledge that the law declared by the Honorable Supreme Court is the law of the land under Article 141 of the Constitution. Sir, Article 50 is given a complete go-by, and we are in the recent past hearing the highly placed executives are making certain remarks against the collegium system and the basic structure propounded by the Supreme Court. In fact, the basic structure is not propounded by the Supreme Court in Kesavananda Bharati. The basic structure is inbuilt in the Constitution. And making some observations about the judgments of the Supreme Court, we have to respect the judiciary, and that is not being done. Article 50 is being violated. That separation of power is being completely violated by this government. And sir, the collegium is concerned. Twice we passed the NJIC bill, and it was struck down by the Supreme Court by a recent judgment. If you have any objection to those judgments, you have to pass a new bill which can be acceptable by the Supreme Court. But making comments on the collegium system is not good for the democracy. And we are also saying that there is cherry picking in the appointment of judges. Collegium is recommending few names, and union government is cherry picking few names and passing the orders.
and keeping the other names under the cold storage without assigning any reason and without any authority to do that. This is very unacceptable in the democracy, sir. This have to be replied by the government. Sir, one more affront to the democracy is all these schemes by the union government are named in Hindi. We are not able to understand the name or the intention behind the schemes. With all this, I say the union government is not practicing the democracy. They are not governing with the democracy. As far as the corruption is concerned, at paragraph 9, it is said by the presidential address that an effective system has also been put in place to end practice of favoritism and corruption in the government machinery. Sir, you know, the people of India know that in 2018, this government has almost neutralized the corruption law. There are few provisions which were in vogue. In 1988 Act, you have removed them and decriminalized most of the acts of the corruption. And naturally, corruption will come down, sir. Now, take 13(1)(d). There were two good provisions. The 13(1)(d) has been completely wiped off. And you say now the corruption has been brought down. Yesterday, when Mr. Tambidurai was speaking, he said about something, the cases which were ended up in acquittal. But it is only during the ADMK rule. Tamil Nadu, not only Tamil Nadu, Kodinadu was also looted. Please. It is not a state subject, sir. We'll see, yes, please. We'll see. Right, we'll see. We'll see. We'll see. Please. Sir, I have only 2 minutes. Please take your subject. Please speak on the subject. Sir, you know he will not be raising a state subject. Please. Sir, yes, we'll see. We'll see. Please. Sir, in paragraph 2, the presidential address says about a Bharat which has no poverty and where the middle class is also prosperous. Everywhere they say Bharat when they are talking about the future. The discriminate use of the term Bharat vis-a-vis India stirs a speculation in the minds of the general public that a subtle design is envisaged by the Union to proclaim India in future as Bharat, which will prove to be fatal for the existence of the unity and diversity of this great nation, India. Sir, there is a Ekaleva model schools, about 400 has been opened. We are very happy to know about that Ekaleva model schools. I only hope and believe that this government, by not providing job opportunities to those students, taking the thumbs of those students like Dronacharya. They have to give job opportunities to them. Sir, while coming to the women empowerment, today in Tamil Nadu, our Honorable Chief Minister, Thiru Muthuvel Karunanidhi Stalin, is inaugurating the second phase of Pudumai Pen scheme, which is otherwise known as a modern girl or a revolutionary girl. Muvalo Ramamritam Ammayar Higher Education Assistance Scheme is being in vogue in Tamil Nadu. The government of Tamil Nadu has launched this scheme to enhance the enrollment ratio of girls from government schools to higher education institutions. Through this scheme, the financial assistance of 100,000 rupees per month will be provided to the girls till their completion of UG degree, diploma, ITA or any other recognized course. This incentive amount under this scheme will be disbursed directly into their students' account. This is called Dravidian model, which is better than any other model, sir. Such as socially progressive schemes have not been introduced by the union for the better and prosperous life of the girl children. 1 more minute, sir. Sir, as far as the observations of Prakash Javadekar yesterday, that the artifacts which are available in the other countries will be brought back to the India. I have a request to the government that a detailed report on Kiradi excavations has been submitted to the ASI
on 30th of January 23. One more minute, sir. Please, Mr. Council. Amarnath, I request the government to publish and make it a public document, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Manya Sanjay Singh, absent. Manya Manas Ranjan Mangraj. Mani Niranjan VC ji, please. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. I stand here to support the motion of thanks on the speech delivered by the Honorable Vice President, Honorable President of India, the first tribal woman president, who is proud of tribals of India. However, I, on behalf of my party BJD for the development of tribals of Odisha, want to highlight some important issue concerned to my state of Odisha and demand attention of the central government on these important issues of Odisha. Firstly, inclusion of 169 tribal groups or parts of such tribes pertain to Odisha, as recommended by our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik. The left out scheduled tribe are Sohara, Tamadia, Bhanjapurana, Kolanga, Paharia, Jhodia, Mankidia, Durua, Chuktia, Bhanja, Paudia, Bhanja, Amanatia, Beldargond, Budu Kondho, Buda Sabra, Bhakta, Vaigodaba, Berenga, Jhodia, Poraja, Cheranga Kolo, Champua Komaro. Such type of 100 of tribal communities. These communities proposed for inclusion are actually subsets or phonetic variation of the name of the existing ST communities, but are still deprived of the benefit held by ST with similar tribal characteristics residing in different parts of the state, who have since been notified as ST. Inclusion of the left out communities will give them their much needed recognition as scheduled tribe and ensure them social justice in accordance with the provision of the Constitution of India. Secondly, sir, withdrawal of 18% GST on candle. Our Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, has been demanding to withdraw 18% GST on candle in the greater interest of the state of Odisha, as more than 8 lakhs poor tribal people associated with the trade are getting affected. The tribal people collect the leaves as part of their right defined under scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition of Forest Right Act 2006. The imposition of GST of 18% on candle leaf is adversely affecting the trade. This in turn affects the livelihood of candle leaf pluckers, binders, and seasonal workers, and the implementation of the social security and welfare scheme for them. In the interest of the livelihood of the community, it is urged upon to withdraw the imposition of GST on candle leaf for the greater interest of the state of Odisha. Thirdly, inclusion of tribal languages in the 8th schedule of the Constitution of India. Odisha has the third largest tribal population in the country. As per census 2011, 40% of the population in Odisha belong to scheduled tribe and scheduled caste communities. The state is home to 13 PVTG groups. Language remains a huge obstacle for the attainment of education for tribal children. Learning should necessarily also consider the pertinence of each medium of instruction for different linguistic and cultural backgrounds. Government should focus on developing multilingual pedagogic instrument, teaching learning materials in the local dialect, considering the tribal socio-cultural surroundings. Odisha's language continues to be disregarded. We demand that the tribal language like Ho, Bhumij, and Mundari be included in the 8th schedule of the Constitution of India. Fourthly, the tribal subplan, ESP, and KBK project should be restored and budget provision should be made for development of tribals of Odisha. मैं केंद्र सरकार से ये भी जो कि हमारा महामहिम राष्ट्रपति जी है, हमारा उड़ीसा की, हमारा आदिवासी देश की गर्व और गौरव है, भारत की और सारा दुनिया की आदिवासी की वो गर्व और गौरव है। और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक जी रिपोर्ट किए, तो उसके जो फास्ट भारत आज़ादी की अमृत महोत्सव के काल में जो हमारे जॉइंट सेशन में जो भाषण दिए, अभिभाषण दिए, वो सारे दुनिया के लिए, सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा गर्व और गौरव की बात है। और हमारे सारे विश्व के 50 करोड़ आदिवासी के लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है।
तो हमारे आदिवासी के जो विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, अर्थनैतिक विकास के लिए केंद्र सरकार ध्यान दे, आदिवासी का विकास के लिए। और हमारा आदिवासी का जो शिक्षा क्षेत्र में हम पिछड़े हैं सारे देश में। आदिवासी का परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 8.5 है, लेकिन 7.5% रिजर्वेशन मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में, तो उसको भी 8.5% करना चाहिए। जैसे हमारा नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में 22.5% एजुकेशन में रिजर्वेशन किए हैं, एम्प्लॉयमेंट में 23.5% रिजर्वेशन किए हैं, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन किए हैं, और इलेक्टिव पोस्ट में भी 23.5% रिजर्वेशन किए हैं फॉर शेड्यूल ट्राइब। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, और ट्राइबल के अफेयर्स के लिए, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए सब डेवलपमेंटल जो स्कीम है, प्रोजेक्ट्स हैं, केबी के स्कीम था, ट्राइबल सब प्लान था, सोशल शेड्यूल कास्ट सब प्लान था, वो सबको रजिस्टर करेंगे तो बोथ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। तो आई विल conclude by saying that fruits of development are to be shared equitably, but the focus should be on weaker section, particularly scheduled tribe and scheduled caste of the society on economic criteria. Thank you, sir. Thank you. Dr. K. Kesar Rao, not present. Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया सर, शुक्रिया उपसभापति महोदय। जया जी हैं यहाँ? प्लीज प्लीज। नहीं, एक संदर्भ था इसलिए आप ही से कह रहा हूँ सर कि एक फिल्म थी कभी कभी, उसमें एक शायर की बड़ी अच्छी लाइन थी, कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है। तो बाकी जो आगे है वो नहीं कहूँगा क्योंकि संदर्भ दूसरा है, लेकिन कभी कभी मेरे एक दिल में एक ख्याल आता है कि राजनीतिक जिंदगी में अगर हमारी महामहिम राष्ट्रपति खुद से अपना स्पीच लिखने लगे, अभिभाषण, तो शायद ये स्तुति गान ना होता जो इतने पन्नों का मिला है। अब ये कब होगा सर? ये हमेशा से होता रहा होगा, लेकिन कई चीजें जो हमेशा से होती रही हैं वो अच्छी हो ये आवश्यक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जमीन की हकीकत और अभिभाषण के तथ्य मेल नहीं खाते हैं सर, और ये चिंता का विषय है। मसलन मैं शुरुआत करूं एक छोटी सी चीज से। पैरा 2 कहता है स्थिर सरकार। अरे समाज अस्थिर है, वो स्थिर सरकार का क्या करें? उस ऑर्केस्ट्रा में जाकर के हम भी गाना गाएं। समाज में अस्थिरता के लक्षण जहां चले जाइए, क्षेत्रीय आधार पर, धर्म के आधार पर, जातिगत विषमता के आधार पर इतनी अस्थिरता है, और हम स्थिर सरकार का महिमा मंडन करें। सर, स्थिर सरकार वो होती है जो समाज में अस्थिरता पैदा ना होने दे। यहां उल्टा मामला है, ये चिंता का विषय है। इसकी अभिव्यक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में नहीं होती है। सर, 370 का जिक्र आया, 370 के जिक्र को मैं, धन्यवाद सभापति महोदय, 370 के जिक्र को मैं थोड़ा चाहता हूं कि एक व्यापक कैनवास पे लें। आजकल ऑथेंटिकेशन की बहुत बात होती है, तब मैं पूरी की पूरी किताब लेके आया। कश्मीर आफ्टर 370, अनुराधा भसीन जी ने लिखी है, कश्मीर टाइम्स की एडिटर रही है। सर, लगातार खबरें आ रही हैं, आप कहते हैं कि नॉर्मैलिसी है। सर, दिल्ली के दरबार से नॉर्मैलिसी बोलना और कश्मीर में जाकर के उस नॉर्मैलिसी को महसूस करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सर, महीनों से वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है सरकारी जमीन से अतिक्रमण घट रहा, लेकिन सर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं बिना नोटिस के। मैं बार बार कहता हूं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, सर कश्मीर को जमीन का टुकड़ा ना समझा जाए। जिंदा लोग बसते हैं, जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतोगे, कश्मीर का दिल कभी नहीं जीत पाओगे, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। सर, भ्रष्टाचार के बारे में भी कहा गया, तो सर मैं तो सोच के आया था कि ऐसी कोई बात ही नहीं बोलूंगा। अचानक आपको देखा और आप आए, बीच में प्रवेश की, देख कहानी याद आई। एक राजा को तोतों का बड़ा शौक था,
कारोबारी तोते रखते थे राजा साहब, तोते का बड़ा शौक था। नहीं, आप बताइए, मुझे देखते ही आपको भ्रष्टाचार की क्यों याद आ गई? नहीं सर, भ्रष्टाचार की नहीं, राजा की याद आ गई। इसको क्लैरिफाई कीजिए। सर राजा की याद आई। We have a distinguished member here from the same fraternity. सर राजा की याद आई। सर तो कई तोते थे उसके पास, लेकिन अचानक उसका स्नेह एक खास तोते के लिए काफी हो गया। गौतमी प्रवृत्ति का तोता था, तो सबको चांदी और स्टील की कटोरी मिली, उस तोते को कनक कटोरी मिली। और तोते से राजा सलाह बहुत लिया करते थे, और तोता सलाह भी देता था, भूत भी ठीक करता था, भविष्य की बात भी करता था। एक दिन उस तोते के बारे में कोई अनुसंधान आ गया पड़ोस से। उस अनुसंधान के बाद तोता थोड़ा बीमार रहने लगा। अब उस बीमार तोते की वजह से राजा ने भी खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन उस तोते का एक और भाई था जो विनोदी स्वभाव का था। अब उसने फूल नाम की एक कंपनी और एक हाँ बैंक हुआ करता था। हाँ बैंक के 48,000 करोड़ उस तोते ने 1303 करोड़ में केमन आइलैंड पे दे दिया। ये प्राचीन काल की बात है। तो तोता और राजा की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है, शेष अगले अंक में, संभवतः बजट में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विशुद्ध राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण होनी भी चाहिए। लेकिन सर 2018 से लेकर अब तक जब अभिभाषण में आप कंटेंट एनालिसिस करो तो 43 बार 2014 का जिक्र होता है। सर इतना तो 1947 का जिक्र नहीं होता जब हम आजाद हुए थे। 2014, ये कौन से इतिहास की समझ विकसित कर रहे हैं कि 2014 से पूर्व इस देश में अंधेरा था और 24 में अगर कुछ और हो गया तो देश में सन्नाटा हो जाएगा। सर शून्य और सन्नाटे के बीच में मैं माननीय सभापति महोदय, टॉलरेंस 1952 में बाबू राजेंद्र प्रसाद, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि 2014 की खासियत क्या है। I was elected to parliament in 89. तो एक सेकेंड, let's be little decorous. Be little decorous. These snipe swords should not be there. They don't give any dignity to anyone in the house. So we started a decade in 90s. So we used to have MPs, ex-MPs. But there was a new breed during 90s, ex-MPs, AXED. They couldn't complete their term. 9th Lok Sabha, I was there. Then thereafter we had that situation when we had Indra Kumar Gujral ji, SD Dev Gowda ji, and also Atal Bihari Vajpayee ji for 2 terms. So that particular phase of 30 years where the country had coalition governance came to an end in 2014. That was the reason. जयराम जी, अच्छा, I said AXED. माननीय सभापति महोदय, मेरे वक्त वैसे भी हम लोगों का अच्छा वक्त नहीं चल रहा है, तो मेरे वक्त में 2 मिनट का इजाफा कर दीजिएगा। एक स्पीकर हमारे और होंगे, संभव उनका कट जाएगा। सर प्लीज, मैं क्यों कह रहा था, आप मेरे भावार्थ को नहीं समझे। 2014 सर, इतिहास बोध 2014 से नहीं होगा। फिर क्या कहेंगे 47 में? हम पहली आजादी की वर्षगांठ हमने 48 में मनाई थी सर, तब तक बापू को खो चुके थे। हाँ, आज 75वें वर्ष में इस तथाकथित अमृतकाल में मैं ये देख रहा हूं कि गांधी की हत्या करने वालों का महिमा मंडन हो जाता है। ये भी है, ये है। इसके लिए 2014 चिंता का विषय था। और कोई नहीं, प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुए, कौन विरोध करेगा? लेकिन डेमोक्रेसी में कई एनोमलीज आ रही हैं, विसंगतियां आ रही हैं, उनका जिक्र ना करूं तो पार्लियामेंट फिर किस बात की? सर राजेंद्र बाबू तक टॉलरेंस की बड़ी बात हुई, उनसे लेकर के सहिष्णुता की बात हुई। अब सहिष्णुता शब्द गायब है अभिभाषण से। क्या नहीं चाहिए हमें सहिष्णुता? क्या हम नहीं देख रहे हैं कि हमारे समाज में कटीली दीवारें लगाई जा रही है कौमों के बीच में? बुलडोजर प्रतीक बनता जा रहा उत्पीड़न का, माइनॉरिटी राइट्स के हनन का। ऐसे दौर में सर, ऐसे दौर में टॉलरेंस शब्द का बार बार उठान होना, बयान होना, यह आवश्यक था। टॉलरेंस शब्द को दूर करके यू आर अपीयरिंग बेसिकली एज एन इंटॉलरेंट गवर्नमेंट विच इज नॉट इन द ग्रेन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
अग्निवीर का जिक्र हुआ सर। अग्निवीर, कभी युवाओं से पूछिए कि पूरी जिंदगी जो तुम ये तैयारी कर रहे हो सिर्फ 4 वर्ष के लिए। सर हम सब, मैं नौकरी में हूं सर, मैं नौकरी में हूं, इसलिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गारंटी है सर, गारंटी है। ये कौन सा निजाम कर रहे हैं सर इस देश में? मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि ये क्या है, ये तो लॉलीपॉप भी नहीं है, ये जहरीला फल है जो समाज में है। कभी उन युवाओं से पूछिएगा कि उनको ये 4 वर्ष वाले आइडिया का वो क्या सोचते हैं। सर लगातार फॉरेन पॉलिसी पर भी मैं देख रहा हूं अभिभाषण चुप सा होता है, फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं होती। सेना की सुप्रीम कमांडर है हमारी राष्ट्रपति जी, सेना के सुप्रीम कमांडर को क्या यह अंदेशा नहीं है कि चाइना के बॉर्डर पर हालात उचित नहीं है? मैं माननीय रक्षा मंत्री के बयानों को सुनता हूं तो चिंता होती है, लेकिन डिनायल है, डिनायल है सरकार की तरफ से। एक पड़ोसी के लिए तो लाल आंख निकाल देते हैं, दूसरे पड़ोसी के नाम पर आप चुप हो जाते हैं। Honorable member, security is a very sensitive subject, and you are a professor. We expect such a subject to be taken up very seriously, and let it not be usual discourse. Sir, I am a student of political science and history. In 1962, when India was at war with China, we had debated that in this parliament. Sir, national security, definition of national security is not the core prerogative of the ruling party. We are equally concerned. और मैं तो कहूंगा कि तराजू उठा लो ना भाई, आविष्कार करवा लो किसके अंदर कितना पेट्रियोटिज्म है, पता चल जाएगा हकीकत क्या है और फसाना क्या है, अफसाना क्या है। ये मैं कहना चाहता था। सर लगातार बीते वर्षों में अगर मैं कहूं फिलिस्तीन का जिक्र हुआ करता, हमारे सारे प्रेसिडेंट वाजपेयी जी के टाइम तक फिलिस्तीन पे चुप हो गए। काहे को? क्या वजह है? क्या हम अपनी विदेश नीति में ये ताकत नहीं पैदा कर सकते कि ऑपरेस्ट कम्युनिटी एनीवेयर इज आर विल शैल हैव आवर कंसर्न? इतना बदल गए हम सर। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए, लेकिन हिंदुस्तान की नजर मत बदलवाइए। जो 47 में नींव रखी गई थी उस नींव को मत हिलाइए। उस नींव को हिला दीजिएगा तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी ढा ढा के गिर जाएगी। ये चिंता का विषय है सर। जुडिशियरी, उसके बारे में भी जिक्र था। जुडिशियरी पर आजकल मैं देख रहा हूं 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम के हिसाब से बयान आते रहते हैं सरकार की ओर से। साहब हम सब जानते हैं कि जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता लगातार कहते रहे कि वंचित समाज SC ST OBC का जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा न्यायपालिका और न्यायालय दूर रहेंगे हमसे। लेकिन सर मामला बेसिक स्ट्रक्चर पर आ गया और बयान ऐसे आ रहे हैं जिनको ना मौलिक की समझ न संरचना की समझ। बेसिक स्ट्रक्चर पर मैं तो और किसी को नहीं कहूंगा, आप आडवाणी जी को देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। माननीय प्रेसिडेंट साहिबा के बयान में जातिगत बहुत बातें हुई, SC ST OBC। सर पूरे देश में एक लहर चल रही है जातिगत जनगणना की। आपके भी लोग अब बोलने लगे सत्ता पक्ष के। सर मैं 12वें मिनट में खत्म कर दूंगा, हालांकि 2 मिनट आपको जोड़ना भी था सर, माफी के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सर कि जातिगत जनगणना के लिए सरकार आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं थोड़ा फायदा होगा। हकीकत देखिए कौन कहां खड़ा है, इसलिए बिहार में हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं। प्रेरणा लीजिए ताकि जिनका हक, जो वंचित रहे हैं, अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट अक्सर आता है, नाम बदलो नाम बदलो। डेली पार्लियामेंट के बाहर कोई पूछता है आज वो फलाना का नाम बदल रहा है, मैंने कहा यार पीस मिल में क्यों करते हो, खुदरा खुदरा कर रहे हो, थोक में करो, थोक में करो। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार शायद होगा, एक मंत्रिमंडल बनाओ, नाम बदलो मंत्रालय, एक साथ बैठ करके एक बार में हिसाब करो। अरे साहब नाम बदलने से इतिहास बदलता ना, तो नाम बदलने वाले खुद बदल गए, इतिहास नहीं बदला। हड़प्पा की सभ्यता से लेकर जो कुछ आज तक हुआ इस मुल्क में वो हमारी धमनियों में है, किसी को कमतर मत दिखाइए। और रही बात मुगलों की, आपके अंदर तो एक बहुत बड़ा मुगल है, वो भी बिल्डिंग बनाने का शौकीन था, अभी बहुत शौकीन है। एनीवे सर, मैं आखिरी टिप्पणी ये करूंगा
आखिरी टिप्पणी ये करूंगा आपके समक्ष, बिना नाम बताए बता रहा हूं। हम सबल केंद्र चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सबलता संविधान से आती है, किसी दल के सत्ता पर एक अधिकार से नहीं आती। यदि केंद्र का व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं रहा, यदि दलगत आधार पर प्रदेशों के साथ भेदभाव या पक्षपात किया गया, तो प्रदेशों में केंद्र विरोधी भावनाएं जन्म लेंगी। मैं नहीं सर, अटल जी 74 का भाषण। बस सर आखिरी, कुछ मित्रों ने इसे अनावश्यक कर्मकांड, यानी इस बहस को कर्मकांड का, मुझे तो यह सारा दृश्य प्रहसन सा प्रतीत होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण ही नहीं, इस पर होने वाली यह चर्चा करने वाला यह सदन, यह संसद कुछ अर्थों में बेमानी, व्यर्थ, जनजीवन से कटा हुआ, मैं नहीं अटल जी, ये हमारे लिए आईना होना चाहिए। सर आखिरी सर, जय हिंद तो बोलने दीजिए सर, जय हिंद बोल देने दीजिए, 2 मिनट मेरा जोड़ना भी है आपको। सर मैं सिर्फ ये कहूंगा, जय हिंद बोलने से पहले सर ये अवसर होते हैं, सदन में जितने लोग हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन लोकतंत्र नहीं बचेगा ना सर, तो सिर्फ अगर तंत्र बच गया तो कुछ बचेगा नहीं। जय हिंद सर, शुक्रिया बहुत बहुत। और आपके मन में कभी कभी ख्याल आता है, वो बाकी चैम्बर में बताइए। जी सर। श्री विकास रंजन भट्टाचार्य। Good Chairman, sir, for giving me this opportunity to deliberate on the speeches of the Honorable President of India. I offer my thanks to the Honorable President of India, but I really cannot offer any thanks or give any credence to the speeches which he has made. If you kindly go through the entire speech and in line between, you will find this is not the speech which reflects the Indian constitutional ethos or constitutional morality. It really reflects the idea of Hinduism. It reflects the basic idea of BJP, who wants to really establish a Hindu Rashtra following the RSS guideline without implementing the Indian constitutional goal. This is based on misrepresentation of ideas and facts. You see, it is said that the Rajpath is now Kartavya because Rajpath is the symbol of colonialism. I don't know where from do they get this fact. During the colonial period, it was Kingsway and Queensway. That had been changed to Janapath and Rajpath. Raj is not a colonial word. The Raj is a concept which is available in Indian cultural history. Now, you want to take a false credit and try to pose as anti-colonial, though your history to fight the colonial government is very poor. Now again you find throughout this speech, there are references of many scholars, but unfortunately, we being the country of multicultural heritage, we have the heritage of different ideas, but this speech only contains the ideas of Hindu leaders, Hindu seers. What do you mean to communicate? Do you want to keep the country united on the constitutional principle? Or your intention is to divide the country on the religious line, which is the practice now being followed by the government, unfortunately. You see, you have a false claim. I don't know who had advised the Honorable President to make this statement. Triple Talaq. Triple Talaq was the contribution of the Honorable Supreme Court of India. Honorable Supreme Court of India had declared this unconstitutional. The government doesn't have any credit to this. They were bound to make a law after the declaration of the law made by the Honorable Supreme Court. But here it is said the government has the credit of abrogation of Article 370 to triple talaq. Why this false information you want to communicate to the country through the President of India? Now you say we have poverty eradication. Kindly see, the Constitution wants the scientific temper. And here you are really trying to communicate most unauthentic, unscientific idea. Poverty does not bring illness. It says poverty is illness. For instance, major cause of poverty is illness. Is it right? Or illness is because of poverty? You want to try to put the cart before the horse. You do not want to eradicate poverty, but you want to eradicate illness. This is a wrong concept, by which you cannot neither eradicate poverty nor you take care of illness. And in the name of
taking care of illness, you want to take credit, the Ayushman Bharat. What the Ayushman Bharat has done? Your claim that 80 crore of people has to be fed with the rice, 5 kg of rice, does it reflect your confidence in the country, economy, or it reflects your weakness? You want to take the credit out of nothing, and the President of India, unfortunately, was made to make these statements. Now can you see how we have destroyed the country, its eco-balance? You claim that our heritage connects to our roots. We Ajodhya Dham, so many dhams. But you do not mention that this Joshimath is sinking because of your unwise decision to construct roads for the purpose of pilgrimage and make it a pilgrim spot. And this sinking of Joshimath is another instance of reflection of your destroying the eco-balance of the country. This eco-balance of the country has to be maintained while you are making construction, not for the purpose of Hindu pilgrimage. Again, I find, you say that is the slave mentality. If the Rajpath is slave mentality, then what would be your discharge of duty to the people of country? You have to discharge Raja Dharma, which you do not do. And Kartavya Path means that you have decided what you will do, and that is reflected through the speeches. That is the Hindu nationalism. Against that, we have been fighting, and we invite all people to get together. Sir, the strength of a government, I will finish since you have given the bell. Strength of a government lies in its power to face the opposition. The strength of a government lies, if you are an honest government, you should not get scared of any investigation. Now, entire house is demanding JPC to have investigation on a particular corporate affairs. Why do you get scared of it? Sir, from your chair, you will direct the treasury bench that if you are honest, go for JPC, let there be an investigation, face it. Siri. Without this, sir, the presidential address would take us nothing, nowhere. Sri Anil Prasad Hegde. Chairman, sir, I rise to speak on the motion of thanks. First of all, on certain issues, I want to say the government's stated policies and actual actions are in contradiction to each other, sometimes to the point of serious conflict and not just divergence. सरकार का जनहित काम का प्रशंसा होना चाहिए, करेंगे भी. देश में कोई चीज सही नहीं चल रहा हो तो सुधारने के लिए भी सुझाव देंगे. प्रेसिडेंशियल एड्रेस सेज जल जीवन मिशन के तहत 3 वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं. इस बात के लिए सरकार बधाई का पात्र है, धन्यवाद देता हूं. वैसे 2015 में बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार आया था, उस समय जो 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर नल के जल के योजना बिहार में 2015 में जो लागू हुआ, इस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र स्तर पर एडॉप्ट किए. ये प्रशंसनीय बात है, लेकिन कुछ चीज में विरोधाभास है. राष्ट्रपति अभिभाषण में बताया गया कि मेरी सरकार के प्रयासों से खादी की बिक्री भी 4 गुना बढ़ी है. सभापति महोदय, आप जानते हैं खादी के मतलब हैंड स्पन एंड हैंड वोवन फैब्रिक, जो हाथ से कताई हुआ सूत से बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं, ये खादी होता है. देश में सभापति महोदय 5 स्लाइवर सरकार का 5 स्लाइवर प्लांट्स है. एक बिहार के हाजीपुर में है, एक यूपी के रायबरेली में है, एक मध्य प्रदेश के शोर में है, एक कर्नाटक का चित्रदुर्गा में है, एक केरल का त्रिशूर में है. केवीआईसी के अनुसार जो भी ऊनी और टेप्स जो सूत बनाने के लिए
जो कताई करने के लिए इसी स्लाइवर पैंट से खरीदने का जरूरी है। यहाँ पर ओपन मार्केट से ये ज्यादा महंगा है सर। खतीन बुनकर और इन लोगों को काम देने वाले स्थानीय संस्थाएं जो है, ये 3 से कोई एक नहीं होने से खादी कपड़ा नहीं बन सकता है। देश भर में कई प्रदेशों में यह 3 लोगों का हालत बहुत ही खराब है। खतीन लोगों को एक गुंडी खताई करने के लिए 7.5 रुपए दिया जाता है। मेरे विंटर सेशन में मेरा स्टार्ट क्वेश्चन के लिए सरकार ने उत्तर में ये बात को माना है और खताई के लिए खतीन को एक दिन में 10 से 12 गुंडी दिया जाता है और इसके मतलब अधिकतम 75 रुपए से 90 रुपए आमदनी है। लेकिन साल में अधिकांश खतीनों को मुश्किल से 100 से 150 दिन ही काम मिलता है। बुनकर का आमदनी भी न्यूनतम वेतन से कम है। इसके मतलब देश में अधिकांश खतीनों का आमदनी एक दिन में 40 रुपए से कम है। अधिकांश खादी संस्थाओं के पास ऊनी और टेप्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है। दिन प्रतिदिन खतीन और बुनकर का संख्या कम होते जा रहा है। जब खतीन और बुनकर कम होते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोडक्शन 4 गुना कैसे बढ़ा है। ऐसे हालत में 2-4 साल में के बाद खतीन और बुनकर दोनों नहीं रहेंगे, तब खादी कपड़ा किस चीज के लिए हम कहेंगे? इन द नियर फ्यूचर when spinners and weavers shall not be available, they'll not be left. What fabric shall be called khadi? दूसरी बात यह है कि KVIC द्वारा MMDA जो संशोधित बिक्री विपणन सहायता जो दिया जाता है, अधिकांश देश के अधिकांश जगह पे खतीन बुनकर और खादी संस्थाओं को जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक नहीं मिला है। Sir, as I said earlier, the government's stated policies and actual actions are in contradiction to each other. To illustrate my points, I want to give one more example. Sir, in the President's address says, आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। Sir, while the government is talking about promotion of organic and natural farming on the one hand, and has indeed set aside funds to like never before, it has also approved genetically modified mustard, which is herbicide tolerant. So whatever clever packaging the government might want to give to GM genetically modified mustard by denying that it is herbicide tolerant crop, the reality is that if farmers spray glufosinate on this GM mustard crop, it will tolerate the deadly chemical. Sir, this will increase toxic chemical usage in our farms and residues will increase in our food. This will affect lives and livelihoods of farmers, agricultural workers, beekeepers, honey exporters, as well as organic farmers. Sir, in the year 2009, when the then government gave approval to the BT brinjal, my party's Chief Minister, Mr. Nitish Kumar, realizing the environmental damage it is going to cause and also it is going to contaminate the desi seeds, he wrote to, my Chief Minister Nitish Kumar wrote to the then Environment Minister Jairam Ramesh. Sir, I congratulate Mr. Jairam Ramesh that listening to the opposition, immediately he held 7 public hearings in different parts of the country, and when he also realized the harm on that tomorrow, incidentally tomorrow being 9th February, on the 9th of February 2010, Jairam Ramesh ordered a moratorium on this. He listened to the opposition, sir. So the government has also not banned many bannable deadly pesticides in the country. It was way back in 2020 that the Registration Committee under the Insecticides Act 1968 recommended that
27 very hazardous pesticides be banned in India. There has been no action so far on these and other deadly chemicals. With each passing day of inaction, our environment and food chain is unnecessarily being subjected to hazards of these chemicals, while such pesticides are also causing acute poisoning and other toxicity to citizens. Sir, chemically propped up food fortification schemes are receiving massive support and promotion. There has been no initiative to support conservation and distribution of traditional varieties of seeds, which are not only nutritious but will provide adaptation capacity in the age of climate change and support the natural farming initiatives. I urge the government to look into this matter too. Sir, I have pointed out the contradictions. Sir, on the question of GM crops, Jairam Ramesh and the then UPA listened to Nitish Kumar and the opposition and the civil society. Today, on this issue, I urge the government at least to listen to your own organizations, the Bharatiya Kisan Sangh, who have protested at the Ramlila Maidan on this issue during the winter session, and the Swadeshi Jagran Manch. Sir, elections in Nagaland are going on. Nagaland in the 2018 election, the present ruling government, of which the BJP is a partner, had said the election for solution. So far, the solution has not come. Thank you. Shri Ghulam Ali maiden speech. Chairman sir, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और जम्मू कश्मीर के बारे में और देश के बारे में बहुत कुछ यहाँ डिस्कस हुआ है। देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के मोशन ऑफ थैंक्स पे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं बड़े ध्यान से स्पीचेस सीनियर जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं सुनता हूं, लेकिन दुख हुआ कल कि प्रेसिडेंट के लिए भी कुछ अल्फाज अच्छे नहीं इस्तेमाल हुए। थोड़ा दुख हुआ क्योंकि वही कम्युनिटी जानती है जिस ट्राइब से वो दे कैन फील फॉर देयर कम्युनिटी और एक फख्र महसूस करते हैं। जहां तक देश तभी चल पाता है जब देश की सुरक्षा जो है, सिक्योरिटी जो है, वो मजबूत हो और उन हाथों में हो जो देश की जो एक कन्विक्शन रखते हैं और एक मजबूती के साथ इस अर्थ पे इस भारत को एक मजबूत ताकत की एक नियत रखते हैं। कई बार पिछले 30 सालों में जो कश्मीर में जो पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की को मार्टियर्स किया हो या सिविलियन का कत्ल हुआ हो, लेकिन हमारे देश की जो लीडरशिप थी उसका खून नहीं उबलता था। और पिछले आपने पुलवामा अटैक पे देखा होगा कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के अटैक करा और देश की जो वजूद है और जो सिक्योरिटी है और उसको करारा जवाब दिया।
यहां LOC से LAC की बात हुई प्रेसिडेंट के एड्रेस में। ये LOC भी हमारी क्रिएटेड है, जो सत्ता थी यहां देश में, कुछ चंद फैमिलियों को सत्ता सौंप के और यूनिलैटरली सीज फायर करके पाकिस्तान को इलाका दे दिया, और हमारे लिए आज भी नसूर बना हुआ है। और यही नहीं हुआ, जो हमारे जम्मू कश्मीर में अपने लोग थे, जो महाराजा हरि सिंह जी, जो एक रिफॉर्मर किंग माने गए हैं, जिन्होंने फोर्स लेबर को खत्म करा, अनटचेबिलिटी को खत्म करा, 70 साल उस समाज को इज्जत नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में सरकार बनी और उनका स्टैचू जम्मू में महाराजा हरि सिंह का लगा। कश्मीर का गरीब कश्मीरी हो या वहां की तीसरी बड़ी कम्युनिटी गुर्जर कम्युनिटी हो, इन्होंने इंटेंशनली पीओके को इसलिए यूनिलैटरल सीज फायर करा था कि अगर ये कम्युनिटी इधर रहेगी तो कुछ फैमिलीज को जिनको लॉन्च करा था उनकी कभी हुकूमत नहीं बन पाएगी। पहली बार देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ललकार रैली, जम्मू में एक बहुत बड़ी सलाब रैली हुई, उसमें हजारों की तादाद में मुस्लिम समाज ने शिरकत की। वहां उन्होंने कमिटमेंट करी थी कि जिन कम्युनिटीज को 70 साल पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा गया, अगर मैं देश का वजीर आजम बनूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनको पॉलिटिकल एम्पावर करूंगा। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बनते ही वहां पंचायत में रिजर्वेशन दिया, वहां ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स में, वहां ऑनरेबल चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स का कंसेप्ट ही नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करते थे हम, 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं करा। और वहां डीडीसी और पूरी रिजर्वेशन, जिस समाज ने सोचा नहीं तक नहीं था, उसको भी, वो भी जिला परिषद के डीडीसी के चेयरमैन जिलों में बने। ये नरेंद्र मोदी जी के होते ही मुमकिन हो सकता है। आज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अपना लास्ट उसमें है, बुखलाट में। आज नहीं, कभी स्टिकी बम लेके आता है, कभी टनल निकालता है, कभी ड्रोन से हमारे इलाके में हथियार फेंकता है। लेकिन आज मिलिटेंट की, टेररिस्ट की उम्र जो है, जो क्वेश्चन उठाते हैं वहां नॉर्मलसी नहीं है, इनकी आंखों से दिखता नहीं है। आप टेररिस्ट का एज को देखिए कि वो कितना जल्दी न्यूट्रलाइज होता है। इसी का नाम कन्विक्शन है, इसी का नाम नरेंद्र मोदी है। यहां बात ट्रिपल तलाक की सुन रहा था मैं।
देश में जो जिन पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही हैं, कम से कम इशू को पढ़ लेना चाहिए। कुरान की जो बेसिक टेनेट्स है उसके ऊपर पूरा कंसल्ट करके 3 महीने का जो तलाक का टाइम होता है वो नरेंद्र मोदी जी के टाइम में ही हो सकता है। लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज जिनका वोट बैंक मिनॉरिटीज हैं वो उनको डराती हैं। हमें डराना नहीं चाहिए। आज खुली फजा में, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज नॉलेज का हब है। आज हमें उनको खुली फजा में छोड़ना चाहिए। और देश का वजीर आजम ही है जो पूरी नरेंद्र मोदी जी हैदराबाद की वर्किंग कमेटी हो या अभी रिसेंट वर्किंग कमेटी हो, उसमें पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, उनकी तरक्की की बात करते हैं। मुझे चेयरमैन साहब, मुझे एक लास्ट राइट्स में 40वां होता है, मुझे रिमोट इलाके पुंछ में एक 40वें में जाने का मौका मिला। मैंने देखा वहां इस्लाम में डिफरेंट सेक्ट्स के, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सभी सेक्ट्स के लोग थे। अपना अपना फेथ है, फेथ और ऊपर वाले के बीच में लिंक है। तो मैं वहां गया अटेंड करने, तो एक बहुत बड़ा आलिम वो उठ के बोला कि 70 साल में जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के आलिम नहीं कर पाए वो नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के मसले में करा। ये मैंने उनका सुना। अभी हम G20 को होस्ट कर रहे हैं। आज G20 में बाजरा, नरेंद्र मोदी जी का दिमाग देखिए, बाजरा गरीब की फसल, तो उसका भी दाम बढ़े। आज बाजरा को एक फेस्टिवल, और बाजरे की इतनी वैरायटी, और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक होस्ट नहीं है, ये हम डिप्लोमेटिकली नहीं, ये हम नुमाइश करेंगे अपने कल्चर की और पोटेंशियल की नुमाइश करेंगे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, पूरे देश का जो हमारा पोटेंशियल है और जो हमारा कल्चर है उसकी हम नुमाइश करेंगे, और देश के हर बड़े शहर में अपने कल्चर से उनको वाकिफ करवाएंगे। आपको डाइजेस्ट होगा क्या? कल तो डाइजेस्ट हुआ नहीं। वर्ल्ड में जो हमारा एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फोरम है, हमारे उसमें से है, वो नरेंद्र मोदी जी के होते हुए मुमकिन है। टेररिज्म पे इंटरनेशनल फोरम पे हमारा जो स्टैंड है, आज पूरी दुनिया को हमने रागिब करा है, मजबूर करा है। हमारा आज जो से है इंटरनेशनल फोरम है, ये बातें भी हमें अपने जहन में लानी चाहिए और अपनी अनक के शीशे को धोना चाहिए, ताकि ये वाली बातें भी दिखें कि हम कॉलर खड़ा करके आज बोलते हैं आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी। पूरी दुनिया में आज हम बोलते हैं। कल तक हम शर्म करते थे, हमारा मुल्क मजबूर सा दिखता था, गरीब, लेकिन आज हम फख्र से बोलते हैं आई एम इंडियन। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस को कभी हुआ कि देश भारत आज इंटरनेशनल फोरम को रेलेवेंस को क्वेश्चन करता है, उनकी एफिकेसी को। आज लोग भारत की तरफ उम्मीद से देखते हैं। कोविड में हमने, चेयरमैन सर, कोविड में
हमने कितने देशों को हमने इंजेक्शन दिया फ्री। आज लोग हमारी तरफ उम्मीद से देखते हैं। डिजास्टर के अभी टर्की में, सीरिया में सानिया हो गया, देश के वजीर आजम ने तुरंत वहां वो रिलीफ के लिए जहाज भेजे। आज विदेश में जो हमारे इंडियन हैं, पहले सोचते थे मैं अरब में चला जाऊं, यूरोप में चला जाऊं, कनाडा में चला जाऊं, लेकिन आज हम सोचते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं कि भारत की किसी सिटी में मैं जाके अपना घर बनाऊं। पॉजिटिव नैरेटिव भी हमें दिखाना चाहिए, मेरा ये मानना है। देश का वजीर आजम, हम जिसको बड़ी छोटी बात समझते हैं, परीक्षा पे चर्चा, मतलब स्टूडेंट का एग्जाम पे स्ट्रेस के बारे में देश का वजीर आजम सोचता है। एग्जाम्स को बोलते हैं कि फेस्टिवल्स की तरह हमें सोचना चाहिए, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम डिलीवर कर सके, हम स्ट्रेस में ना आ जाएं। और छोटी छोटी बातें उसमें 25-30 बातें बताई स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, आम नागरिक के लिए। चेयरमैन सर, कि हमें अपने साथ कंपीट करना चाहिए। जब हम दूसरे से कंपीट कर रहे होते हैं, कई बार हम अच्छे नहीं कर पाते, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने से कंपीट करेंगे, हम रिफॉर्म करेंगे, हम अपनी गलतियों का सुधार करेंगे। ये छोटी छोटी बातें, पिछले ही दिनों पूरे देश में इसका किताब का इनॉग्रेशन हुआ। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, उसमें ये छोटी छोटी बातें, रेस्ट, स्लीप, के बच्चे कैसे खेलें, देश का वजीर आजम इन सब चीजों की चिंता करता है। सर, करप्शन मैंने सुना नसूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट कभी हमारे देश के सरपंच ने ये सोचा था कि जितना पैसा दिल्ली से आएगा उतना ही उसके अकाउंट में जाएगा। वो पहले वीडियो एसीडी डायरेक्टर के चक्कर लगाता था, कमीशन देता था। ये ट्रांसपेरेंसी है, ये डिजिटल जमाना है। कभी हमने सोचा था कि हमने सोचा था अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। फर्स्ट 16 minutes. मैं स्टूडेंट हूं सर। Okay, one more minute. 16 minutes are over. One more minute. Normal practice is 15 minutes. Round up 1 minute. You have made very impactful. It's a very impactful address. सर 10 One more पेज, minute. 2-3 पेज हुआ। Round up. सर बात यह नहीं है कि भाषण कहां भेजना है, बात यह है कि हमारी नीयत साफ है। हमें देश के वजीर आजम ने उस कम्युनिटी से लाया जो आपको 70 साल नहीं दिखी, और उसको आपने सिर्फ वोट बैंक इस्तेमाल करा। बात यह है। बिगेस्ट अचीवमेंट यह है सर कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस हर भारतीय का बढ़ा है, और यहां बहुत सारी बातें करी गई। अब मैं कहां से शुरू करूं? बहुत सारी बातें करी गई। अब तो वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। अंत करने का समय आया है। सर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सर पूरे देश में लैंड टू टिलर्स, लैंड रिफॉर्म्स का ढिंडोरा फेंटा। हमने लैंड रिफॉर्म्स करे जम्मू कश्मीर में। सर एक आदमी को 70 साल में मालिकाना हक नहीं दिए, सभी स्टेट लैंड, और वोट लेते रहे। हम देने जा रहे हैं, हमने अभी अनाउंस करा है, हम देंगे, हम ही देंगे।
सर इन्होंने वोट लिया और जमीनें डेवलपमेंट अथॉरिटीज में डाली, हमने अस्पताल बनाए वहां, 2 एम्स सोच सकता है। जम्मू जैसे सिटी में एम्स, IIT, IIM, अरे ट्राइबल को 9 सीटें रिजर्व है, टेररिज्म में इतना ग्राफ लो। ऑनरेबल मेंबर प्लीज कंक्लूड। सबसे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा तो ये मेरे लेक्चर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मेरी स्पीच के साथ जो थैंक्स मैं कर रहा हूं, 370 का नुकसान ये था कि वहां के कश्मीर के गरीब नौजवान के मैं डबल माइंड पैदा होता था, सुविधा में रहता था सर। आज वो देश की सोचता है, आज वहां रात को फ्लाइट चलती है। श्री रामदास अठावले। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, हमने भी आज शेर शायरी की है। आदरणीय चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मजबूत करेगा भारत नेशन। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। यस। मोदी जी को विकास की है आस, मोदी जी को विकास की है आस, इसलिए राजनीति में हो गए हैं पास। कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, इसलिए राजनीति में हो रहे हैं नापास। तो आज यहाँ माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और कांग्रेस वालों का और अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मतलब वो रोज वेल में आ रहे थे। ये तो मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण ये है मोदी सरकार के विकास की गंगा। काय के लिए लेते हो उनके साथ पंगा? तो दंगा छोड़कर आपने इस चर्चा में भाग लिया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अपोजिशन का आभार व्यक्त करता हूँ और यही आशा व्यक्त करता हूँ कि आप हमेशा उधर ही रहेंगे और हम इधर ही रहेंगे। तो मतलब आप टीका करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए आवश्यकता है तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो है पॉइंट टू पॉइंट था। सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है, अल्पसंख्यक है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। मोदी सरकार ने जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मेमोरियल है, कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार हराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोकसभा में आने का मौका नहीं दिया था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का 125वां जन्म दिवस नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं था, जब वीपी सिंह जी थे तब उन्होंने वो फोटो लगाया। कांग्रेस पार्टी को उसकी भी जानकारी नहीं थी कि भाई बाबा साहब का फोटो जी सेंट्रल हॉल में बैठकर बाबा साहब ने संविधान लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते रात रात जागकर 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब अम्बेडकर काम करते रहे और मतलब ये काम
जयराम रमेश जी, ये काम आपने करना चाहिए था, लेकिन ठीक है ना, आपने किया। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में आपने लाया, लेकिन उसके पहले 2 बार बाबा साहब को हराया। मुझे भी शिरडी में हराया, इसलिए मैं छोड़कर इधर आ गया। मुझे भी शिरडी ने आप लोगों ने हराया, तो इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए संविधान बदलेंगे। ये बोलते हैं कि भाई संविधान बदलेंगे, कैसा बदलेंगे? हमने तो कांग्रेस को बदला है, संविधान क्यों बदलेंगे? संविधान बदलने का विषय नहीं है। जिस मोदी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में संविधान को माथा टेक कर उन्होंने शपथ ले ली है कि बाबा साहब के संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, सबका साथ सबका विकास, इसलिए दिख रहा है यहाँ अच्छा प्रकाश। तो मतलब मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की भूमिका रखी है, और आप चल रहे भारत जोड़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान ने भारत को जोड़ ही दिया है। झगड़े होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। यहाँ कोई पाकिस्तान का संविधान हमारा तो नहीं है। यहाँ कुछ भी हो जाएगा, लेकिन देश टूटेगा नहीं। जम्मू कश्मीर भी हमारा है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि 370 को हटाया है। पहले हमने कांग्रेस को हटाया, फिर 370 को हटाया। तो इसीलिए मतलब हटाने का विषय तो नहीं है। तो इसीलिए मतलब सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी मतलब हमारी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति जो है पहली बार बनाया। मतलब शेड्यूल कास्ट का जो राष्ट्रपति है नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया। तो इसीलिए मतलब ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, तो इसका सपोर्ट करने के लिए जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से इस अभिभाषण का सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये अभिभाषण जो है, ये अभिभाषण देश के विकास को आगे ले जाने वाला है। हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है, और भारत नरेंद्र मोदी ने जोड़ दिया है। आप लोगों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों के साथ मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। Thank you, Chairman sir. Since I belong to Assam, a lone voice of opposition from Northeast region, in this upper house, I will not speak on major concern of inflation and unemployment gripping across the nation, as my learned colleagues have already enlightened. And there is a time factor is also there. So I will like to continue myself on the specific concerns of the Northeast region. As I was listening very first joint session presidential speech of Mahamahim Drupadi Murmu, I had a very high expectation that she would dwell ethnic diversity of the Northeast region and its complexity. Sir, Assam was a single unit of governance except Tripura and Manipur when India got independence in 1947. And it was very rightly debated in the Constituent Assembly that ethnic diversity of the region would be protected, and even the small tribes and their identity and culture would be protected in post-independence era. The tribal community of the Northeast region had hope that their identity and culture would be protected under the guidance of Mahamahim, who is herself a tribal. Sir, very sorry to say that now tribals are facing in Assam illegal eviction. The insurgency and conflict in the region have been the product of not addressing the core issue of ethnic diversity, and the people of the region had developed some hope when the Prime Minister told the nation that the long-awaited Naga conflict was resolved when the government of India
inked the framework agreement in August 2015. The President's speech did not reflect any concern on the Naga conflict. Sir, of course, some development projects have been initiated, but it is not mercy, but very legitimate right of the Northeast region. However, peace and development of the region will be sustainable when the government of India addresses the very core issue. Sir, please allow me to highlight the very promise of the Prime Minister Narendra Modi, who assured the 6 communities of Assam to be given the special scheduled tribe status, and almost the second tenure of the government is coming to end, but no such intent has been reflected on the presidential speech. Sir, a high-level committee headed by the retired Justice of the Guwahati High Court was formed by the Home Ministry in July 2019. Just to examine the effectiveness of actions taken since 1985 to implement Clause 6 of the Assam Accord and to suggest and recommend measures as may be necessary to protect, preserve, and promote cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. So the committee has submitted its report in February 2020. This report has not been released so far. Nothing has been mentioned in the presidential speech for the indigenous people of Assam. Sir, during the general election in 2014, Narendra Modi promised in a public meeting in Assam that within 100 days, every problem of Assam will be solved. But nothing has been solved so far. Sir, I fail to understand the 2 powerful cabinet ministers who themselves are tribal and belong to the region are not pursuing the concerns of the tribal. Have they become voiceless or scared of the mighty notion of the duo Narendra Modi and Amit Shah? Sir, the region is represented by 39 MPs of both houses, which is bigger than Gujarat representation. It is always claimed that the Prime Minister has been visiting the region very often. Oh look, 40 times bolte rehte hai. But can we say that Modi has the same concern as he has for Gujarat? Sir, I have no intent to frame him for Gujarat bias, but there certainly mere visit should not be the parameter of concern, but fruitful initiative in the interest of the region. Yes, here I will like to appreciate the former Prime Minister Dr. Manmohan Singh for his novel initiative of development of the region, though he was not frequently visiting the region. Sir, now projects are being inaugurated, as our leader of the opposition has rightly said. Those projects were initiated by Dr. Manmohan Singh, and now they have simply inaugurated these projects. Sir, I will conclude by the famous say that the human being is not known by physical appearance, but honestly conceived intent of idea than action. Thank you, sir. Shri Vivek Thakur. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की इस चर्चा में मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। सभापति महोदय, मेरे मित्र मनोज जी अभी कह रहे थे कि वो इस बात से बहुत चिंतित हैं कि 1 वर्ष को क्यों चर्चाओं में इतना महत्व दिया जा रहा है 2014 को।
मुझे लगता है सभापति महोदय कि काश महाभारत के संजय अगर 2014 में अगर जिंदा होते तो उनका वर्णन क्या होता उससे पहले के कालखंड का, और ये वही सही जवाब जो है मिल जाता कि क्यों 2014 का महत्व है। क्या बोलते संजय अगर पूछा जाता कि भारत कैसा दिख रहा है, तो शायद ये इसके अलावा और कुछ बोल नहीं पाते कि पूर्वोत्तर में आग लगी हुई है, कश्मीर जल रहा है, बंबई में आतंकी घुसे हुए हैं, लोगों को मारते जा रहे हैं, पूरा देश लाइव उस चीज को टीवी पे देख रहा है। सरकार की अनुमति नहीं है, दुश्मन पता है कि पलटवार करे, फौज हतोत्साहित बैठा हुआ है। नौजवान आशा की सब किरण भूल चुका है। इंडिया इज ऑलमोस्ट अ लैंड ऑफ नो अपॉर्चुनिटी। और वहां से एक सोए हुए भारत को संगठित करते हुए दोनों हाथ उठा के कर्तव्य पथ पे दौड़ाते हुए विजय पथ की यात्रा पे 2014 के बाद भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री लेके चले हैं। ये महत्व है 2014 का। सभापति महोदय, हमारी सरकार के ये 9 वर्ष गरीब, किसान, दलित, आदिवासियों, वंचितों, पिछड़ों और ग्रामीण भारत की सशक्तिकरण के 9 वर्ष रहे। और मुझे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि 9 साल उपलब्धियां रही बेमिसाल। पिछले वर्ष बिहार में मैं जब गांव में भ्रमण के दौरान कुछ ग्रामीणों से पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, तो ग्रामीण ने एक ही लाइन में जवाब दिया, विपक्ष के 60 पर भारी, मोदी जी के 8। सभापति महोदय, जिस प्रकार नवरात्र में 9 देवियां 9 शक्तियों की प्रतीक होती है, उसी प्रकार हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 9 शक्तियों के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त करने का काम किया। और यही 9 शक्तियां हैं जो भारत को इस अमृत काल में प्रवेश करने में सहायता की। इनका विवरण संक्षिप्त में करना चाहूंगा। ये 9 शक्तियां हैं कृषि शक्ति, आदिवासी शक्ति, जल शक्ति, राष्ट्र शक्ति, व्यापार शक्ति, स्वास्थ्य शक्ति, नारी शक्ति, गति शक्ति, विद्या शक्ति। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और ये तभी संभव हो पाया है जब हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आधारभूत अवसंरचना और ग्रामीण भारत के विकास और कल्याण के लिए निरंतर कदम उठाए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी कहा था, The progress of the country lies in the development of the rural villages, rural economy and rural skills. और रूरल इकोनॉमी का विकास तभी संभव है जब हम अपनी कृषि शक्ति का पूर्णतः उपयोग करेंगे और अपने किसानों को समृद्ध बनाएंगे और सहयोग करेंगे नीतियों से, न कि बातों से। सभापति महोदय, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसान मजदूर शब्द और उनके भावनाओं से राजनीति में जितना दुरुपयोग और छेड़छाड़ हुआ है, उतना शायद ही किसी शब्द का आज तक हुआ हो। अगर ये शब्द को वोकैबुलरी से अगर हटा दिया जाए तो शायद मेरे समाजवादी और वामपंथी दोस्त जो है बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे, कहां से शुरू करें, कहां से आरंभ करें। लेकिन पहली बार ये एक ऐसी सरकार आई जो कि शांत जुबान बंद किसान को, मजदूर को, गरीब के बारे में उनके भावनाओं को समझने की कोशिश की और यह एहसास किया कि किसान को भी सीधे मदद की जरूरत। इस क्रम में हमारे सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की और 4 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं सभापति महोदय। इस योजना में 2.24 लाख करोड़ रुपए भारतीय किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं और जिसमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए कोविड महामारी के दौरान दिया गया और लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ अभी तक पहुंचाया जा चुका। सभापति महोदय, कृषि शक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये सामान्य बात नहीं है। जब नेशनल लॉकडाउन लगा था तो बड़ा शोर मचा कि जो रोज कमा के खाते हैं लाखों की संख्या में मर जाएंगे।
एक व्यक्ति नहीं भूखे मरा इस देश में, एक व्यक्ति नहीं मरा। और 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज तब से देते देते आज उसको एक सिक्योर्ड आबादी के रूप में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमारी सरकार जो है निरंतर उनको मुफ्त राशन दिए जा रही है। और सभापति महोदय, नोटिस करने वाली ये बात है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया है कि यूएनडीपी के रिपोर्ट के हवाले के जरिए कि इन दोनों योजनाओं के कारण भारत की गरीबी में कमी की महत्ता को उसने स्वीकार किया। सभापति महोदय, विपक्ष के दोस्त हमारे पीएम सम्मान निधि के बारे में क्या क्या राय रखते रहे, इसलिए मैं आपको 2019 में जब ये योजना की शुरुआत हुई थी तब ले जाना चाहूंगा, जब देश के ज्ञानी पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता जो हमारे सदन के भी सदस्य हैं क्या कह बैठे थे। नथिंग कैन बी मोर शेमफुल इन अ डेमोक्रेसी देन ब्राइब फॉर वोट्स। अर्थात देश का मुख्य विपक्षी दल किसानों को रिश्वतखोर समझता है, रिश्वत देकर वोट देते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। और यही लोग कोविड-19 की महामारी के समय चिल्ला चिल्ला कर कहे कि गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाना पड़ेगा, पैसा पहुंचाना पड़ेगा। हमारी सरकार ने 1.73 लाख करोड़ रुपए कोविड-19 महामारी में सीधे जनता के हाथों में दिए और उन्हें यह योजना रिश्वतखोरी दिखाई देती है। लेकिन अब क्योंकि विदेशी संस्थाएं भारत की विस्तृत आकलन में इसकी तारीफ कर चुकी हैं, मुझे लगता है कि अब हमारे मित्र इसे अच्छा मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों को। अच्छा, हमारे संस्था पे उन्हें विश्वास ही नहीं है। एक और यूएनडीपी की रिपोर्ट का हवाला देना चाहूंगा। यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट में वर्ष 2005 और 6 में जिक्र है कि 65 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे थे और आज 2019 से 21 में यह संख्या 23 करोड़ तक पहुंच गई। अर्थात भारत ने 41.5 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। गरीब के जीवन में मूलचूक सुधार के पीछे हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। और जो लोग किसानों की आय को दोगुना करने का मजाक उड़ाते हैं, उनको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के 9 वर्ष के दौरान पर कैपिटा इनकम दोगुना होकर 1.97 लाख रुपया हो गया है। अर्थात हमारी सरकार ने लोगों को, विशेषकर किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभापति महोदय, ग्रामीण भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति आदिवासी शक्ति पर आता हूं। पिछले 9 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने आदिवासी शक्ति के माध्यम से देश को बहुत मजबूती प्रदान करने का काम किया। जब ग्रामीण विकास की बात हो, आदिवासियों, दलितों, वंचितों की बात पर देश के विभूति स्वर्गीय नानाजी देशमुख का उल्लेख न हो तो यह बात अनुचित होगी। उन्होंने कहा था कि हम अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हैं। और अपने वो हैं जो सदियों से पिछड़े, वंचित और उपेक्षित हैं। इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कर 36,000 आदिवासी एवं जनजाति गांवों के कल्याण का मार्ग खोला है तथा इस बजट में सर्वाधिक उपेक्षित घुमंतु जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ की धनराशि के साथ PMPVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप योजना की शुरुआत भी। सभापति महोदय, जनजाति समुदाय को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है और इसलिए हमारी सरकार 689 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम भी कर रही है। इसी बीच में सभापति महोदय, गरीब किसान की पीड़ा को समझते समय मुझे लगा कि गुलजार साहब की 2 पंक्तियां यहां पर जरूर रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा, अब लिखा है इनफैक्ट, खबर सबको थी कच्चे मकान, खबर सबको थी कच्चे मकान की, फिर भी लोगों ने दुआ में बरसात ही मांगी। गरीब किसान की पीड़ा समझिए। एक तरफ वह बरसात भी मांग रहा है, लेकिन एक तरफ वह यह भी सोचता है कि बरसात का महीना किसी तरह निकल जाए और उसकी छत न गिरे। इस भाव को हमारी सरकार ने समझा, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 280.53 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और जिसमें लगभग 97 लाख मकान आदिवासी एवं दलित परिवारों को दिए गए। सभापति महोदय,
हमारे विपक्ष को हमारे बातों पर भरोसा तो है नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का एक अध्ययन मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने यह पाया कि न केवल लोगों को पक्का मकान मिला, बल्कि योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी उच्च गुणवत्ता के थे, जो अपने आप में इस योजना की सार्थकता को सिद्ध करता है। सभापति महोदय, क्योंकि दलितों, वंचितों, किसानों, आदिवासियों की बात हो रही है और मैं बिहार के दो महान विभूति, अभी तक के देश के सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का उल्लेख न करूं, यह अनुचित होगा। जिस प्रकार देश का सबसे बड़ा किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो निरंतर छोटे किसान, दलित, वंचित, मजदूर के लिए संघर्षरत रहे, उनको देखते हुए राष्ट्र कवि दिनकर ने उन्हें दलितों का सन्यासी की संज्ञा दी थी। और आज इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी आधुनिक भारत के दलितों के सन्यासी। सभापति महोदय, मैं दिनकर जी के ही शब्दों में कहना चाहूंगा जो उन्होंने स्वामी जी के बारे में कहा, और आज के आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पे भी बड़ा सटीक बैठता है। वो आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वो आया जैसे जल ऊपर आए फूल कमल का, वह आया भू पर आए ज्यों सौरभ नवमंडल का, लोक भाव अंजलि ले सबके लिए कल्याण, आया है वह कि जो गति से धीर हीर गुणवान, आया है जैसे सावन के आते मेघ गगन में, आया है जैसे आता कभी सन्यासी मधुबन में, हवन पूत कर में सुदंड ले मुंडित भाल विरागी, आया है नफपत दिखलाने दलितों का सन्यासी। प्रधानमंत्री दलितों के सन्यासी इसलिए भी हैं क्योंकि एक तरफ वह प्रयागराज कुंभ में सफाई कर्मियों के पांव धोते हैं और वहीं दूसरी ओर मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने हेतु मशीन से मैनहोल की सफाई हेतु योजना की शुरुआत भी करते हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत के दलितों का सन्यासी करने में तनिक भी संशय नहीं रखना चाहिए और ना है। सभापति महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा संसद में मनरेगा पर दिए गए बयान का स्मरण कराना। बड़ा चर्चा चल रहा है जब से यह बजट आया है मनरेगा पे, और जो सबसे, और ये भी बोला जाता है कि पत्रकार ये नहीं लिखते वो नहीं लिखते, और जो एक अद्भुत डेटा है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मनरेगा में हमने क्या चेंज किया, और उसको लेकर जो डेटा है मैं प्रस्तुत करता हूं। 2014 में जब हम जब तक इनकी सरकार थी, मनरेगा के तहत केवल 17.6% एसेट क्रिएशन हुआ था, और जबकि हमारी सरकार आने के बाद जो दिशा विहीन तरीके से चल रहा था उसे हमने ऑर्गेनाइज किया, और उसी का परिणाम है कि इस कालखंड में 61.2%, 61.2% एसेट क्रिएशन हुआ है मनरेगा के माध्यम से। फर्क साफ है। सभापति महोदय, ग्रामीण भारत की तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है जल शक्ति। स्वच्छ जल का क्या महत्व है आप उस महिला से पूछिए जो कई मीलों चलकर अपने परिवार के लिए पानी लेकर आती है। एक बड़ा अच्छा वाक्य है जो अमेरिकन पोएट और राइटर थे लूसी लार्कॉम, उन्होंने कहा है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इफ इट कुड राइट आउट इट्स ओन हिस्ट्री वुड एक्सप्लेन द यूनिवर्स टू अस। प्रधानमंत्री जी स्वयं ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री थे जहां शुद्ध पेयजल की बहुत गंभीर समस्या थी। उस समस्या का भी हल निकाला, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया, और जब प्रधानमंत्री बने तो इस योजना को संपूर्ण देश में भी लागू किया। सभापति महोदय, जल की व्यवस्था के साथ साथ जो स्वच्छता और शौच की बात जब लाल किले से हुआ तब हमारे विपक्षियों ने मजाक उड़ाया, परंतु दूरदृष्टि इन्हें समझ ही नहीं आया। हमारी सरकार ने 10.9 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी किया। किसान से बेहतर जल की कीमत कोई क्या समझे। सिंचाई का पानी किसानों को खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की, और 37% हिस्सा जो सिंचाई का था
आज उसका आंकड़ा बढ़कर 49% हो गया है। हर घर नल से जल और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास में हमारी सरकार थैंक यू महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विषय तो काफी है सभापति महोदय, लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्रकवि दिनकर ने जो कहा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का स्वागत और समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल 10 minutes. 10 minutes. Only 50. Minus interruption. 10 minutes. 10 minutes. The beautiful slogan all over India, Sabka Saath, Sabka Vikas. And of course, 2014, before 14 itself, Acha Din Aayega ka nara bhi aa gaya. Now, what the country is witnessing is quite totally in a different way. Sabka Saath Vikas nahi hai. Only 2-3% are getting vikas. Yes. Sir, we are on the greatest moment of this country. Through Bharat Jodo Yatra. We walked from Kanyakumari to Kashmir. Beyond political limit, beyond caste and community limits, people of India, young people of India, farmers of India came to the Yatra. They raised their concern to our leader Rahul Gandhi. Sir, see the plight of the youth of the country now. Morning, leader of opposition already raised 2 crore per year promised by this government. Wherever we went through the yatra, we can hear the pain and agony. We can witness the pain and agony of the young people of this country. They are not getting job. They are totally in distress. Now, what is the priority of this government to address that concern? Now, actually, last 3 days before budget has been presented, you see that 30,000 cut on Manrega, which is the largest employment generation project of this country. Yes. We have a pain, sir. The brainchild, this is the brainchild of Srimati Sonia Gandhi and then UPA government. Manrega, one of the most, once Modi ji told about this is the memorial of the corruption of UPA government, then he himself corrected that. Yes. Now, during the COVID, we saw that how much contribution Manrega has given to the public there. But your priority like that. Entire people of this country is asking for job. You are cutting the provision in Manrega. This is what the priority of this government. Sir, we are talking about the freedom of expression. Kagiji, Honorable LOP already mentioned about that. BBC documentary. It is defamatory. That is what the government sources are telling. Are you stopping entire defamatory statements every day and night? When we are witnessing some of your privileged channels, most preferred channels, Hindu, Muslim, every day they are creating venoms in this country. Are you stopping it? Sir, I have a document of that Jamia incident was happened. Unfortunate incident was happened. Delhi police arrested so many people. Finally,
Delhi police had alleged that they were involved in committing offences such as rioting and unlawful assembly during the violence and ensured the university in 2019. Jamia University. In his detailed order on Sakir Court, Judge Verma heavily criticized the Delhi police for filing an ill-conceived charge sheet and added that their case was devoid of irrefragable evidence. Not only that, he added that the police have arbitrarily chosen to make some people from crowd as accused and others as police witness. This cherry picking was detrimental to the perception of fairness. One more thing is Justice Ormai saying, dissent is an extension of the inviolable fundamental right to freedom of speech and expression, which was a right that the court we are sworn to uphold. Sir, you are one-sided. The government is trying to stop entire voices of the dissent. On the other side, when BBC documentary, which Modi ji, when he was the chief minister, just now I am remembering, he narrated BBC is the most credible media in the world. Yes, 2013. Yes. In 2013, I have a video. If you want that evidence, I will prove. I will authenticate it. As per our Prime Minister, BBC is the most. Prime Minister told, don't believe the Indian media. Don't believe Indian media. Only believe in BBC. Yes. You are now asking that BBC documentary is totally discreditable. How can we agree, sir? I have a point of... You are only given time to me. You are to... Yes. What is the point of order, sir? Sir, rule 238. Rule 238. What is that rule? Sub rule 1. सर, हम सब लोग राइट टू एक्सप्रेशन को आर्टिकल 19 को मानते हैं, पर हाउस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 118 से चलता है। उसके अंतर्गत राज्यसभा में जो रूल बने हैं, रूल 238 सब रूल 1 है, वो ये कहता है रेफर टू एनी मैटर ऑफ फैक्शन विच अ जुडिशियल डिसीजन इज पेंडिंग। हम ये कह रहे हैं कि पहले भी जुडिशियल डिसीजन, अभी भी वो जुडिशियल डिसीजन के लिए पेंडिंग है। एनी मैटर विच इज पेंडिंग फॉर जुडिशियल डिसीजन, जो डॉक्यूमेंट्री का विषय ये कह रहे हैं, जिसके मेरिट को ये कह रहे हैं, वो सब्जेक्ट टू द पेंडेंसी ऑफ जुडिशियल डिसीजन है। रेस्ट अपॉन यू। Sir, my point is only that he's authenticating. Whenever you are talking about some discreditable media houses, you have to be neutral on what is happening in the Indian media. If some media is okay with you, some of the media is not okay with you. So it is very, very evident nowadays. If morning we discuss about this, somebody is talking some freely about some incidents, next day he will get a call if it is not in favor of the government. So this type of things the government is doing, that is what I want to mention. Sir, last 3-4 days, we are debating on a single subject before you, sir, for a JPC inquiry. Why we have witnessed so many this type of demand in this house? This house has a greatest tradition. That house also a greatest tradition. Whenever this type of big scam has been raised in the public domain, it is the right of the parliamentarian to ask an inquiry from the government. Yes. If the government is not need to hide any truths, they used to come forward for an inquiry. In UPA time, how many inquiry, JPC inquiry we have done? My simple question is that is what we are asking. Why you are running away from the JPC? Yes. Therefore, that
there something is there somewhere. Digvijay ji yesterday asked, how can a man suddenly jump this much income without the government support? Sir, I came this house in 2021. 2021, I got an opportunity to speak on aircraft maintenance, Aircraft Amendment Bill 2020. During that bill discussion, raised 2-3 questions, which I didn't go to reply on that day. With your permission, I would like to ask that question again. Thus, Adani has given 6 airports. In 2019, government awarded Adani Group the right to purchase 6 Mr. Venugopal, you say Adani has been given 6 airports. What does that mean? No, public, because No. Private taste is not airport. I mean, out of 6 airports, 5 airports are profit-making airports. 5 profit-making. One second. Take your seat. You have been heard by everyone, rapt attention. I want everyone to be heard like this. And therefore, you will take note of what I am saying. Yes. If on the floor of this house, a statement is emanating from a senior member of the opposition that a particular industrialist has been given 6 airports, that is baffling for 2 reasons. One, our country is governed by law, and whoever gets something is out of evolution of a process. And therefore, to impart this impression that it is something which Mr. Venugopal has given to me or I have given to him, that is not the situation. I would therefore, one second. I would therefore seek further elucidation on this. How do you make such a statement? Sir, I am agreeing with you. Sir, I am so glad. It is after a long. One second. It is after a long time we have agreed with each other. After a very, very long gap. It should be more frequent. I mean that the government awarded 6 airports through process. But that process is not transparent at all. No. But that process is not transparent at all. That is what I want to say. Yes, that is why I am saying. One second. Okay. In our country, every process is open to participation in terms of terms and conditions, and it is evolved. Were you a participant? No. Were you a participant? Directly, indirectly? Were you a participant? No. Go ahead. You are the referee, you are the umpire. Sir, let me tell you, one second. No, let me tell Mr. Jairam Ramesh, what can referee do with a player like him? Such a difficult player who doesn't believe in the referee at all. Sir, I am being provoked by the umpire. What can I do, sir? Mr. Venugopal, please. Sir, 2019 government awarded 6 airports to a process. I think which is not at all. I'm only just making a suggestion. You may perhaps to check up who awards. Government. No. You'll have to check up. Yes. Okay. I'll tell you. Otherwise, it will be a situation very different. Go ahead. Sir. Go ahead. Okay, sir, no problem. Okay, Mr. Venugopal only. Please. Sir, I have told you, I am quoting from my old speech of this parliament itself. You can verify that. No, sir, you don't have to authenticate your speech. That's the PPP cell of the DEA. That point of time, I am pointing out. The PPP cell of the DEA recommended, since these 6 airport development projects are highly capital intensive, a clause should be incorporated that
not more than 2 airports would be awarded to a single bidder because of the high financial risks involved and the need for stringent adherence to performance indicators. This is not given by opposition. This is not given by Congress. This is given by PPP cell of the Union Government DA. Why it has been violated, sir? Why it wasn't violated? For whom it wasn't violated? Sir, they have cited the reasons also. The DA note also suggested that in that case, if there was a project failure, there would be other capable bidders available to take on the failed projects. This is why then next, the Niti Aayog specifically suggested that request for proposal should include criteria to measure the experience of the bidder in developing airport terminals and related sectors. If Adani had this type of experience earlier, I'm sure it must have been evaluated. No. You know better than I do. Sir, this not, you know. This part also by part. You know. Sir, they are citing an example. They are talking about the UPA period. They are in that report citing an example of UPA. And DA specifically mentioned that when private companies bid for the development of the airports in Delhi and Mumbai airports, the contract to develop both the airports were not given to the same bidder. They are citing that example. 12 minutes. These GMRs didn't get Mumbai and Delhi, or they only got Mumbai. Shri Abir Ranjan Viswas. Sir, therefore, this is very clear that this government is totally responsible for this. Therefore, they want to hide something. Government want to hide something. That is why they are not. Shri Abir Ranjan Viswas. Without JPC, the truth will not come out. Truth has to come out, sir. Shri Abir Ranjan Viswas. For giving me this opportunity. Sir, the TMC's position has been very clear. Thank you. Thank you, Chairman, sir, for giving me this opportunity, sir. The TMC's position has been very clear. We use the floor of Parliament to expose this government on multiple counts. Economic blockade of states, murdering federalism, weakening institutions like Parliament, PB, EDI, SEBI, the price rises, unemployment, the lack of communal harmony, and of course, scams of huge proportions that need to be inquired, sir. The immediate inquiry of the big scam, which is currently creating much furor, can happen in two different ways. Firstly, by a GPC, as many are suggesting. But sir, madam, I understand the weak nerve of the government. All the previous governments who had constituted JPCs have not come back. Maybe on that count, they are afraid they might not. On the second part, of course, we could have a Supreme Court monitored committee to conduct this inquiry in a time-bound manner. So we demand the second, of course, if the first one is touching the weak nerve of the government. It was said in the address of Mahamaya Rashtrapati ji, and I quote, "Today India has a government which is committed to removing every obstacle faced by women," unquote. Madam, crimes against women in India have increased by 15%. India registered 32,000 rape cases in 2021. Sadly, that is 86 cases of rape per day. I would like to remind this august house that Kolkata is the least crime-prone metropolitan city as per the latest NCRB records. Women's safety in Kolkata should be emulated by the rest of the country. Another statement in the address is, and I quote, "The digital network that India has built is source of inspiration even for developed countries." Madam, I would like to showcase the digital service delivery achieved by Bengal. The Bengal government recently received the Platinum Award from the Honorable President at the Digital India Awards for its flagship
scheme called Duare Sarkar, which literally means the government at your doorsteps. This was for excellence in design and implementation of a public digital platform. The initiative by the Mamata Banerjee government has widespread coverage. Duare Sarkar camps help people all over the state to get government services and accesses to various social welfare schemes, including the United Nations award-winning Kanyashri Prakolpo and the Students' Credit Card. In the address, Rashtrapati ji had said, from education to their career, my government is trying to remove all obstacles for daughters. Madam, I would like to say in this regard, the union government can take inspiration from the government of Bengal when it comes to education, especially for girls, and implement effective schemes like, as I said, the Kanyashri, that is a famous, even award-winning scheme, the Shobut Shati and so on. The Kanyashri scheme has benefited 78 lakh girl children in Bengal, and the Shobut Shati has provided cycles to more than 1 crore students in Bengal. In the address, there was nothing mentioned about youth employment, unemployment that is. Let me tell you all about the Juboshi scheme in Bengal. Under this scheme, 8 lakh youths have been registered to receive financial assistance. And further, the address said, and I quote, my government has awakened the aspirations of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, unquote. At the top 5 IITs and Indian Institute of Science, Bangalore, I would like to bring to the notice of the August House, 98% of professors and more than 90% of assistant and associate professors, they are from the privileged castes. In violation of the constitutional reservation mandates, in faculty position of 7.5% for scheduled castes, scheduled tribes and 15% for scheduled castes. That is what is the real picture. Madam, also, when it comes to the matter of scheduled castes and scheduled tribes, the government at a center could take a leaf out of the success diary of the Bengal government. I would like to mention there are multiple schemes for the benefit of SCs and STs and OBCs. About 8 lakh students from economically backward sections have received scholarships under the Swami Vivekananda Merit Cum Means scholarship program of the government. It was also another thing is that we have a Joy Bangla pension scheme in place. It is an umbrella of 2 schemes. Taposhili Bondhu and Joy Johar, where elderly senior citizens of these communities, they receive monthly pensions. Further, in a speech, Rashtrapati ji had said, the long-felt urge to be rid of scourge of mega scams and corruption in government schemes is now being realized. Is it true, madam? Let me tell you one example. In Meghalaya, the practice of coal mining was banned in 2014, but transportation was permitted till 2017. And further extensions were granted by the Supreme Court. They were also misused. Illegally mined coal is taken out of the state and then returned to Meghalaya with false documentation of coal originating in other states. Last December, re-verification of extracted coal before the ban on illegal mining of coal revealed that there are over 19 lakh metric tons of coal and not over 32 lakh metric tons of coal as stated by the government. In 2018, activists Agnes Kharsing and Amita Sangma faced a near fatal attack while they were on their back after lodging a complaint on illegal mining. It has been 5 years since, but where is the justice? I would also further like to mention, coming to the given situation, geopolitical situation, we know the 25% of current import of petroleum, that is the Russian crude, this comes at a very lower price, about average $48 to $52 per barrel. But when the prices rose to over 100 rupees of petrol, the international prices of crude per barrel were more than $120.
Currently, 25% of the import is of $40 to $52 per barrel. But how is this advantage? How is the benefit of this percolating to the poor? We only can say sabka saath, sabka vikas, but it should not remain as a jumla. If you want to have sabka vishwas also and sabka prayas, this benefit should percolate down to the people, as bringing down the oil prices will have ripple effect. It will bring down the prices of other commodities that are coming up due to transportation, and definitely the people at the lowest rung of society who are suffering from high price races will have the benefit. So things should not just remain as statements, that is jumla. Things should reflect in ground. We can have many things said, but one thing delivered will be much more than many things said. And I would like to conclude by saying that I would thank the Mahamaim Rashtrapati ji for her address. Having said that, inequality in gender, caste and class is far from becoming reality and needs to be our focus in all policies. The issues of people on the margins require urgent intervention by the government. I conclude by re-emphasizing our demand for an immediate Supreme Court inquiry into what could be the world's biggest scam. Thank you, Madam. Message from Lok Sabha Secretary General. Madam, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 8th February 2023 adopted 3 motions recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 1. 10 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May 2023 and ending on 30th April 2024. And 2. 7 members each from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts and Committee on Public Undertakings respectively of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May 2023 and ending on 30th April 2024, and do communicate to the Lok Sabha the names of members so nominated by the Rajya Sabha to the above said 3 committees. Honorable Sri Manas Ranjan Mangaraj for his maiden speech. Honorable Vice Chairman Ma'am, I rise to support the motion of thanks on the reply to Honorable President's address to the joint sitting of Parliament. माननीय राष्ट्रपति संबोधन में देशर भित्तिभूमि विकास एवं अभिवृद्धि विषय उल्लेख कर एकमत जे देशर सामग्रिक अभिवृद्धि भारत भित्तिभूमि विकास एवं विशेषकर मो राज्य ओडिशार विकास यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। भित्तिभूमि विकसित होता बेले ओडिशा परी राज्यगुड़िक केवल आज नुहे गत 75 वर्ष मध्य केन्द्र यह लक्ष्य संपूर्ण लाभ पाइबाकू जाउछंती। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व में ओडिशा भारत द्रुततम अभिवृद्धि करुवा राज्य मानक मध्यरु अन्यतम। यार वास्तवता हृदयंगम हो पार जितेबाला केन्द्र सरकार ओडिशा राज्य को भित्तिभूमि सहायता तथा संबल प्रदान उपरे अधिक ध्यान देवे। कृषि शिल्प एवं सेवा क्षेत्र में ओडिशार व्यापक संभावना रही एवं ओडिशार भित्तिभूमि विकास केन्द्र सहायता आवश्यक। मैम, नेशनल हाईवेज, रेलवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी, digital connectivity and banking are the key areas of infrastructural development which the government of India should provide for Odisha with steadfast support. जातीय राजपथ, रेलवाई, मोबाइल संजोग, डिजिटल जोगाजोग एवं बैंकिंग हेउछि भित्तिभूमि विकासर प्रमुख क्षेत्र जहाँ भारत सरकार ओडिशा को निरंतर समर्थन जोगाइबा उचित। कटक भुवनेश्वर जातीय राजपथ परी अनेक जातीय राजपथ प्रकल्प बहु वर्ष धरी दुर्बल अवस्था रही। आम देखुचु गत 14 वर्ष धरी यही जातीय राजपथ गुड़िक अत्यंत दीर्घ वर्ष धरी विपर्यस्त अवस्था पड़ी एवं एथिपाई ओडिशा को निरंतर समर्थन जोगाइबा आवश्यक। कटक संबलपुर जातीय राजपथ परी अनेक जातीय राजपथ प्रकल्प बहु वर्ष धरी दुर्बल अवस्था रही।
अनेक जातीय राजपथ विपर्यस्त हो पड़ी एवं यार जरूरी रक्षणाबेक्षण आवश्यक हो पड़ी। अनेक वर्ष बीतवा पर उपकूल राजपथ प्रकल्प केवल फाइल रे सीमित रही एवं ओडिशार उपकूल राजपथ गोटे भी इटा आज पर्यंत पड़ पारना। केंद्र सरकार निश्चित भाव में ओडिशा जातीय राजपथर विकास सुनिश्चित करेंगे यह आम आशा रखू। नेक्स्ट इज रेलवे। रेलवे क्षेत्र में ओडिशा को संपूर्ण अवहेला करा जायछि। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक एवं ओडिशा सरकार विभिन्न रेल प्रकल्प मागणारे जमी एवं जयपुर नवरंगपुर एवं जयपुर मालकानगिरी लाइन प्रकल्प खर्चर 50% अर्थ प्रदान करुछंती, किंतु सही प्रकल्प गुड़िक कौन अग्रगति परिलक्षित होना। पारादीप हरिदासपुर रेल लाइन में जदिओ मालगाड़ी चलाचल करुच्ची किंतु एठारे यात्रीवाही ट्रेन चलाचल करूना, जहाँफल केन्द्रापड़ा जिलार लोक रेल सेवार वंचित करा जाउची। मैम in railway section, Puri Konark 35 kilometer new line project. For a new rail line from Puri to Konark, Government of Odisha has offered to share 50% of land cost as well as 50% of construction cost. Though Honorable Chief Minister has given this offer to Minister of Railways on 24th August 2017, no confirmation has come yet from Railways. Next is Jaleshwar Digha new BG rail line project. Even though the project was sanctioned in the year 2010-11, land acquisition process and filling have been started by South Indian Railway, yet citing reasons no cooperation from government of West Bengal. Next is modernization of railway stations in Odisha. Many railway stations had announced in redeveloped 12 stations, namely Puri, Bhadrak, Brahmapur, Katak, Jajpur, Keonjhar Road, Khordha Road, Rayagada, Sambalpur, Baleshwar, Jharsuguda, Raurkela and Bhubaneswar in Odisha to international standards with superior passenger amenities. MOU was signed on 20th November 2019 between Bhubaneswar Development Authority and East Coast Railway to construct a world-class station building at Bhubaneswar at the cost of state government. When will Railways plan for the balance 11 stations as declared by the ministry? Ma'am, mobile and digital connectivity, especially in the tribal dominated districts and western and southern Odisha, are very poor. In this world of digital life, these two are extremely crucial. Better connectivity services in Odisha by center is highly required. आदिवासी अध्युषित जिला एवं पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे मोबाइल एवं डिजिटल संजोग अत्यंत दुर्बल अटे। डिजिटल जीवन रा दुनिया रे यही दुईटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केंद्र द्वारा ओडिशा रे संजोग उत्तम संजोग सेवा जरूरी अटे, कारण आजिका दिन में विभिन्न दुर्गम क्षेत्र में लोक मैंने गछरे चढ़ी मोबाइल सेवार उपयोग करुछंती। ओडिशा रे वर्तमान अनेक पंचायत रे बैंक सेवा मध्य नाही। एठारे केंद्र सेवा जोगाई देवा आवश्यक। डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन व्यवस्था थिले मध्य ओडिशार पंचायत रे बैंक सेवार निजस्व गृह नथिबारु ओडिशार लोक माने या द्वारा उपकृत होई परनाहांती। I truly hope that central government will proactively support Odisha's infrastructural development, and with these words I support the motion of thanks on the reply to Honorable President's address. Thank you, ma'am. Honorable Sri A.D. Singh. I rise to thank the Honorable President for a very thoughtful and comprehensive maiden address at the start of Amrit Kal. Perhaps this was also the last time when such an address will take place in this building.
She is an example of the strength of our nation, its diversity, and the immense opportunities it affords to each and every citizen of this country, irrespective of her origin, caste, or creed, or religion, or gender. She is also a powerful symbol of the empowerment of women in India. Without the full participation of 50% of our nation, we will not be a developed nation or even just an equitable society. However, we had expected that the new president would also present a report card made over the last 9 years. While the direction we wish to travel is known, a detailed and realistic roadmap is missing. In short, Madam, I conclude respectfully that the address was little long on adjective and short on specifics. Perhaps the government hopes that what they do not talk about today will soon be forgotten by the people. Borrowing the famous word, the nation wants to know what happened to the goals set for the end of 2022, and there were several, nearly 40 such goals which were supposed to be achieved by 15th August 2022, when New India was to take place. Niti Aayog should have sent her a report card. It can still be done in the next address. Honorable President talked about Swarim Bhavishya Ka Sankalp of transforming India into a developed nation, but without spelling out the essential conditions or even its defining features. What distinguishes a development nation from the developing or even an emerging nation like ours? It is only the size of is it only the size of the GDP? If that is the yardstick, what size is the inflection point? We have heard different numbers from different ministry about the 4 trillion economy, 5 trillion economy, going up to 40 trillion. Inequality. Do you believe that the current state of inequality, extent of poverty allows us the luxury of such fanciful talk? While no doubt our GDP is growing at a healthy rate of growth, the problems are multifaceted. India's growth has come at the cost of sharply increasing inequality and extreme concentration of wealth in a few hands. The Gini coefficient is at 37.5, and the top 1% of the nation owns about 50% of the national wealth. In recent report, if I remember correctly, it was stated that 21 individuals own more wealth than 70 crore citizens. According to one estimate, those earning minimum wages in India will take 941 years to earn what a billionaire makes in a year. We continue to produce billionaires at an impressive rate, even if they are only paper billionaires. GST, which while much needed by definition, is a regressive tax. And according to Oxfam study, the poorest 50% of the population pay 68% of the tax, and the rich pay only 3%. Clearly, this is not sustainable, but a corrective steps has to. In evidence, government itself claims that Great Pride, that is running the largest free food support system of 80 करोड़ लोगों को ग्रेन सप्लाई कर रहे हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि इस नंबर में हमारे किसान भाई और वैसे लोग भी शामिल हैं जो अपनी लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग या फार्मिंग रिलेटेड कामों पर निर्भर हैं. अगर वो इतनी बड़ी भी नहीं उपास का should we not address these real issues rather than just make feel-good statement? While lofty goals and visions should always guide us, but policy need to be well grounded in reality. Beyond GDP numbers and hope, there are several other indicators of a developed nation: per capita income, educational attainment, scientific and technically prowess, rule of law, inviolable right of the citizen guaranteed by the robust and independent institutions, including an efficient and independent judiciary. Separation of power is one of the essential features. Honorable President emphasized the duty of each citizen during the Amrit Kal, but did not dwell on how the state is guaranteeing the basic right of every citizen. While the government always talks of cooperative federalism, the governors and lieutenant governor who represent our president in the states and UT are practicing combative federalism and are rendering the local administration impotent and ineffective. This tendency need to be checked. Getting used to double engine had a downside too, and the fear is that whatever the second engine is missing, wherever the second engine is, those trains will not be able to move.
at the growing inequality between states, between north and south, between the coastal and the hinterland, worrisome and will remain a serious drag on India's growth story. Unless non-participant attention is paid to the pressing issue, central government cannot be seen as parochial or treat some states as stepchildren. The crony capitalism and corruption are other black swans that can halt India's growth. And add to this is the moribund institution and a regulatory body that seem only to act when told to do so. A week before the address, now famous Hindenburg report appeared, which has wiped out billions of dollars of national wealth. And what is the harm if a JPC is constituted? At least we can show to the world that everything is transparent here, and in case the opposition is saying something wrong, we will also get embarrassed if the JPC clears everything what the particular industrialist has done. PM talked of maximum government, minimum government, maximum governance. However, recent developments are proving that we have maximum number of regulators but minimum regulation. Education. Impressive numbers on education institutions were provided, with one medical college opening its door each month in the last 8 to 9 years, leading to 174 new medical colleges, 300 universities and 500,000 colleges. And trained and qualified faculty members for such places of higher are trained and qualified faculty members for such places of higher learning available. In fact, the medical colleges set 9 years ago must have produced 2 batches of doctors by now. Quality control is essential. Quality alone is not sufficient to meet the needs of an aspiration nation. Unless higher standards of all around are set up and enforced, brand India will keep getting dented periodically. Case in point is how our image on pharmacy to the world being dented by repeated reports of Indian manufacturers' drugs causing harm in patients in Africa and Central. Honorable President rightly mentioned the Nari Shakti and Yuva Shakti and government slogan of Beti Bachao and Beti Padhao. Recent incidents have shown that our women are not safe in workplaces and on streets, even in some homes. International level women athletes have to sit on streets for justice. May I suggest that the slogan should include the third element, Beti Bachao, Beti Padhao and Justice Dilao. इस मुद्दे पर और कुछ और जटिल मुद्दा पर भी सन्नाटा है, but the statistics of women participation in a workforce is distressing, low at 19%. Similarly, youth Shakti without quality education and adequate skills and commensurate job will be a demographic disaster. सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर होना चाहिए. Since the new technologies and processes are increasing pressures on meaningful jobs, our vast population cannot be adjusted to just deliver boys' job, Ola or Uber drivers, or even part-time employment in the army. अगर youth को productive बनाना है, तो social media की toxicity को कम करना भी बड़ी ज़रूरत है. इन शब्दों के साथ मैं Honorable President को धन्यवाद देता हूं और एक समृद्ध भारत जो कि अपनी डाइवर्सिटी पर गर्व करे, एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की कामना करता हूं. थैंक यू. Honorable Sri Santosh Kumar P. Thank you, Madam Vice Chairman. I rise to oppose the motion in support of the Honorable President. With due respect to the post of President of India, I would like to state in this august house that her address to the joint session was more rhetorical and, of course, less realistic, and like that of the Prime Minister of this country. And what we are witnessing during these 8-9 years, there's a systematic attack on the idea of India, purposefully endangering all our democratic institutions. All our agencies are being misused, and there are attempts to topple various state governments through governors also. And let us talk about the most important issue of this time, that is the mega scam of Adani and his company. What we are demanding
The whole world is witnessing the session, what is happening in this country, and what is our genuine demand. Our demand is to constitute a JPC. And of course, the one who knows the ABCD of politics can understand that this JPC will be a body in which there will be more ruling party members. The gravity of the situation is, madam, that they are fearful of a JPC in which even the ruling coalition will have a majority. That is the most important aspect. We all know that this Adani group has been enjoying political patronage from the center and its leadership. Their theory, one nation, one culture, one leader, finally collapsed like everything has ended like one businessman. And they are now, whether you announce or JPC or not, you may not be in a mood to announce JPC. What is going to happen? This will mark a tectonic shift in Indian politics. And this company has got exposed. I don't want to go into the other details. Got exposed. And the people of this country know very well that the political nexus and patronage enjoyed by the Adani and company. Now, coming to the question of women empowerment. And we were always talking about 33%, at least 33% reservation to the women. Madam Vice Chairman, I would like to remind you of one thing, that this is the birth centenary of one of the legendary parliamentarians, Hida Mukherjee. She was instrumental in bringing this women reservation a major agenda in our political scenario. Is this government committed to do 33% of women reservation? Without proper representation of women in various bodies, like the parliament and assemblies, what is the meaning of the so-called Amritakal? So I would like to request all political parties, of course, those political parties with a male chauvinistic mindset, to reconsider their position and to be active in making it a reality. And thirdly, Madam Vice Chairman, the question of labor codes. There were 29 labor laws, and I don't want to go through the details of all those. The Indian working class had an active role in India's independent movements, which of course the ruling front have not. They never participated in it. And leaders like Lala Lajpat Rai and many others founded the AITUC in the year 1920. And they had a tremendous role, as I stated. And now, what is happening? 90% of the workforce were actually in unorganized sector. And now, 97% of the workforce are actually transferred into unorganized sector. Only 3% may get certain benefits. This labor code is a serious threat to the security and safety of the working class in this country. And the question of unemployment. Unemployment is on a rise. Whatever you try to suggest, whatever you try to portray, the reality is that unemployment is on a rise, and it is the highest during the 40 years of independence, for the last 40 years. And inequality. The speech was shockingly silent on the question of inequality. Madam Vice Chairman might be knowing the fact that 10% of the total population is controlling 77% of the national wealth, and 49% of the total wealth is being controlled by just 1%. So how a presidential address to a joint session of a parliament can be shockingly silent on these issues? And the question of agriculture. MSP was a genuine demand raised by the farmer movement. The Samyukta Kisan Morcha had a tremendous year-long mass movement in this country, which shattered all the hopes of Modi and this government. And finally, what happened? There were certain agreements, several commitments, and this government failed to meet the requirements, the commitments given to the Samyukta Kisan Morcha. Now again, the Kisan in this country are planning to launch a massive movement because they felt cheated. You did not provide MSP to the farmers, nothing like that. And almost the ministers let free. There are certain demands to withdraw the cases registered against the Kisan. That is also not happening. And Madam Vice Chairman, there are a lot of other more issues also.
For example, as I told you, the weakening of our all institutions. For example, SEBI, Security Exchange Board of India. Kiska security hai, kiska exchange hai? It has actually now a silent and embarrassed body of India. That is what is happening in this country. So in almost all fronts, this government has failed and only rhetorics prevail. Bada bada bhashan hai, lamba lamba bhashan hai. So this is what is happening. So my party, Communist Party of India, and along with all other democratic and left forces, are a stand for a JPC probe on the Modi issue and this Adani Modi nexus. We are all stand for that, and I think you have to concede. The ruling dissociation will have to concede to the demand, because this is not only a demand from the parliamentarians, but it's a demand from the general public of this country. And since we don't have any like the Controller General of India, I think we have to start a new system, the authenticity control of India, like that. That's, I think, in Parliament. But we have our own statistics, our own data and details, and to corroborate what we have stated in this House. And hence, with these words, I would like to conclude my speech, and we demand once again a JPC prof. That is the order of the day, need of the day. Honorable Sri Radha Mohandas Agrawal. माननीय सभापति उपसभापति महोदय, देश की आज़ादी का इतिहास ये बताया जाता है कि 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये एक अधूरा इतिहास था। पूरा इतिहास ये था, हंसाइए मत, पूरा इतिहास ये था सभापति महोदय कि 1784 में इस देश की आज़ादी के लिए पहला बलिदान हुआ था। वो बलिदान था भागलपुर के तिलका मांझी का। आप जानते हो, मांझी उनकी जात नहीं थी, मांझी का अर्थ था उस समुदाय का नेता, प्रधान। तिलका मांझी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, हम सब धर्म से हमारा माथा झुक जाएगा, 4 घोड़ों की पूंछ में बांध करके 7 किलोमीटर उन्हें सड़क पर दौड़ाया गया। पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और भागलपुर की कलेक्ट्री में ले जाकर के उनको बरगद के पेड़ में फांसी दे दी गई। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने उनके ऊपर एक किताब भी लिखी है। तिलका मांझी, नाम जरूर मांझी जोड़ा गया था, मूलतः उनका नाम था तिलका मुर्मू। संथाल समाज की थी और संथाल समाज के थे और मुर्गू उनका गोत्र था। इस देश की आज़ादी के लिए पहला बलिदान और पहला शहीद इस देश में कोई हुआ तो तिलका मुर्मू नाम का व्यक्ति हुआ। बात बिरसा मुंडा तक गई है, बात अल्लूरी सीतारामा राजू तक गई है। दूसरा सबसे बड़ा बलिदान हुआ अध्यक्ष महोदय, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के 1 साल पहले 1856 में वो संथालों का विद्रोह था। आपका ही क्षेत्र था वो भी, उस समय तो सब एक होता था। 4 भाई थे, 4 भाइयों के नेतृत्व में 50,000 संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और उन चारों भाइयों का नाम था सिद्धो मुर्मू, कानो मुर्मू, भैरव मुर्मू और चांद मुर्मू। 2 मुर्मुओं की हत्या कर दी अंग्रेजों ने और 20,000 संथालों को मार डाला। शायद इतना बड़ा कांड जलियांवाला बाग भी कांड नहीं रहा होगा और शायद इतना बड़ा कांड मानगढ़ का भी कांड नहीं रहा होगा। 20,000 संथालों और 2 मुर्मू भाइयों की हत्या। आज से ये करीब 100-200 साल पहले की बात है उपसभापति महोदय। कितनी शर्मिंदगी का एहसास होता है जब देश की आज़ादी हुई तो आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने लिख दिया, दे दी हमें आज़ाद बिना खदक बिना ढाल। इतिहास के पन्नों से
वो जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान किया था, उनके इतिहास को मिटा दिया गया। आश्चर्य होता है। ऊपर जब वो बैठते होंगे और सोचते होंगे, वक्त जब गुलशन का था तो लहू हमने दिया, बाहर आई तो कह दिया तेरा काम नहीं। और इतने सालों के बाद, आजादी के 70 सालों के बाद, हम गर्व के साथ कह सकते हैं, उपसभापति महोदय, आदिवासी समाज जो इस देश का तकरीबन 8.5% का हिस्सा है, करीबन 10.5 करोड़ आदिवासी इस देश में रहते हैं। आजादी के 70 सालों में देश भर में पहली बार किसी ने आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहां से उठाकर कहां पहुंचाया। एक सामान्य धरातल से उठा करके उन्होंने कहा कि मैंने आदिवासी समाज के लोगों को सामाजिक अधिकार दिया है, आदिवासी समाज के लोगों को आर्थिक अधिकार दिया है, आदिवासी समाज के लोगों को सांस्कृतिक अधिकार दिया है। लेकिन लोकतंत्र में जब तक राजनीतिक अधिकार नहीं दिया जाएगा, समाज स्वीकार नहीं करेगा। और उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाकर हम लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया। यह बात मैं जानबूझ करके कह रहा था। हमारे मनोज झा जी अभी भाषण दे रहे तो कह रहे थे कितना अच्छा लगता जब राष्ट्रपति अपने मन का भाषण पढ़ते। मैं सुन रहा था, तमिलनाडु के लोगों को एक गवर्नर अपने मन की बात बोल देता है तो पूरा तमिलनाडु परेशान हो जाता है, और आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति बोल दे। पहले गवर्नर्स को बोलने देने का अधिकार दीजिए, फिर ये अधिकार नहीं। आरजेडी के तो एक कहने को हैं, आरजेडी के तो सिर्फ शरीर है इनका। हाँ अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, मैं चूंकि पेशे से डॉक्टर हूं, महामहिम राष्ट्रपति ने चिकित्सा के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने चर्चा किया है इन्फेंट मोर्टेलिटी की, उन्होंने चर्चा किया है कोविड की, और उन्होंने चर्चा किया है आयुष्मान भारत की। इसलिए मैं अपने आप की सारी बहस को मैं सिर्फ स्वास्थ्य की बहस तक सीमित रखने का प्रयास करूंगा। मैं तुलना नहीं दूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इसके पहले कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक सत्य है कि 2013-14 में स्वास्थ्य का बजट कुल मिलाकर के 33,700 करोड़ होता था, सिर्फ 33,700। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें 86,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 2013-14 में इस देश में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्चा 1,042 रुपया होता था। मैं नहीं नकार रहा हूं कि इसके पहले खर्चा नहीं होता था, 1,42,000। 2022-23 में हमारे प्रधानमंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया, एक व्यक्ति के ऊपर 1,815 रुपए का खर्चा शो किया। इस देश में स्वास्थ्य बीमे को लेकर के जो खर्चा होता था 2013-14 में, कुल 4,756 करोड़ रुपए होते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने 2022-23 में जब बजट प्रस्तुत किया तो स्वास्थ्य बीमे को लेकर के उन्होंने 12,860 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया। उनके प्रधानमंत्री के बनने के पहले इस देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, माननीय मोदी जी की यह देन है, इस देश में 648 मेडिकल कॉलेज है। माननीय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री बनने के पहले इस देश में एमबीबीएस की सीटें 55,348 सीटें थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, 8 साल के कार्यकाल के अंदर हमारे मोदी जी ने उन सीटों को बढ़ा करके 96,077 सीटें कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री बनने के पहले इस देश में 6 एम्स हुआ करते थे, आज हम 24 एम्स पाने के अंतर में। इसका फल क्या हुआ? इसका फल हुआ कि मोदी जी के पहले जब माताएं गर्भवती होती थी तो 1 लाख में 137 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। आज वो मृत्यु की संख्या घट करके 97 हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 5 साल के बच्चे होते थे उनमें 1000 में से 49 बच्चे मर जाते थे। आज उन मौतों की संख्या घट करके 32 हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 साल का बच्चा जब इस देश में पैदा होता था तो कम से कम उनमें से 32 बच्चे मर जाते थे, 45 बच्चे मर जाते थे, और आज उनके मरने की संख्या 28 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी आंकड़े हैं सब ऑफिशियल हैं।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उन आंकड़ों ने बताया है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का परसेंटेज कितना बढ़ गया, ब्रेस्ट मिल्क की परसेंटेज कितनी बढ़ गई, वैक्सीनेशन का दर कितना अधिक देश में बढ़कर चला गया, किस प्रकार से डॉक्टर पेशेंट रेशियो बदल गए। 2014 में उपसभापति महोदय 2083 नागरिकों के बीच में एक डॉक्टर होता था। और जिस जादू की छड़ी की बार बार वो लोग बात करते हैं, कौन सी जादू की छड़ी? मोदी जी की जादू की छड़ी थी। 2014 में 2083 पर एक डॉक्टर और 2022 में 834 नागरिकों पर एक डॉक्टर। इसी को जादू की छड़ी कहते हैं जो उन्होंने किया। स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रकार का उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया और निःशुल्क किया। हमारी माताएं और बहनें जब गर्भवती होकर के जाती थी तो हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं उनमें से कम 54% महिलाएं ऐसी थी जिनको निःशुल्क मेडिसिन मिलती थी, 53% महिलाएं ऐसी थी जो जिनको निःशुल्क जांच हुआ करती थी, 66% महिलाओं को पूरा भोजन मिला करता था और कम से कम 46% ऐसी महिलाएं थी जो गर्भवती होने के बाद जिनको गाड़ियों में बैठा करके सुरक्षित घरों में भेजा जाता था। अध्यक्ष, चर्चा हो रही थी कोरोना की। कोरोना जब आया था तो विश्व बैंक के जो चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि कोरोना इतना भयावह है कि करीब 5 करोड़ लोग इस कोरोना के नाते एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे और उनकी सबसे बड़ी संख्या भारतवर्ष में। और अभी 4 दिन पहले मैं उन्हीं डेविड मालपास का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कोरोना के मैनेजमेंट में भारत ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया के उदाहरण के रूप में सामने है। पूरी दुनिया भारत से चिकित्सा और कोरोना की व्यवस्था के बारे में सीख सकती है। पूरी दुनिया जान सकती है कि सीमित आर्थिक आय के बावजूद ईमानदारी के साथ सेवा करने का जज्बा हो तो नागरिकों की सेवा कैसे की जा सकती। बात अभी प्रति व्यक्ति आय की हो रही थी। मैं एक आंकड़ा आपके सामने अध्यक्ष महोदय रखूं। आय से कुछ नहीं होता। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 57 लाख रुपया है। स्वास्थ्य पर खर्चा 9 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख में 336। इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय 38 लाख रुपए है। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा 3,54,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख में 321 है। स्विट्जरलैंड की प्रति व्यक्ति आय 74 लाख है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य का खर्चा 7,93,000 है और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख में 64 है। 1 लाख में 164। और भारतवर्ष 2020 में आज हमारी आय 1,97,000 हो गई, जैसा माननीय वित्त मंत्री ने बताया था। 2 साल पहले हमारी आय 1,50,000 होती थी। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्चा 5200, सिर्फ 5227। कहाँ 7 लाख 5 लाख। भारत का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च सिर्फ 5227 रुपए और उपसभापति महोदय मरने वालों की संख्या 1 लाख में सिर्फ 38। गौर कीजिए, जब कोरोना आया तो इस देश में न तो किट थे, न पीपी किट था, न जांच की लेबोरेटरीज थी, न स्वाब था, न फेस मास्क था, न N95 था। और हमें बजट में हमें कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन करके कस्टम फ्री करके इन चीज़ों को मंगाना पड़ता था। लेकिन आप लोग कहते हैं ना क्या जादू की छड़ी है, यही जादू की छड़ी मोदी जी की थी। 11 मई आते आते इस देश में 87,20,000 लीटर सैनिटाइजर तैयार हो गया। इस देश में 41,91,000 पीपी किट तैयार हो गए। इस देश में 75 लाख N95 के मास्क तैयार हो गए। इस देश में कैटेगरी 1 का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल 163 था, बढ़ करके 4,096 हो गया। इस देश में एक भी कोविड के हेल्थ सेंटर नहीं थे, बढ़ करके 9,954 हो गए। ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी 1,000 टन प्रतिदिन थी। लोग ऑक्सीजन की कमी के नाते परेशान होते थे। हमने मई के आते आते इसकी संख्या बढ़ा करके 20,000 टन प्रतिदिन कर दी। इस देश में 50,000 ऑक्सीजन बेड हुआ करते थे, हमने बढ़ाकर उनको 3,81,000 ऑक्सीजन बेड कर दिया।
इस देश में 47,000 वेंटिलेटर होते थे, आज 1 लाख वेंटिलेटर हो गए। इस देश में 2500 आईसीयू होती थी, मोदी जी ने बढ़ा करके 1,13,000 कर दिया। तकरीबन इस देश में 41,000 आइसोलेशन बेड थे, आज देश में 17,17,000 आइसोलेशन बेड्स हैं। यहाँ तक कि रेल कोचेस को हम लोगों ने आइसोलेशन बेड में बदल दिया था। इसे कहते हैं मोदी जी का जादू। और यह जादू सिर्फ इलाज में नहीं चला था अध्यक्ष महोदय, दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, अर्थव्यवस्था टूट रही थी, लोगों के अंदर मंदी आ रही थी, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। उस चुनौती के दौर में एक और माननीय प्रधानमंत्री ने मार्च में घोषित किया लॉकडाउन, और दूसरी ओर उन्होंने मार्च में ही घोषित किया स्टिमुलस 1,70,000 करोड़ का, और घोषित किया प्रधानमंत्री अन्य कल्याण योजना। और समाज के हर वर्ग की चिंता की उन्होंने। गरीब वर्ग के लोगों को 5 किलो अनाज मिले, वरिष्ठ नागरिकों विधवाओं को 1,000 रुपया 3 महीने तक दिया जाए, 7.5 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपया तुरंत डाल दिया जाए, 100 से कम स्थानों में 15,000 से कम के वेतन पाने वालों के पीपीएफ अकाउंट में 24% डाल दिया जाए, 63 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अकाउंट में 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए लेने की, कोलेक्ट्रल फी लेने की छूट दे दी जाए। पीएफ अकाउंट से महामारी के आधार पर लोग अपने वेतन का, अपने पीएफ का 75% या वेतन का 3 महीने का पैसा निकाल सकें, इसके लिए छूट दे दी गई। और बात यही नहीं रुकी, मई आते आते माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख के स्टिमुलस पैकेज की घोषणा किया, 20 लाख करोड़ के, मैं क्षमा चाहूँगा 20 लाख करोड़ के। और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी क्या सुविधाएं थी 20 लाख करोड़ में, मैं पढ़ूंगा तो उपसभापति महोदय शायद आप मुझे इसका अनुमति न दें। उस 20 लाख करोड़ के अंदर उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए कोलेक्ट्रल फ्री 45 लाख एमएसएमई को दे डाला। और काम करने की तेजी समझिए माननीय नागर जी, हम सीख सकते हैं कोई व्यक्ति कैसे जादू की तरह, जादूगर की तरह काम करता। 13 मई को घोषणा हुई, 20 मई को कैबिनेट से डिसीजन हुआ, 23 मई को ऑपरेशनल गाइडलाइन निकल गई, 26 मई को फंड के क्रिएट को रजिस्टर कर दिया गया, और 5 अगस्त आते आते इस पैसे का वितरण हो। टाइम इज ओवर। मैं अपनी बातें मैं समझ सकता हूं, आप इस बात को कहेंगी कि समय अधिक हो गया, और मैं नियमों को तोड़ने का आदी नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, हमने कोरोना के दौरान ही वेलनेस सेंटर शुरू किया था। आज इस देश में 1,09,000 वेलनेस सेंटर। हमने देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की, और इस देश के 50 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क बीमा की छूट दी। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 4,18,000 नागरिकों ने स्वास्थ्य की छूट ले ली। मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा। अंत में सिर्फ एक बात कह करके, हम गरीब जरूर कहे जाते हों, लेकिन हम दिल से गरीब नहीं हैं। कोरोना हुआ, अमेरिका में दवा की कमी हुई, तो याद होगा, देश के दुनिया के अधिकांश देशों में दवा की कमी हुई। हम गर्व के साथ कह सकते हैं तकरीबन इस देश में 100 ऐसे देश हैं जिन्हें भारत से, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिन्हें भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल भेजने का काम किया गया है। आप गौर करिए, उसी दौरान ऑपरेशन वंदे मातरम चला था। हमने 37,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर लेने का काम किया था। उसी दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु चला था। हमने मालदीव से 1,200 नागरिकों को लाने का काम किया था। हमने जहाज चलाकर देश के कोने कोने में, हमने कुल 751 जहाज चलाए, और देश के कोने कोने में कोई ऐसा क्षेत्र न हो जहां दवा के अभाव में हमारे नागरिक मर सके। हमने दवा पहुंचाने का काम किया था। और हमने सिर्फ अपने नागरिकों की नहीं, हमने दुनिया के नागरिकों की चिंता की। मैं अपनी बातें खत्म कर रहा हूं। 52,000 विदेशी नागरिकों को, 80 देशों के विदेशी नागरिकों को हमने इस देश से उनके देश में सुरक्षित भेजने का काम किया था। यह काम अगर किसी ने मोदी जी किया, मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, गीता में एक श्लोक है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यम आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं मातु वेदन कश्चन। आप इसका अर्थ समझेंगे। कुछ लोग आश्चर्य के साथ देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य के साथ बोलते हैं, कुछ लोग आश्चर्य के साथ बताते हैं, सुनते हैं। जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, समझ नहीं पाते। मोदी जी के साथ ऐसा ही है, हम सब उन्हें देखते हैं, समझ नहीं पाते।
लोग बताते हैं समझ नहीं पाते, करोड़ों नागरिक सुनते हैं समझ नहीं पाते। देश का इतिहास आने वाले समय में जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहता था कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हाड़ मास का कोई महात्मा गांधी पैदा भी हुआ था, आने वाले 50 सालों में वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे कि इस धरती पर कोई मोदी जैसा प्रधानमंत्री भी पैदा हुआ था, शायद कोई विश्वास न करेगा। धन्यवाद। Yes. Honorable Srimati Sulata Dev, not present. Honorable Sri Birendra Prasad Beshya, not present. Honorable Sri Abdul Wahab, Congratulations, Madam, for chairing this respectable chair. Thank you very much for giving me a time. And I am here to oppose the motion. First of all, regarding Adani and all, everything is told. Me, my party too want JPC in this camp. My party and its leader, Said Adhikali Shihab Tangal, we are requesting you to interfere in making a JPC. Yes. That was the slogan before for BJP before during the UPA time, JPC, JPC, JPC and all. Now they are not hearing that one. So I'm coming to the point because I already told about JPC enough. And I am coming to this one President's speech. It lacked any vision and mission in our journey to discover a better India of India, better idea for India. For me, the idea of India we need at the moment is what Tagore envisioned in 1903. Quote, India has always laid the foundation for an inclusive civilization. She never driven away any outsider, never excluded or anyone calling the person non-Aryan, hasn't made fun of anyone incompatible. India has taken in all and accepted all, unquote. One of my concern in President's speech in Her Excellency's ignorance is struggles of minority. India's largest minority, that is Muslims, were not even once discussed by the President. We know there has been an increase in the target attack and demolition of houses in the Muslim-dominated localities in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Assam and Madhya Pradesh. The President, who holds a constitutional position, should have condemned this systemic discrimination against Muslims in the hands of various state governments and public. Another important concern is, in her speech, remain in the field of education. In the year 2022, the government stopped pre-matric scholarship for OBC and minority, stopped NTSC examination high school students, stopped research fellowship of MANF, Maulana Azhar, stopped for minority students. The participation of Muslim in higher education has declined to 4.6% from 5.5%. Quality of public education became deteriorated. As a result, private tuition coaching centers thrived. Financial aid to higher education students decreased. Research and development spending is one of the lowest in the world. One of my other observations in her speech is the fallacy and false optimism. President has used the word increase 9 times in her speech, but the scope of the term increase is limited only in praising the government, such as increase in the length of road construction, increase in the name of change of railway stations. With this logic of her speech, my age also increased from 71 to 72.
last year and it will further increase this year. I am on the opinion that President should have at least a roadmap in addressing the common concern of her citizens, such as increase in unemployment, increase in gas cylinder and petrol price, increase in the price of essential food items. These are the points I have to mention, and it was all excluded. And the JPC, we are already asked, at the end we will ask JPC again. But my good thing today is I am seeing one of our best Keralite in the chair. That is, and I request our chair that just like in Olympics, you should not go fast. You should be this one, especially opposition, given good time. Not one point, how many point I don't know. 0.001 point you missed your medal, our medal, not your medal, our medal. Just like India's medal. Now the case is for opposition. You are not giving any time, but you are giving. But government or authorities are not giving. I praise you coming here and not telling, interfering. Otherwise, today morning, what was happening? That Yamesh, the chair speaks, but at least you are not speaking. That is it. Here interferes much more than what you call anybody the speaker. So that is not here. I congratulate you and I condemn the government of India for excluding Muslims, especially. No single word Muslims is used. You are how many percentage in India? One time the president is not your Muslims. And we again condemn this sort of exclusion. Thank you very much for giving me the time. Honorable Dr. Sonal Mansingh. It's good to see you in the chair. Congratulations. And I'm very happy to be given time to speak on the Thanksgiving motion. I support it with all my heart. Honorable Madam Deputy Chairman, the President, Honorable President in her speech had said, our heritage connects us to our roots and our development gives us the courage to reach out to the sky. That is why my government has chosen the path of consolidating heritage and giving priority to development. So heritage and modernity, heritage and development go hand in hand. And it has been proven time and again that civilizational cultures which do not have deep roots, they fall, they crumble. Why our civilization has survived for millennia, perhaps is the reason that our roots are very, very deep, and I would like to reiterate them. On the one hand, we are following the path shown by saints like Adi Shankaracharya, Sri Basaveshwar Swami, Thiruvalluvar, Guru Nanak Dev, and so many others. On the other hand, today, India is also becoming a hub of high-tech technology. So again, I would like to reiterate and give some examples how preserving India's glorious past is leading us to the present and then to the future. And this is where the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, is guiding the nation in every direction. For example, under Modi ji's leadership, it has been decided that 5 iconic museums of the country will be made of international standards as the central government is working to put the cultural potential of India in a new image in front of the world so that India can become a big center of heritage tourism, which is very, very important. This is the only way not only to preserve, but to showcase and to arouse interest in the world and in the nation, in the people, to feel pride.
and the nation builders in these 75 years, the first being Indian Museum in Kolkata, which is perhaps one of the oldest museums in the world, and the 5 iconic museums will be in different parts of India. Tribute to India's great freedom fighters. So on the one hand, we have the heritage. On the other hand, we come down to our own times, our own centuries, the past 3-4 centuries especially, as we celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav of 75 years of freedom, remembering the freedom fighters and paying tributes to them, which is so important, very significant, because the nations that forget their warriors, their freedom fighters, the soldiers, and every single individual, which helps in not only building the country, the nation, but also protecting. And if we forget them, then that is the biggest crime. Here, we are paying tribute to India's great freedom fighters in the Azadi Ka Amrit Mahotsav. And it's very significant how we do it. Mahatma Gandhi's dream, how it is brought to life. While the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi was celebrated globally, led by PM Modi himself, who led the celebrations at the UN, the most special tribute to Gandhiji was perhaps the declaration of the open defecation-free status for rural India due to Swachh Bharat mission. And I think many of my fellow honorable members have also spoken about it. The first time when he spoke from the Red Fort on 15th August and Swachh Bharat mission and what it meant, people were surprised. They were taken by surprise that how did a prime minister speak about all these things from the ramparts of Red Fort? But that had an all-India implication, and today it has carried the message to every corner of India. The Statue of Unity. The forgotten name of Sardar Patel, who was a unifier of India, and today India stands proud and tall because of Sardar Patel's endeavors. I myself have some experience of that due to my late grandfather, who brokered the peace between Nizam of Hyderabad and Sardar Patel, who both met at Nagpur, where Nizam signed the document of accession. So it is Sardar Patel who's being paid tribute by erecting the tallest statue in the world, 182 meters tall. Honoring Netaji. Now, Netaji Subhash Chandra Bose was duly forgotten, happily forgotten. Kadam kadam badhaye ja, khushi ke geet gaye ja, ye zindagi hai kaum ki to kaum pe lutaye ja. And this is what today Modi ji is taking us on that path, kadam kadam badhaye ja. And with all the painful experiences, khushi ke geet gaye ja, because the one and only message of all his endeavors and his exhortation to his countrymen is that come what may, we have to build a happy India, a unified India, and a karmat India. So Netaji Subhash Chandra Bose has been given his due respect and place on the Kartavya Path, which is the central point of India's capital, that's Delhi. And then respecting and commemorating, remembering freedom fighters, innumerable freedom fighters across India. And for that, a complex of museums is built in the iconic Red Fort. I will just reiterate a few, like the Jalian, the Kranti Mandir it's called now, the Red Fort. So the Netaji Museum, Azadi Ke Diwani Museum for Unsung Heroes, and Yad-e-Jalian, and 1857, the first freedom fight war of India. At this point, I would like to say, Madam, that when I was young, like so many of my honorable fellow members here, we had a wonderful film, Jagrati. And in that, the school children were taken on a trip across India. And I remember the song, Jallianwala Bagh dekho, yahan chali thi goliyan.
ये मत पूछो किसने फेंकी यहाँ खून, किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक के धन धन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकिलाब की बोलियां। And this Jallianwala Bagh, now the museum is there, and there are 4 corridors, 4 galleries with all the important, significant images, photos, and paintings. So it's again and again good to remind everyone, the new forthcoming generations, successive generations, of the sacrifices made by our ancestors, by so many freedom fighters. The names have been forgotten. And today it is our Prime Minister's endeavor to remind everyone of the names where in the history books they are again and again mentioned. Reclaiming our civilizational heritage, Madam, there are many places which define a nation and form the nucleus of its civilization. The way these places are treated, I think it's a very significant sentence. The way these places are treated has a direct impact on the way the nation perceives itself. A nation is made to feel small or big, proud or not proud, by the way perceptions are built. And perception is everything today. Earlier, there were indifferences in the political establishment about taking pride in Indian culture and working now to restore and treasure it. Restating Sri Kashi Vishwanath Dham Yatra Varanasi. The timeless city of Sri Vishwanath has always been special for Indians, and irrespective of where they are from, as we saw that the Tamil Sangam, the Tamil and the Kashi residents, that confluence is significant. I think it's iconic, and it's going to happen not only north-south, but also east-west, and from every direction of India. There will be these hubs which are created where everybody comes together in the spiritual energy. And the Kashi Vishwanath temple complex's expansion and a corridor connecting the holy river Ganga with Sri Vishwanath. The goal of the redevelopment was to protect heritage structures while also providing a visible link between the temple and the ghats where Ma Ganga flows. Once again, I would like to quote Adi Shankaracharya Shlok, Ganga Taranga Kamaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushitamam Bhagam Narayana Priyamananga Madapaharam Varanasi Purapatim Bhaja Vishwanatham. So this is one of those places. Another one is rebuilding Sri Ram Janmabhoomi. I think there has been talk about it for now past few decades. Finally, the temple of Sri Ram, for which PM Modi led the Bhumi Pujan. He led it. He saw the whole video, and I think umpteen eyes shed tears of joy, of pride, and of gratitude. The temple of Sri Ram, for which PM Modi led the Bhumi Pujan, has been a yearning of millions of people for centuries. It was an emotional moment for millions, since many people had wondered if they would ever see Sri Ram in a grand temple instead of a makeshift tent. I can't believe it that I had this darshan several times in the tent. And I think that was the only example in the whole world where Sri Ram was residing in a tent, and now Sri Ramchandraji gets, Sitapati Ramchandraji gets the due place. Somnath Temple Complex, the first of the 12 Jyotirlingams. Prime Minister Shri Narendra Modi began various measures to beautify the temple complex during his time as Gujarat's Chief Minister. In fact, I was very fortunate to participate in the first Somnath Festival in 2001. He is the chairman of the Somnath Trust, and they're constantly striving to improve the Somnath Temple and other temples in the vicinity, like the Bhalka Tirtha, where Sri Krishna was resting with his back to the banyan tree, peepal tree, and the Jara, the shikari, had shot an arrow in the foot. That Bhalka Tirtha, the Swargarohan,
where Arjun gave Mukhagni to Sri Krishna, etc. These. Kedarnath temple, of course, we've seen PM there, following the widespread devastation caused in 2013. The Kedarnath Dham is in a flurry of developmental works, and it's to improve ease of accessibility. Please, ma'am, time is and over. amenities. Yes, ma'am, I'm concluding. And then I would like to just mention quickly, remembering our heroes. We did not have a National War Memorial or National Police Memorial. Now both have been erected on Kartavya Path, paying due homage and tribute to them. And then I would like to, in the end, say that preserving and protecting ancient Indian history is very, very important. The World Heritage Sites has now included UNESCO, Dholavira, and including 10 other sites from India. 40 other sites are under consideration. So many of our stolen idols from abroad have been brought back and have been duly placed in their own proper place. I think it's very important, madam. Yeah. I will conclude. Okay. Don't worry, madam. And in conclusion, I would like to say... Ma'am, please. Yeah. अरे बाबा कल्चर पे कोई बोलता है 2 मिनट दे दीजिए ना मैडम. नित्य नूतन चिर पुरातन. This is our motto. Nitya Nutan Chir Puratan. And when I mean, there's so much more, because culture usually gets a short shift in very short time, unfortunately. But it's the culture that gives identity to a nation and to a civilization. So I'm very happy that I got this time. In the end, I will conclude with one line from Dinkar, poet Dinkar. When I see Prime Minister Modi today was seated here quietly with his hand on his cheek, listening to everything, I'm reminded of his poem on Himalaya. Mere Nagapati mere vishal sakar divya gaurav virat paurush ke punji bhoot jwal. Meri janani ke him kireet mere bharat ke divya bhaal. Thank you. Honorable Srimati Sulata Dev. जय जगन्नाथ. आज संसद में वाइस चेयरपर्सन एक लीजेंडरी चेयर कर रहे हैं, मेरे उनको नमन है. आज मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ. पहले तो मुझे गर्व होता है, देश की पहली आदिवासी महिला मेरे राज्य से बिलोंग करती है, महामहिम राष्ट्रपति जी है. ये मेरे लिए सच में बड़ी गर्व की बात है. राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को मैं उस दिन बहुत अच्छे से सुनी. पारा 30 में राष्ट्रपति जी ने बोला, मेरी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि महिला सशक्तिकरण है. इस संदर्भ में मुझे नारी शक्ति नामक एक कविता का स्मरण होता है, जो 100 साल पहले उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावत की रची हुई थी. क्या बोले हो? वसुंधरा तले भारत रमणी नुहे हीन नुहे दिन, अमर कीरति कोटि जुगे केवे जगतु नोही बोलिन. ये सच में जो बोले वो 100% सच है. मैं फिर पारा 2 में आना चाहूँगी, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी बोले, ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए आगे खड़े हों. ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं सोच रही हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि सच में युवा शक्ति और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए. मैं हर तरह से उनके अभिभाषण का समर्थन करती हूँ मेरे पार्टी की तरफ से, मगर मैं कहीं ना कहीं जब नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की बात आती है, मुझे 33% रिजर्वेशन के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे नेता नवीन पटनायक जी हमेशा 33% महिला संरक्षण की तरफ कदम बढ़ाए हैं और इनिशिएटिव जितना भी लिए हैं, मगर कहीं ना कहीं ये फल फूल नहीं रहा. आप एक महिला है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी भी एक महिला है. हम सोचते हैं
कि ये अगर महिला लोगों के लिए 33% रिजर्वेशन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए, सारे देश के लिए। ऐसा नहीं है, नवीन पटनायक जी ने हम लोगों को संसद में 33% रिजर्वेशन करके भेजे हैं, मगर ये सारे देश का सवाल है, सारे महिलाओं का सवाल है। अगर देखा जाए, भगवान के बाद अगर कोई सृष्टि रचने की क्षमता रखती है वो नारी है, माँ है। अगर माँ सृष्टि भी कर सकती है, पालन भी कर सकती है, सबको अच्छे से बांध के भी रख सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि यहाँ पर जो हमारे महिला हैं किसी गुण से कम है, ना आप कम है, आप एक लेजेंडरी है। कोई भी महिला जो ये सदन में आई हुई है सब एक से आरक है। मगर कभी सोचिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब वो बोल रहे थे कि अगर संसार को, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो महिला लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसके वजह से वो वोटिंग राइट्स, इसके वजह से वो डिवोर्स राइट, इसके वजह से वो रिप्रोडक्शन का राइट महिलाओं को दिए। और कुछ हद तक देखा जाए, कहीं ना कहीं हम लोग उसको दबाए रखे, उनके बाद में कोई आगे नहीं बढ़ा उस बात को लेके। मगर कहीं ना कहीं महिला अपना घूंघट छोड़ के खुद अपने पैर से आगे आके आज भी ये संसद में है, कुछ विधान परिषद में है, विधानसभा में है, और देखा जाए तो पंचायत राज सिस्टम में भी है। मैं तो बिजू पटनायक, जो हमारे नवीन पटनायक की फादर है, उनको सतत नमन करूंगी कि पहले बार देश में 33% रिजर्वेशन ओडिशा किया 3 टायर पंचायत राज सिस्टम में। उसको बढ़ के नवीन पटनायक जी ने 50% रिजर्वेशन किया पंचायत राज में। और आज अगर देखा जाए 50% नहीं, 60% से भी ज़्यादा महिला है हमारे ओडिशा में जो 3 टायर पंचायत राज सिस्टम चला रही है। हाँ, कभी कभी जब 33% रिजर्वेशन आया था, महिलाओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। कभी कभी बोले लोग कि पति सरपंच पति है चला रहा है, मगर आज ये दिन नहीं है। आज अगर देखा जाए, हमें से जो भी सदन में है और जो भी बाहर में है, काफ़ी महिला बहुत अच्छे से चला रही हैं। हमारे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ, भगवान ने पैदा ही किया है महिलाओं को पंख देके आसमान छूने के लिए। और आसमान छूने का विश्वास जो है ना, वो हमारे नवीन पटनायक जी ने हमें जगाया है। वो चाहे खेल में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो। आपको मालूम होना चाहिए संसद को, खेल में अगर महिलाओं के लिए देखा जाए, उड़ीसा ही एक ही प्रदेश है जो महिला हॉकी को स्पॉन्सर किया है। अगर देखा जाए स्वास्थ्य में, ममता से लेके BSQI में 10 लाख रुपया महिलाओं के लिए स्पेशल है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो महिला जो बच्चे पढ़ते हैं, जो गर्ल्स पढ़ते हैं, उनको फ्री साइकिल, अच्छा पढ़े तो लैपटॉप कैसे बढ़े वो हमेशा ध्यान में रखते हैं। उनके ऊपर भी उनका विश्वास है महिला आगे जा सकती है। इसीलिए वो सारे चीज़ महिलाओं के लिए ही करते हैं। क्योंकि हमारे जो वहाँ के मिशन शक्ति है, जिसमें 6 लाख से भी ज़्यादा ग्रुप, 70 लाख से भी ज़्यादा महिला उसमें हैं, उनमें हैं। अगर देखा जाए तो आज वो आसमान छू रहे हैं, क्योंकि वो अभी चूल्हा चौके में नहीं रहे हैं, वो अभी लैपटॉप चला रहे हैं। आज का अगर देखा जाए, ओडिशा के जो प्रोडक्ट होता है ना, वो अभी फ्लिपकार्ट में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से लेकर कहाँ तक वो सारे विदेशों में भी जा रहे हैं। ये है विश्वास, ये है खुद का महिलाओं के ऊपर विश्वास जो मेरे मुख्यमंत्री ने किया है। आज महिला को थोड़ा सोचने का और थोड़ा समझने का मौका चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुख्यमंत्री ने मैंने वो सब किया, मगर कुछ चीज़ ऐसा है जो उनके हाथ में नहीं है। ये संसद के हाथ में है, ये सरकार के हाथ में है। 33% रिजर्वेशन, मैडम मैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूँ। 33% रिजर्वेशन, आप अगर चाहे 33% रिजर्वेशन दे के सबको आप महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। बस ये संसद के हाथ में है। अभी मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करूँगी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ का निकट में देहांत हुआ है। अगर देखा जाए वो एक जोगजन्मा को पैदा किए थे। अगर देखा जाए तो मैं तो सोचूंगी कि मैं तो बोलूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी ये महिला संरक्षण बिल लागू किया जाए, और देखा जाए तो ये उनके माँ के लिए भी श्रद्धांजलि होगा, सारे माँ के लिए भी श्रद्धांजलि होगा। ये और एक बस एक आधा मिनट, हमारे बिरसा मुंडा को माननीय
महामहिम राष्ट्रपति जी ने बिरसा मुंडा को बोले कि आदिवासी के जो भगवान है उनके लिए म्यूजियम किया गया। मगर मैं एक बात बोलूंगी, मेरे नवीन पटनायक ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देके राउरकेला में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम निर्माण किया, वो भी 5T के चलते 15 ही महीनों में। ये कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये है ओडिशा सरकार की प्रतिबद्धता। मैं चाहूंगी कि जैसे सभी लीजेंडरी को आप लोग सम्मान देते हैं, मेरा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने एक रिक्वेस्ट किया था सबको कि महात्मा गांधी जी को भी लीजेंडरी, महात्मा गांधी जी के सम्मान में अगर हो सके तो संविधान के प्रियम्बल में अहिंसा का नाम थोड़ा जोड़ दीजिए, वो भी हमारे लिए और सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं आपका आभारी हूँ और ये मौका देने के लिए मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ। वंदे उत्कल जननी। ऑनरेबल श्रीमती कविता पट्टीदार। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी ने संयुक्त सदन में जो अभिभाषण दिया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। विकसित भारत के निर्माण में सरकार के 9 वर्ष के प्रयासों के परिणाम स्वरूप समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत की बात को माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में रखा। मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए आप सभी के बीच में खड़ी हुई हूँ। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इस मंत्र के अनुसार किसान के जीवन को आसान बनाने और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही सरकार की प्राथमिकता में देश के 11 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसान भी हैं जो दशकों से प्राथमिकता से वंचित रहे हैं। उनके कल्याण की प्रतिबद्धता हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की कार्य पद्धति में दिखाई देती है। इस बात का हमें गौरव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि को सृजित भी किया, इस योजना को, और उसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया। किसानों की आय बढ़ाने में सीधी सहायता प्रदान करने की भावना से दुनिया का सबसे बड़ा सीधा किसानों के खातों में जाने वाला लाभ पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अंतरित करने का काम किया। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मोदी जी की सरकार सालाना 6,000 रुपए सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने का कार्य कर रही है। इस योजना के द्वारा 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि उनमें से 3 लाख से अधिक कृषक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई है। एक समय ऐसा भी था जब देश में कहा जाता था कि हम ऊपर से 100 रुपए भेजते हैं तो नीचे जाते जाते सिर्फ 15 रुपए बचते हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का पारदर्शी, जनता हितैषी नेतृत्व हमें प्राप्त है, जिसने ये सुनिश्चित किया है कि अगर हम किसान के खाते में सालाना 6,000 रुपए की राशि डालते हैं तो वो पूरी की पूरी 6,000 राशि नीचे सीधे उसके खाते में पहुंचती है। कोई बीच में बिचवाल नहीं, कोई भी एक भी पैसा की कोई कटौती नहीं। और यही पारदर्शिता सुनिश्चित भी करती है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। मैं आज पारदर्शिता की बात करते हुए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की निवासी हूँ, मैं मध्य प्रदेश की भी बात कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, जिनके बारे में मैं कहूँगी कि जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान स्वयं एक किसान हैं, इसलिए किसान की पीड़ा से बहुत अच्छे से वाकिफ है। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि जो 4,000 रुपए सालाना है, वो जोड़कर मध्य प्रदेश के किसानों को अब 10,000 सालाना राशि उनके खातों में पहुंचती है। ये कार्य करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है। उसके साथ ही सहकारी संस्थाओं के द्वारा शून्य ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना, हमारी सिंचाई परियोजना को बढ़ाना और साथ ही समर्थन मूल्य देना, ऐसे कई प्रयास मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। और उसी का ये परिणाम है
कि 7 बार का कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। हम सभी इसके लिए गौरवान्वित हैं। मुझे याद है इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता के साथ अपने भाव को जोड़ते हुए कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, हर बंदिश हर बाधा को तोड़, अरे भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि ये बात सिर्फ शब्द मात्र नहीं थी, बल्कि अक्षरशः इसका पालन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने दिन रात प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज कृषि निर्यात में दुनिया के टॉप 10 देशों में भारत का नाम शामिल है। कोरोना रुकावट के बावजूद भी कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। हम गुजरात के कमलम फ्रूट, जिसे ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, वो आज निर्यात किया जा रहा है। हिमाचल से पहली बार ब्लैक गार्लिक का निर्यात हुआ है। जलगांव का केला हो या भागलपुरी आम हो, ऐसे अनेक फले जो विदेशी बाजार को भा रहे हैं और ऐसे उत्पादनों को प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार द्वारा जिला स्तर पर निर्यात हब बनाए जा रहे हैं, जिससे छोटे किसानों को सीधे बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए खेत व बाजार की दूरी को कम किया जा रहा है। इसका भी लाभार्थी हमारा छोटा किसान ही है, जो फल, सब्जी, दूध जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादनों से जुड़ा है। बाजार और किसानों की आय में सुधार के लिए किसान रेल और किसान उड़ान शुरू की गई है। किसानों के लाभ के लिए 2300 से अधिक ट्रेन सेवाओं और 58 हवाई अड्डों का उपयोग आज किया जा रहा है। यही दिखाता है कि प्रगति और परिवर्तन कैसे होता है। आज फ्रूट प्रोसेसिंग में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ रही है। इससे किसानों को उपज के ज्यादा दाम मिलने के रास्ते खुल गए हैं। कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, निर्यात व्यवस्था हो, इनसे छोटा किसान सीधे कैसे जुड़े, ये हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुझे एक गीत के बोल भी याद आ रहे हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और मुझे लगता है ये सोना हीरे मोती हमारे श्री अन्न है, जिसको दुनिया भर में प्रोत्साहन मिले, उसके लिए सरकार आज प्रयास कर रही है। उनके बीजों में गुणवत्ता कैसे आए, इसलिए अनेक हब का निर्माण आज हमारी सरकार कर रही है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि वर्तमान में भारत दुनिया में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक और बड़ा उदाहरण है नैनो यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड और प्रभावी नैनो यूरिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 2014 के पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर के क्षेत्र में कितने संकट थे, कितनी कालाबाजारी थी, लेकिन दुनिया में हमने ये करके दिखाया, क्योंकि देश में यूरिया के कई कारखाने बंद हो गए थे। हमारी सरकार के प्रयास से 6 बड़े यूरिया के कारखानों को शुरू करने में हमने मेहनत की और आज बेहतर खाद की उपलब्धता हमने सुलभ करवाई है। हम जानते हैं कि आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी वाली खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। डीएपी हो, एमओपी हो या एनपीके हो, किसान किस कंपनी से खरीदे, ये सवाल था, भ्रमता और चिंता का विषय था। इन सारी समस्याओं का निदान करते हुए वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में बेहतर खाद की उपलब्धता के लिए एक ही नाम, एक ही ब्रांड से गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और वो ब्रांड है भारत, जिससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी और खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से पूरे भारत की 3.25 लाख से ज्यादा खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्रों के रूप में हम लोग बदल रहे हैं। और ये समृद्धि केंद्र सिर्फ उर्वरक की बिक्री खरीदी का केंद्र नहीं होगा। यहाँ पर बीज, उपकरण, मृदा जो परीक्षण है, ऐसे सभी सवाल जो किसानों के हैं उनका जवाब मिलेगा। एक ही केंद्र से किसान को हर जानकारी और किसान से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। खेती की पैदावार के बढ़ाने के लिए अच्छी उपज हेतु नई टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाने पर बल देते हुए मोदी सरकार द्वारा 22 करोड़ से अधिक स्वायत्त हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं और देश भर में
11,531 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी गई है। सिंचाई को लेकर सरकार के प्रयासों से भी जो कार्य हुए हैं, हम सब उससे परिचित हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचाई पर, स्प्रिंकलर पर सरकार बल दे रही है। पिछले 70 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। साथ ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अहम रास्ता जो हम सब जानते हैं नेचुरल फार्मेसी से हम लोग को मिलेगा, उसको भी बेहतर बनाने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की राशि की सहायता आज हमारी सरकार प्रदान कर रही है। परिणाम स्वरूप विश्व की कुल जैविक उत्पादन का 30% का उत्पादन आज भारत करता है। आज बीज से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा रहा है। कृषि मंडियों को आधुनिक किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठकर ही किसान देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज को बेच सके, यह ई नाम के माध्यम से सुलभता की जा रही है। ई नाम से 2.25 करोड़ से ज्यादा किसान, 2.5 लाख से ज्यादा व्यापारी जुड़ चुके हैं। अभी तक इसके माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की लेन देन हो चुकी है। मैं यहाँ कृषि के क्षेत्र में नए स्टार्टअप की भी बात करना चाहूंगी। खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग को हमारे स्टार्टअप एक नए रूप में ले जा रहे हैं। मैं बस कर रही हूँ 5 मिनट, 2 मिनट सिर्फ माननीय उपसभापति। आज पहले ये स्टार्टअप सिर्फ 100 थे, आज 3,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं और ये टैलेंट भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य एक नए सिरे से लिखने जा रहे हैं। इसी तरह छोटे किसानों के लिए फसल बीमा, किसान क्रेडिट, जिसको मैं कंक्लूड कर रही हूँ, टाइम इज ओवर, प्लीज कंक्लूड। 2 शब्द में मैं कंक्लूड करूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर माननीय राष्ट्रपति जी के वो जो शब्द हैं जिनमें उन्होंने वेद वाक्य में कहा था कि हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्वरों में एकता का प्रभाव हो और जैसे उनके भाषणों में समृद्ध भारत का स्वरूप दिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जग के मस्तिष्क पर रौली के समान हमारा जगमगाता हुआ आज भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः राष्ट्रपति जी को उनके अभिभाषण के लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। थैंक यू। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। Thank you, sir. I, and on behalf of my party, Assam Gana Parishad, rise here today to support vote of thanks addressed by Her Excellency President of India, sir. Sir, I am proud I am an Assamese. Sir, I am proud I belong to Northeastern region, sir. And I am too proud I am an Indian, sir. In Indian freedom struggle, like other parts of India, Assam and Northeastern region also contribute much. I remember, sir, a 14 years school girl from Gopur, Assam, who is trying to host the national flag in Gopur police station in Assam, was killed by the British army, sir. I salute cannot let us, sir. Sir, in the Azadi call of Indian independence, sir, I am too proud joint session of Indian Parliament addressed by Her Excellency President of India, who belongs to a tribal community, sir. But this is the respect of our government towards the tribal people. This is the respect of our government towards the backward peoples. Sir, I like to going back, sir. In 2014, sir, India was ruled by the British, sir. And in the British rule, first Asia first refinery was established at Sir Igboy in Assam, sir.
That was the first refinery of Asia, sir. From 1947 to 23, days are going very fast, sir. Country also developing very fast. After independence, Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India, sir. And after independence, rightly, genuinely, people of Assam demanded for establish one refinery in Assam, sir. But it's a decline, sir. A refinery was established at Barawani with the crude oil from Assam when Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of the country. But it will take long time, sir. After the long agitation of 13 years, in 2016, we got a refinery. In British Raj, we got a refinery in Dibrugarh, and independent Bharat, we got a refinery in Assam, but it is a small refinery, sir. This is just 1 million ton refineries. But it is known to everybody, Assam is a crucial processing state, sir. Sir, poverty. I remember, sir, in 70s, in our school life, there is a food crisis in our country, sir. People are not getting to eat the food, sir. There is no rice, sir. There is no food, sir. Now we are self-sufficient, not only self-sufficient under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. 80 crores people got medicine during the COVID time, sir. Are self-sufficient under the leadership of Narendra Modi ji is not just a slogan, sir. It is implemented, sir. Because we are self-sufficient. Sir, we remember in the COVID time, sir, people are not getting masks. People are not getting sanitizer. And we are self-sufficient. Now, India produced not only masks, not only sanitizer, India produced own vaccine. And India is the only country of the world who vaccinates more 200 crore people in our country. Sir, every time we are speaking out of China. China is a big power. China has a money. But China failed to vaccinate the Chinese people. But Narendra Modi government successful to vaccinate our people, sir. Sir, in mobile industry, India is self-sufficient, sir. Not only, sir, now India is exporting mobile, sir. Sir, I am coming to the northeastern region, sir. In 2014, when Modi ji took down as a Prime Minister, he announced northeastern region in our priority sectors. He not only announced, sir, he has implemented, sir. Sir, before 14, sir, give me 2 minutes time, sir. Before 2014, sir, here is only one cancer hospital in Assam, sir. Bhubaneswar Borua Cancer Hospital, sir. When Modi ji take place today, there is 9 cancer hospitals in Assam. With the support, with the blessing of the Prime Minister, and another 10 cancer hospitals in the pipeline in Assam under the leadership of Hemanta Biswa Sarma, dynamic Chief Minister of Assam. Sir, I know my time is short, but sir, I have to speak much, sir, because I know the parliamentary decorum. I cannot speak the most. I know your position, sir. But one thing I like to say here today, sir. Achievement is achievement. By criticizing anybody, you cannot stop the achievement. But criticizing anybody, you cannot stop the achievement. Please conclude, Virendra. Sir, I like to say one more thing with this. I like to conclude, sir. Now, India is moving towards one of the most developed countries in the country, sir. I hope under the leadership of Honorable Prime Minister, in coming days, India will growing up more and India will develop more with this year. Thank you, Chairman, Thank you. for allowing me to speak. Thank you, Virendra. Thank you.
श्री घनश्याम तिवारी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप आसन पर हैं और मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, और वक्ता बहुत अच्छे हैं तो श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे, और मुझे समय मिलेगा, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जो वक्ता श्रोता होता है वही ज्ञान का निधि होता है, और मैं समझता हूँ आप ज्ञानवान आदमी है, इसलिए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं उपसभापति महोदय में निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी सभा में जाओ, उसमें अगर सत्य आपको पता है और उस सत्य को आप प्रकट नहीं करो तो आप पाप के भागीदार होंगे। तो मैं आज मन से एक सत्य को प्रकट करना चाहता हूँ। आज जो चर्चा जिसमें हो रही थी, विपक्ष के माननीय नेता खड़गे साहब एक घटना की बात कर रहे थे, और माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का उन्होंने वो वक्तव्य सुनाया था। उस घटना के समय, उस वक्तव्य के समय मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उस समय मौजूद था, और मैं उन तथ्यों को और उन बातों को सदन के सामने अगर स्पष्ट रूप से नहीं रखूं तो मेरे लिए उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में वो गोधरा के गुजरात की स्थिति के बाद में चर्चा हो रही थी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो कार्यकारिणी की मीटिंग में बिल्कुल पीछे बैठे थे। पूरी समय पर चर्चा हो गई, और चर्चा होने के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए और खड़े होकर बोले निर्लिप्त भाव से, मुझे ध्यान है सीन, आप आधी बाहों की कमीज पहन रखी थी, और खड़े होकर बोले, एक शब्द बोले थे कि यदि कार्यकारिणी को इतना बोलते मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। मैं 12 साल तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूं। सारी कार्यकारिणी ने एक स्वर से कहा कि नो नो नो, आपको मुख्यमंत्री रहना है। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप तो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए अपना मुख्यमंत्री पद पर बने रहिए। ये उस समय की घटना है जो मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी हूं, और इसलिए मैंने आज सभा के सामने अगर मैं उस समय भी खड़ा हुआ था जिस समय बात चल रही थी, इसलिए इस सारी शब्दों को एक साथ बोलकर काम करने का काम करना चाहिए, ये मैंने कहा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात से बहुत ही इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बात करना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया ने, महामहिम ने, तो उड़िया कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी सावंत की जिस कविता का जिक्र किया था अपने अभिभाषण में, वसुंधरा तले भारत रमणी, नूहे हीन नूहे दीन, अमर कीर्ति कोटि युगे, कैभे जगतुम नोहिम लीन। भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में न तो हीन है न दीन है, संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। इसके इस ओडिशा की कविता की उस 100 वर्ष पहले कही गई, इसके साथ उन्होंने शुरुआत की, और उसका प्रतीक के रूप में भारत के लोकतंत्र के 75 साल के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक अमृत की बूंद की तरह से माननीय द्रौपदी जी मुर्मू ने ये अभिभाषण दिया। उस अभिभाषण का हम समर्थन करते हैं, और उस अभिभाषण में जो उन्होंने पहली बात कही, हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। माननीय सभापति महोदय, अतीत से जुड़ा हो और स्वर्णिम अध्याय हो। आज अमृत काल में कहा कि अतीत से जुड़ा हो और स्वर्णिम अध्याय हो। 25 साल बाद जब 100 साल का होगा, इसका अर्थ क्या है? अर्थ बहुत साफ है, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, ओ चिर नवीन, ओ पुराचीन, उपमा विहीन, जय है, ये इसका अर्थ। जगती का प्रथम राष्ट्र भारत। मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता, जब मैं भाषण सुन रहा था, आइए आप भी भारत जोड़ो में शामिल होइए, आप भी भारत जोड़ो में शामिल होइए। भारत कोई नया राष्ट्र नहीं है। दुनिया मानती है कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। उसमें कहा है
वयम राष्ट्रे जागृयाम, हम हमारे राष्ट्र का जागरण करें। उसमें राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय राजन्य सुरिख ब्योति दोग्द्री देनु नडवाणानसु स्त्री युवा से जवान से वीरो जायता, बहुत लंबा है। तो राष्ट्र आज का नहीं। अरे राष्ट्र को जब जोड़ने की बात करते हैं तो थोड़ी सी बात सुन ले कि पार्वती माता शिव जी की पत्नी, वो गिरिराज की बेटी है, हिमालय की बेटी। उनको शिव जी से प्यार हो गया, लव मैरिज करने की इच्छा होगी कि शिव जी से प्यार करेंगे। अब शिव जी से प्यार करना था, शादी करनी थी, वरम शंभु ने तो रही कुमारी, तो उनको हिमालय की बेटी को कैलाश के थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, मानसूर की तरफ। वहां न जाकर वो कन्याकुमारी में गई, तमिलनाडु के पास, और कन्याकुमारी में जाकर वहां तपस्या की, और वहां देवी पादम का मंदिर कन्याकुमारी में बना हुआ है। तो जो कन्या पार्वती हिमालय से कन्याकुमारी में गई और वहां जाकर शिव जी के लिए प्रार्थना की, तो पार्वती माता समुद्र के किनारे कन्याकुमारी से हिमालय पर शिव जी को देख रहे हैं, और शिव जी महाराज उत्तर में बैठे हुए पार्वती को तपस्या करते हुए देख रहे हैं कन्याकुमारी में। तो जब शिव जी और पार्वती जी संपूर्ण भारत को अपने नेत्रों से देख रहे हैं, तो ये भारत तो उसी दिन जुड़ गया था। इसको कौन जोड़ने का प्रयत्न करते हैं? ये भारत जुड़ा हुआ है, भारत, उस भारत को। अरे पार्टी ना जुड़ी तुमसे, क्या भारत का जोड़ो? अब भारत जोड़ो। अब फिर भारत जोड़ने का प्रयत्न किया, मैं बोल रहा हूं, बोलने दीजिए। भारत जोड़ने का प्रयत्न किया आदि शंकराचार्य ने। वो कहां से चले? वो केरल के कालड़ी गांव से चले, और केरल के कालड़ी गांव से चलकर ठेठ केदारनाथ तक गए। उस भारत जोड़ने वाले सन्यासी की गांव में कौन गया? कालड़ी में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जाकर वहां उनके गांव में, घर में जाकर वो बात की, और वहां से केदारनाथ में जाकर उनका स्मारक बनाया, जो आज तक नहीं बना। ये भारत जोड़ने का काम तो ऐसा है ना, आओ जुड़ो, आओ जुड़ो। हम तो जोड़ ही रहे हैं, हम तोड़ने का काम कर ही कहा रहे हैं। एक और मुझे जो बार बार ये बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, किसने शुरू किया हिंदू मुस्लिम? हमने कभी नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। 1900 कांग्रेस अधिवेशन में किया। हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, मेरा समय, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। 1914 में मुस्लिम लीग के साथ खिलाफत आंदोलन में जो समझौता किया कांग्रेस ने कि हम टर्की में खिलाफत का समर्थन करेंगे, तुम भारत की आजादी का समर्थन करो, उस दिन हिंदू मुसलमान की नींव कांग्रेस पार्टी ने डाली थी, जो 1947 में विभाजन के रूप में जाकर उभरी है। पाप तो कांग्रेस का किया हुआ है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू मुसलमानों का अलग कानून बनना चाहिए। हम तो हिंदू मुसलमान के अलग कानून के पक्ष में नहीं है साहब। सबका साथ, हम तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए कानून, सबके लिए काम हो। हम तो कभी इसमें करते ही नहीं। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया बिना जात के। अब जितनी लाभार्थी हैं भारत में मुस्लिम जनसंख्या के आपात में, वो करते मुसलमानों का नाम नहीं लिया। हम तो हिंदू मुसलमान को अलग मानते ही नहीं है। इसलिए जब लाभार्थियों में जितने गरीबों को लाभार्थी मिले हैं, उनमें 31% मुस्लिम है। आबादी से दुगना उनको लाभ मिला है। ये नहीं दिखता है। एक तो इसलिए अरे यहाँ की बात करो, वर्तमान की। मौलाना याद कर रहे हो, माल खा रहे हो, माल। मौलाना तो सभापति महोदय, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरे मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने जो अभूतपूर्व काम किया है, उस काम को मैं आप जानना चाहता हूँ।
सुन लो, दो, शिक्षा की बातें सुन लो। अब ये रनिंग कमेटी मत करो भैया, सुन लो, थोड़ा सा धैर्य रखो, वो डायरेक्ट होंगे। Please, तो मैं please do not, सभापति please महोदय, do not disturb the. मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लाई। Is it point of order? Is it? 238 with explanation. So there is nothing against you, but you refer to Khilafat Andolan. That was an idea of Mahatma Gandhi. This house has not acquired a stature whereby you can question the decision of none other than the great personality called Mahatma Gandhi. It was Mahatma Gandhi's idea. महात्मा गांधी जी का हम इतना समर्थन करते हैं, तो मैं Please carry on. सभापति महोदय, नई शिक्षा नीति माननीय मोदी जी ने जारी की। उस नई शिक्षा नीति वो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति 1884 में उन्होंने कहा था, मद्रास से लेकर, उसमें मद्रास नाम था चेन्नई का, मद्रास से लेकर उन्होंने यात्रा की और यात्रा करके हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने भाषण दिया कि हमने यहाँ नए गरीब देखा है, न हमने यहाँ पर लाचार आदमी देखा है, न झूठने वाला आदमी देखा है। जब तक हम इनकी शिक्षा पद्धति को समाप्त नहीं कर सकते, तब तक हम इनको गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति पर हमला किया और लॉर्ड मैकाले के आधार पर हमारी शिक्षा नीति बनी। वो शिक्षा नीति चलती रही, उसको चेंज करने का प्रयास सबसे पहले किया मुरली मनोहर जी जोशी, जब भारत के मानव संसाधन मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तब सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, वहां से काम चालू हुआ। और उसके बाद भी मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब माननीय अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने मुझे, मैं शिक्षा मंत्री था राजस्थान का, और सारे भारत की कैब कमेटी का यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन बनाया था। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और उस कमेटी के चेयरमैन के नाते हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हुआ। और उसके बाद में माननीय मोदी जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति जारी की, जिसके अंतर्गत ग्रोस एनरोलमेंट रेशो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पादन का 3% से बढ़ाकर 6% सार्वजनिक व्यय करने का तय किया गया है और मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। ये काम यहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो शिक्षा पर जो व्यय किया जा रहा है, उस शिक्षा के व्यय पर माननीय सभापति अगर ध्यान देंगे तो 2013-14 के बजट में 26,750 करोड़ रुपए थे, 2022-23 में 40,828 करोड़ हुए और 2023-24 में 44,094 करोड़ रुपए हुए। एक बढ़ोतरी शिक्षा के क्षेत्र में हुई। स्कूल शिक्षा में 13-14 में 52,701 करोड़ आवंटित हुए, 22-23 में 63,449 करोड़ आवंटित हुए और 23-24 में 68,804 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा में भारत सरकार ने आवंटित करके शिक्षा का क्षेत्र का ये काम किया। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, Please conclude. Try to conclude. You have one more minute. Ghanshyam ji, that is the. मैंने सर आपको शुरू में कहा था कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। That is the time allotted, Ghanshyam ji. So you have one more minute. Please carry on. Please carry on. तो मैं निवेदन ये करना चाहता था कि मुझे कहा गया था कि आपको 15 मिनट का टाइम है। It is only caution bell. One more minute. Please carry on. हाँ, यस। 1.5 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ डिजिटल में, 18 लाख विद्यार्थी और 14,500 स्कूलों का विकास हुआ। इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हैं, उनका भी हमने 1,049 से बढ़ाकर 1,249 किए। नवोदय विद्यालय खोले हैं। उच्च शिक्षाओं में हमने 42,343 कॉलेज जो हमारी हो गई है। इसी प्रकार से UGC की संख्या में बढ़कर 90% की बढ़ोतरी हुई है।
शिक्षा के हर क्षेत्र में काम किया है और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए, मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए और 2 डिग्री एक साथ लेने के लिए, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस शिक्षा नीति को भारत के सभी प्रांतों ने भी स्वीकार, सरकारों ने भी स्वीकार कर लिया है और ये शिक्षा नीति भारत के लिए एक नई दिशा का काम करेगी। अंत में थैंक यू घनश्याम जी, प्लीज कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ साहब। अंत में एक जो राजस्थानी भाषा के कवि हैं, उन्होंने कहा, सबने अपनी कविता की बात कही है, तो मैं 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। आजादी के अमृत काल में हम अमृत पुत्रों की आस फलित हो गई, कुर्सी कलित हो गई, कुलित हो गई, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अति दलित हो गई, पिछड़ी अगड़ी, अब उपराष्ट्रपति धनखड़ प्रचलित हो गए, जगत मान प्रधान नरेंद्र मोदी, भारत माता ललित हो गई, G20 जय शिरोमणि बड़ी साख हमारी है, गणतंत्र शीर्ष सिंहासन शक्ति स्वरूपा नारी है। श्रीमती जया बच्चन प्लीज, श्रीमती जया बच्चन जी। Thank you, sir. This has been a test of endurance. All the members sitting here should all be applauded for being here almost the whole day, since 11 in the morning. जी, कुछ कह रहे हैं आप? आप बिल्कुल इंटरप्ट मत करिए। हाँ, मैं आपको बहुत हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ। So I'll read because the time is very little and reading is faster than speaking. So while thanking the President of India for her benevolence, I'd like to discuss the life of every Indian of the country, a life which they should live in the Amrit Kal with pride and dignity and security. The first point, again, a lot of my MPs have spoken about, especially the women. Such a tragedy that men never talk about women and empowerment. The first, I warned you, do not. Please do not interrupt when honorable members speak. Whenever you get an opportunity, you can express your views. Please carry on. And sir, you'll have to give me this time. Please carry on, Bachchan. Thank you. Please carry on. The first point is women welfare, their presence in the society and the dignity. Dignity. If you see the mention in the address, there is only proclamation of what the government has done, but no mention of what the government has achieved or bettered in the life of women. जिस देश में माँ, बहन, बेटियां, यहाँ तक कि 2 महीने की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, उस देश को अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने का कोई हक नहीं है। जहां तक महिलाओं का सम्मान के साथ जीने का सवाल उठता है सर, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। चेष्टा जरूर है, ये मैं कहूंगी, चेष्टा जरूर है, आप लोगों ने तो नहीं किया। It is said in the address that from education to career, the government is trying to remove obstacles for our daughters. How is my question? It's a huge question. I think all women are asking this. How are you going to do it? I don't see it in the address. Just proclaiming that they have built toilets for women, the government cannot claim that dignity to women has been provided. I want to give a small example. I know a lot of NGOs who work in villages, and I know a little young girl who wants to do some work, went to Madhya Pradesh. वो जा रही थी भोपाल से छिंदवाड़ा तक. In the middle, she needed to use the toilet. So there was an old lady, she asked her, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं कहाँ जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, वो खेत में चले जाइए. This young girl was very shocked because she came from a very different environment and she was told that
There are toilets provided. Dignity to women is provided. सर, ये है सच्चाई स्वच्छ भारत अभियान का. This is the actual truth. I've been to villages. I have seen what's happening. Now, I would also like to know why there is no mention of the Nirbhaya fund in the speech. What's happened? Nirbhaya has vanished. The fund has vanished. As it is, the fund was reduced. Now, there is no mention. I think there should have been a mention. Mera dusra point is about sanitation workers. There is a little mention, but who also need to lead a life of dignity and pride. Unfortunately, there is no mention about their welfare and safety in their dress. अमृत काल के समय में हम ये सोच रहे हैं कि आधुनिक मशीनरी कब तक और कितनी आएंगी और कब हमारे सैनिटेशन वर्कर्स को राहत मिलेगा. When will their dignity as a human will be given duly deserved by them? My third point is, sir, दुर्भाग्य की बात है that there is no mention as to what the government has done to provide dignity and livelihood to the senior citizens and to live in this country with pride. India's elderly population aged 60 years and above is projected to touch 194 million in 2031, from 138 million in 2021. A 41% increase according to the National Statistics Office. What is the government's action plan? May I ask, what is the government planning to do for these senior citizens? There is complete negligence towards this section in a progressive country. All over the world, social security is provided to the handicapped, disabled, and elderly by the government. But in our country, no such provision is given. Millions of senior citizens have served the country to bring the country up to this standard. They have been completely ignored, deprived of any dignity of age since hard work and dedication to the country. Lastly, sir, I would like to point out the government's absolute disregard for the artistic community. We have had Bharat Ratnas like Pandit Ravi Shankar. We have had Bharat Ratna, Lata Mangeshkar ji, Bhimsen Joshi, M.S. Subbalakshmi ji. Many more are also a nation where great painters have been conferred with Padma Awards like Jatin Das ji, M.F. Hussain Sahib, writers like Nirala ji, Panch ji, Harivansh Rai Bachchan, who have also been conferred with the Padma Awards. We are also a nation where great artists, cine artists, performing artists like Prithviraj Kapoor, Dilip Kumar, and Satyajit Ray have made our country proud. इन्होंने अपने जीवन और अपने कला से इस देश को गौरवित किया है और इस देश का नाम रोशन किया है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में. Thank you, Jaya Bachchan. Thank you. Time is over. Time is over. 1 minute. This is my request to you, sir, but it's up to you. I will listen to you. Please conclude. Please conclude. मैं ये सोचती हूँ कि सरकार को इन बड़े बड़े कलाकारों के नाम पर भी कुछ करना चाहिए. इनको केवल अवार्ड न देके सम्मान स्वरूप कुछ काम करना चाहिए. मेरा सजेशन है सर सरकार से कि नए पार्लियामेंट में सिर्फ पॉलिटिशियंस के पोर्ट्रेट्स न लगाए जाएं और सिर्फ उनको ही माला न चढ़ाया जाए. ये बड़े बड़े कलाकारों ने जिन्होंने who are the true ambassadors of this country should be also respected by creating this. Sir, no history of a nation is made by politics and politicians. The history of a nation is written with the achievements of art and literature. और आखिरी एक पॉइंट कह दूं, आप अगर रिजल्ट Please conclude. Thank you. One more. Just a demand from the government. Time is already. You have taken 2 more minutes. Please conclude.
Please conclude. अभी वो कह रहे हैं बोल दीजिए. Yeah. He is also one of the deputy chair. So I will take the liberty. सर, मैं आखिर में जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार चलाती है, उनमें से अधिकतर बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओबीसी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, एससी, एसटी की संख्या का आधार बनाते हैं. लेकिन 1931 के बाद भारत में जाति अधिकरण आधारित जनगणना नहीं हुई, जिससे हमें ओबीसी की संख्या का पता नहीं चला. On this opportunity given, we demand, I think I have the support of the entire House, the census due soon should be caste-based so they can get the advantage and due share in welfare schemes, government jobs, and other walks of life. Thank you very much. Thank you, Jaya Bachchan. Yeah, thank you very much. Sri Ramchandar Jangra. धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया. अधिकतर विषयों पर बात हो चुकी है. मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद इस बात पर भी करता हूं कि उन्होंने अपना संबोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया. पूज्य गुरु गोलवलकर जी ने एक जगह लिखा है कि अगर किसी राष्ट्र को समाप्त करना हो तो उससे उसकी भाषा छीन लो. अगर वो भाषा से कट जाएगा तो अपने साहित्य से कट जाएगा, साहित्य से कट जाएगा तो अपनी संस्कृति से कट जाएगा, और भाषा, साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो अपनी राष्ट्रीयता से ही कट जाएगा. और जिस देश की राष्ट्रीयता नहीं रहेगी वो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा. इसलिए मैं तमाम मातृभाषाओं का आदर करते हुए, जितनी भी हमारी मातृभाषा है देश की, उनका आदर करते हुए राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना भाषण, अपना उद्बोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया है. मेरा विषय, मेरी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मैं सोशल जस्टिस पर कुछ अपनी बात करूं. मान्यवर, आदमी केवल रोटी के ऊपर जिंदा नहीं रहता है, आदमी के पास एक मन भी होता है. और इसी को दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है चिति, जिसको चित्त कहते हैं. आदमी भूख को कठोरता से बर्दाश्त कर सकता है, शारीरिक चोट को भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मन के ऊपर जो चोट लगती है, उसकी आस्था के ऊपर जो चोट लगती है, उससे आदमी तिलमिला जाता है. और उस अपनी आस्था और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आदमी कोई भी बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है. माननीय लक्ष्मण जी ने अपने पहले संबोधन में वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा की थी. तो नाबालिग साहिबजादों ने किस तरह से अपनी आस्था को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, ये इतिहास के अंदर पन्नों के ऊपर दर्ज है. मैं एक और वीर बालक की चर्चा करना चाहूंगा. वीर हकीकत राय का जिक्र आता है इतिहास के अंदर. जब उनको कहा गया कि हकीकत नाम है तेरा, तू समझता नहीं हकीकत को, तू उल्टा जा रहा है छोड़कर राह तरीकत को. कुफ्र को छोड़ दे, पाक कर ले नियत को, गुनाह धुल जाएंगे ले मान अकामे शरीयत को. यहाँ और आकबत दोनों जहां में सुरखरू होगा, नहीं तो ये देख ले तलवार होगी और तू होगा. 12 साल के हकीकत राय ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास है आत्मिक शक्ति, तुम्हारे पास खंजर है, मेरे पास है ओम की भक्ति. ये वो दिल है जिसमें ज्योत परमेश्वर की है जगती. करो तुम लाख कोशिश, जो कभी पत्थर को नहीं लगती. तुम में इतनी तो हिम्मत है, मेरा सर तुम उड़वा दो, लेकिन बहादुर तब जानो जब मेरा धर्म तुम छुड़वा दो. मान्यवर, आस्था के ऊपर जब चोट लगती है, यह सबसे बड़ी चोट इंसान के ऊपर होती है. और करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर मरहम जो लगाने का काम किया,
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर की नींव रख के किया, केदारनाथ के जीर्णोद्धार करके किया, काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार करके किया। और मैं इसलिए कहता हूं कि आदमी के पास एक मन भी होता है, केवल मात्र रोटी के ऊपर आदमी निर्भर नहीं होता है। और हम ये तो सुनते हैं ताजमहल किसने बनवाया, हम ये सुनते हैं लाल किला किसने बनवाया, लेकिन ये कभी नहीं सुनते कि ये बनाया किसने। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर की नींव रखी, तो उसके शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा को सामने बिठा के उससे भूमि पूजन करवाया। ये पहली बार शिल्पकारों को सम्मान दिया गया है, वरना कोई चर्चा नहीं होती। ये बनाया किसने, बनवाया किसने, ये चर्चा होती है। मैं मान्यवर सामाजिक न्याय की बात कर रहा था। सामाजिक न्याय केवल रोटी से या घर से भी पूरा नहीं होता है, वस्त्र से पूरा नहीं होता। मैं चर्चा कर रहा था, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर अंडमान निकोबार द्वीपों का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण किया गया। यह भी एक सामाजिक सम्मान है, यह सैनिकों का भी सम्मान है, समाजों का भी सम्मान है। इसलिए सामाजिक सम्मान केवल मात्र रोटी तक निर्भर नहीं होता है। मान्यवर, मैं अभी चर्चा कर रहा था राम मंदिर जी की। माननीय राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा कि केवल मात्र मंदिर निर्माण नहीं करवाए, हमारी सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उद्बोधन में कहा कि मेरी सरकार ने मंदिर के साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण करवाया। और नए बजट के अंदर 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नर्सेज कॉलेज का भी प्रावधान किया गया, क्योंकि नर्स नहीं होंगी तो मेडिकल के अंदर हमारी फिर देखभाल कौन करेगा। भारत की यह संस्कृति है, भारत की संस्कृति में देवताओं का स्वरूप बहुत बड़ा है। और विदुर नीति को अगर हम पढ़ेंगे तो धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। विदुर जी ने लिखा है महाभारत के अंदर कि धर्म की परिभाषा बहुत विस्तृत है। वृक्षों की हरियाली की रक्षा करना भी एक धर्म है, पानी को शुद्ध रखना भी एक धर्म है, वायु की गुणवत्ता रखना भी एक धर्म है, माँ बाप की सेवा करना भी धर्म है, और एक अबला की इज्जत की रक्षा करना भी धर्म है। अपने राष्ट्र के ऊपर बलिदान हो जाना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वायु को भी देवता की संज्ञा दी गई है, अग्नि को भी देवता की संज्ञा दी गई है, जल को भी देवता की संज्ञा दी गई है। और जिसने भी मानवता के लिए जो भी उपकार का काम किया है उनको देवता की संज्ञा दी गई है। और पहली बार भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करोड़ों दलितों के उद्धारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देवता की संज्ञा देते हुए उनके 5 कर्मस्थलों को तीर्थ के अंदर पंच तीर्थ घोषित किया। ये इतिहास के अंदर पहली बार इतना बड़ा सम्मान उस करोड़ों दलितों के उद्धार करने वाले देवता को दिया गया है। ये मैं सामाजिक न्याय की मैं बात कर रहा था। यहाँ तो मत्स्य तक को भी अवतार माना है, यहाँ तो वराह को भी अवतार माना है। इसलिए मान्यवर, अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, मैंने वो दिन देखे। अंधेरा होने से पहले महिलाएं शौच आदि के लिए नहीं जा सकती, और जाती खुले के अंदर बैठती, कोई आदमी दिखाई देता, अरे भाई कोई आदमी आ गया, उठ लो, खड़ी हो गई, फिर बैठ गई, फिर कोई आदमी आ गया, भाई कोई आदमी आ रहा है, उठ लो। कितना जिल्लत का जीवन हमारी माँ बहनें जिंदगी जीती थी, किसी ने कोई इस बात के ऊपर परवाह की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 9.5 का 11 करोड़ 7,70 लाख परिवारों को शौचालय देके भारत की महिलाओं को इस जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति दिलवाई और उनको इज्जत और सम्मान का जीवन देने का काम किया। ये सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। अभी चर्चा हो रही थी गैस कनेक्शनों की। 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन जो धुएं के अंदर फूंक मार मार के हमारी माताएं आज समय से पहले अंधी हो जाया करती थी, उनको मुहैया करवाए। और केवल मात्र इतना ही नहीं, अभी वो चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर साहब चले गए कहीं, मातृत्व की बात,
मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। मैं मान्यवर एक बात कहना चाहता हूं कि लंबे समय तक हिंदुस्तान के दलितों को, पिछड़ों को एक सब्सिडी के जीवन के ऊपर आधारित करके अपने वोट बैंक के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश की गई कि मैं समय आएगा तुम्हें कन्यादान की राशि दे देंगे, तुम्हारे स्कूल को बच्चों को स्कूल में बस्ता दे देंगे, तुम्हें 3 रुपये किलो चावल दे देंगे, तुम्हें 2 रुपये किलो आटा दे देंगे, 12 रुपये किलो दाल दे देंगे, 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सब्सिडी सहारा है, सब्सिडी समाधान नहीं है। मैं लंगड़े को लाठी के सहारे नहीं चलाना चाहता, मैं लंगड़े को टांग लगाना चाहता हूं ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। इसलिए इस मौजूदा बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उठाने के लिए, वो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे जो प्रावधान किए गए वो पहली बार किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो आदमी को प्यारा होता है वो अपना घर होता है। मान्यवर आदमी घर की बड़ी चाहत होती है। पहली बार 7 वर्षों के अंदर 2,79,00,000 घरों का निर्माण किया गया और 2023-24 के अंदर 66% बजट में बढ़ोतरी करके 79,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार इस बार ये बजट के अंदर प्रावधान किया गया। इसलिए मान्यवर मेरे जिम्मे था तो केवल मात्र सामाजिक न्याय के ऊपर बात करने की, लेकिन मैं शिल्पकार समाज से ताल्लुकात रखता हूं, मैं विश्वकर्मा समाज से ताल्लुकात रखता हूं, इसलिए मैं वो अपनी बात कहना चाहता हूं। कंक्लूड भारत के अंदर क्या रहा? आपका समय खत्म हो रहा है, आप कंक्लूड करें। मैं 1 मिनट में बस अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। आज तक विश्वकर्मा परिवार के जितने भी वंशज हैं, उन वंशजों के हाथ को काम देने के लिए क्या किया गया? कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना नहीं चलाई गई, कोई नए हुनर उनके अंदर विकसित करने की योजना नहीं चलाई गई, कोई उनको विदाउट कोलेटरल गारंटी देने के ऋण देने की योजना नहीं चलाई गई, कोई उनके उत्पादों को एमएसएमई के साथ जोड़ के, उस चेन के साथ जोड़ के उनकी बिक्री की व्यवस्था नहीं करवाई गई। पहली बार भारत सरकार के बजट में देश के करोड़ों विश्वकर्मा वंशजों को, देश के शिल्पकारों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय निर्मला सीतारमण जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं और हम सदैव इस बात के लिए भारी रहेंगे। आपने जो मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद झंगड़ा जी। ऑनरेबल डॉक्टर फौजिया खान। धन्यवाद डेप्यूटी चेयरमैन सर। महामहिम राष्ट्रपति ने इस देश के विकास के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, इतना सुंदर कि किसी भी भारतीय को ये वर्णन सुनकर अभिमान से उसका सीना फूल जाए। ये भाषण को मैं एक फूलों के गुलदस्ते की तरह देखती हूँ, लेकिन कांटे बाहर रखे गए। सभापति महोदय, जैसा एक विवाह मंडप होता है, विशाल, प्रकाशी, चमकदार, लेकिन पीछे क्या होता है ये उसकी हकीकत हम सब जानते हैं। सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अमृतकाल का उल्लेख किया। यहाँ सोनल जी भी कह रही थी इंडिया के हेरिटेज के बारे में। हमारे भारत का हेरिटेज राम राज्य भी है और मुझे ऐसा लगता है राम राज्य की बात हमने करना चाहिए। राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य वो राज्य है जहां किसी आंख में आंसू न हो, जहां हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो और जहां हर किसी के साथ सच्चा न्याय हो। सभापति महोदय, सच्चाई की बात निकली तो महात्मा गांधी का ख्याल आया, इस देश के सबसे बड़े राम भक्त। सभापति महोदय, जिन्होंने कई तूफानों के बीच हमारे देश की कश्ती को अहिंसा, सत्य, भाईचारा, प्यार, इसकी तरफ हमारी कश्ती को दिशा दी। सभापति महोदय, आज हम जिस प्रजातंत्र में जी रहे हैं,
उस विशाल प्रजातंत्र की नींव भी महात्मा गांधी जी ने ही रखी। महात्मा गांधी के आश्रम में एक भजन गाया जाता था, न सिर्फ गाया जाता था बल्कि जिया जाता था। उस समय वैष्णव जन तो तेने कहियो, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। सभापति महोदय, सच्ची विष्णु की जनता वही है जो किसी और की पीड़ा को जाने और अगर किसी दुखी के लिए किसी के लिए उपकार किया तो मन में अभिमान ना आने। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है सभापति महोदय। सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी ने इस देश को एक फॉर्मूला दिया था। शायद उन चीजों से अगर हम बचें तो राम राज्य की ओर हम जाएं। उन्होंने 7 ग्रेव सोशल सिंस तक बताए थे, 7 सामाजिक बुराइयां, सिद्धांत रहित राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। सर, कैन पॉलिटिक्स without principles exist where fear, hatred and exclusion are used as a strategy for polarization, where a loveless society exists? ये बात हमको सोचनी चाहिए। हमने तो ये भी देखा है सभापति महोदय कि इस देश के बापू एक सच्चे राम भक्त को भी क्रोध की आग ने लपेट लिया है। ऐसा माहौल आज हम देख रहे हैं। वेयर इज द पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स? सदाचार रहित व्यापार, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। सभापति महोदय, जहां 1% लोग, उनके हिस्से में 40% संपत्ति इस देश की है, क्या हम कॉमर्स विदाउट मोरालिटी की कल्पना कर सकते हैं? ऐसी जगह जहां हम सबका साथ सबका विकास की बात तो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सच का साथ सच का विकास होना चाहिए, और जहां सच का साथ और सच का विकास होगा वहीं पर हमें ये सब चित्र देखने को मिलेगा। परिश्रम रहित धनोपार्जन, वेल्थ विदाउट वर्क। सभापति महोदय, हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि द गवर्नमेंट इज रिलेंटलेसली फाइटिंग अगेंस्ट करप्शन। बहुत अच्छी बात है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहां भी सच का साथ होना चाहिए सभापति महोदय। वरना ये कैसे मुमकिन है कि विपक्ष में इंसान हो तो भ्रष्टाचारी और सत्ताधारी हो तो सदाचारी, और ईडी की नजर कभी सत्ताधारियों की तरफ पड़ती नहीं है? तो ये किस तरह का जादू है और किस तरह का ये हम कहेंगे कि ये एक प्रिंसिपल है जो आज के समाज में जिस पर चला जा रहा है। सभापति महोदय, संवेदना रहित विज्ञान, साइंस विदाउट मोरालिटी। अगर हम अपने पड़ोसी देश को देखें सभापति महोदय, चीन को देखें, वो आज क्या कर रहा है। मैं कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स है वो उसके बारे में उल्लेख करना चाहूंगी। चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग अ मैसिव डैम ऑन द माबूजा जैम्बो रिवर just a few kilometers north of the India-Nepal border in order to use it as a weapon of war. Sabhapati Mahoday, this could lead to tensions in the near future and China could establish complete control over the water in the area, Sabhapati Mahoday. वहाँ चाइना एक एयरपोर्ट भी बिल्ड करना चाह रहा है जिसमें एयरफोर्स मूवमेंट हो। क्या भारत इस बारे में सतर्क है? सभापति महोदय, आगे चल के ये भी कहा गया है कि तिब्बत से जो ब्रह्मपुत्र निकलती है उस पर 20 डैम्स बनाने का नियोजन किया जा रहा है और वहाँ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। ये सब जो उस एरिया में होने वाला है सभापति महोदय, तो दिस इज कॉल्ड अ वाटर बॉम्ब, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में हमारे इकोसिस्टम को बहुत डैमेज होने वाला है। हमारा पानी, हमारा एग्रीकल्चर इससे बुरी तरह अफेक्ट होने वाला है। तो क्या हमारा देश कोई ट्रीटी
के बारे में सोच रहा है, जैसा हमारा इंडस वैली ट्रीटी है उस तरह की चाइना के साथ? क्योंकि मैं जहां तक जानती हूं कि एक सादा एग्रीमेंट हमारा है, लेकिन ये जो भविष्य में हमें धोखा दिख रहा है, इस बारे में हमारा देश क्या कर रहा है, ये मेरा सवाल यहाँ है सभापति महोदय। राष्ट्रपति जी ने कहा है that the government is visualizing a Bharat whose youth and women power will be at the forefront. मेरा प्रश्न है सभापति महोदय, when and how? प्लीज सभापति महोदय, did we मैं even दोनों तरफ से आग्रह start करता हूं। taking? आपकी तरफ भी यही हालत था, इधर भी यही हालत। सभापति महोदय, did we even start taking some baby steps in this direction, and what is stopping us? मेरा मन मुझे एक प्रश्न पूछ रहा है सभापति महोदय। ये भारत की राष्ट्रपति महिला है, हमारी अर्थ मंत्री महिला है, तो क्या सारे भारत की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल गया है? जहां समाज में न्याय की बात हम करते हैं, उस समाज में प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है और वो हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। सभापति महोदय, 1947 से लेकर आज तक महिलाओं को पार्लियामेंट में 14%। थैंक यू सभापति। थैंक यू डॉक्टर फौजिया खान जी। इंदु बाला गोस्वामी जी, इंदु बाला गोस्वामी नॉट प्रेजेंट। श्री संजय राउत जी, प्लीज टेक योर सीट प्लीज। श्री अगेन आई शुड नॉट टेल both sides. You too had such problems, please. माननीय संजय राउत जी, अभी कुछ देर पहले जो आपसे मैं बार बार गुजारिश करता रहा उसको याद करें प्लीज। माननीय संजय राउत जी नॉट प्रेजेंट। श्री रवांग वरा नर्जरी प्लीज। Thank you, sir. Respected Deputy Chairman, sir. Thank you for the opportunity given me to speak on this occasion of motion of thanks on President's address to the Parliament. I, on behalf of my party, United People's Party Liberal, and the people of Assam, would like to express our deep appreciation and gratitude to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, for her humble address to the joint sitting of both the Houses of Parliament on 31st January 2023. I do share the love and affection found in the President's address towards the people of Northeastern region. Sir, in this moment, I congratulate the Honorable Prime Minister of Narendra Modi ji for his marvelous leadership and completing 9 years of government of India, the world's largest democratic country. Under the vibrant leadership of Sri Narendra Modi ji, India could occupy and move to her economic position from 10th to 5th largest economy in the world. What I could emphasize is that the content of every word and sentence in the President's address to the Parliament is the true case of champion of government's vibrant policy and action for the development of the country, connecting every nook and corner and all sections of the society under the indomitable leadership of Narendra Modi ji. The thought process of Government of India, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and Sabka Prayas become the source of inspiration and quotable paths of development of great India. Sir, there was a moment that people of Northeastern region have always been felt deprived and ignored by the Government of India in every sphere of life. But nowadays, under the leadership of Narendra Modi ji, the feeling of deprived and ignored has switched over to the feeling of care and experiencing a new dawn of peace and development. Sir, the number of successful steps taken by the government of India for containing the difficult situation of unrest and terrorism in the northeastern region has brought to a path of peace and development. Sir, the signing of Bodo Accord, accord with Bodo, Karbi and other ethnic groups, and speedy implementation of Accord itself shows the positive attitude and care of the government of India towards the people of northeastern region. The policies, action taken by the government of India for the development of northeastern region, which is reflected in the address of the President of India, is appreciable and adorable. I express our appreciation and gratitude to the government of India, looking forward prosperous and inclusive developed India
under the leadership of Narendra Modi ji. Sir, I conclude my words supporting this question address. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री पवित्र मार्गेरिटा, माननीय श्री पवित्र मार्गेरिटा, Pavitra Margarita, please, is not present. He is here only outside. Shri माननीय ब्रिजलाल जी, माननीय ब्रिजलाल जी, please, माननीय ब्रिजलाल जी. माननीय उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले 31 जनवरी 2023 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को धन्यवाद देता हूँ। महोदय, भारत के प्रधानमंत्री के निर्देशन में भारत सरकार द्वारा सशक्त भारत के लक्ष्य को अपनाया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कानूनी प्राविधानों को मजबूत किया है। सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सबसे पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नेवी के बेड़े में शामिल करना, रक्षा उपकरणों में 6 गुने वृद्धि, स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्माण में वृद्धि आदि शामिल है। महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे सुरक्षा बलों को तेजी से आधुनिकीकरण करना शुरू किया। यूपीए सरकार के दौरान पूरी रक्षा खरीद प्रक्रिया भ्रष्टाचार से त्रस्त थी। आजादी के बाद सबसे पहले जीप स्कैम हुआ और उसके बाद तो रक्षा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार की लाइन लग गई, चाहे वो चापर घोटाला हो, टट्टा ट्रक घोटाला हो, आदर्श स्कैम 2012 हो, सबमैरिक स्कीम हो 1981, गोफर्स स्कीम हो, बोइंग एयरक्राफ्ट स्कैम 2009 का, और चाहे वो स्कॉर्पियन सबमरीन का हो। महोदय, घोटाले ही घोटाले रहे और इसी कारण हमारे सुरक्षा बल मजबूत नहीं थे। लेकिन जब 2024 में मोदी जी सत्ता में आए, तब सेना, नेवी, वायुसेना में 1980 के दशक के हथियार और रक्षा प्रणालियां थी। लेकिन पदभार ग्रहण करने के बाद मोदी जी ने रक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाते हुए गतिशील प्रदान की। मोदी जी के नेतृत्व में सैन्य बलों के लिए आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक जैसे अति आधुनिक परिवहन हेलीकॉप्टर, M777 तोप, K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आउटीजर और S-400 जैसी मिसाइल की आधुनिकतम रक्षा प्रणाली जैसी रक्षा संपत्ति हासिल हुई। महोदय, वज्र M777 की रेंज 30 किलोमीटर से अधिक है, तो इससे हमारी पहाड़ी क्षेत्रों की लड़ाई में प्रयोग किया जाता है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका निर्माण भारत में किया जा रहा है। K9-155 तोप की रेंज 40 किलोमीटर है और ये भी 2 से 4 गोले प्रति मिनट फायर करती है। इसको भारत सरकार ने अक्वायर किया। महोदय, भारत तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब रक्षा प्रणाली के निर्माण में वो आत्मनिर्भर न हो। इसलिए स्वदेशी खरीद के जरिए सैन्य आधुनिकीकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। 2022-23 के बजट में पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है और आयात पर निर्भरता हमारी कम हो रही है। सभापति महोदय, पिछले वित्तीय वर्ष में ही सशस्त्र बलों ने HAL द्वारा विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर MK3 जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म खरीदे हैं। स्वदेशी नीलगिरी श्रेणी का चौथा फ्रिगेट P-17A भी नेवी में अभी शामिल हुआ है और कई फ्रिगेट अब जो है इसमें
बनाए जा रहे हैं। अभी 6 फरवरी 2023 को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तुमकुरु कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शुभारंभ किया है। इससे देश तो आत्मनिर्भर होगा ही, हम विदेशों को भी अपने हेलीकॉप्टर निर्यात कर सकेंगे। प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापट्टनम में अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का निर्माण तेजी से किया जा रहा है और यह पहला विध्वंसक पोत नेवी को दिया जा चुका है। महोदय, इसके अलावा घरेलू सैन्य, नागरिक, एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा निजी क्षेत्र में C295 परिवहन विमान निर्माण की सुविधा की आधारशिला गुजरात के बड़ोदरा में रखी गई है। अब भारत के पास INS विक्रांत सहित 2 विमान वाहक पोत हो गए हैं और तीसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण की कार्रवाई पूरी कर चुकी है। महोदय, आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान के बाद भारत विश्व का 7वां देश है जिसके पास विमान वाहक निर्माण करने की क्षमता है। उपसभापति महोदय जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली फ्रंट लाइन सैनिकों को स्वदेशी विकसित बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, अत्याधुनिक AK-203 राइफलों का निर्माण हम अमेठी में कर रहे हैं और इस ऑटोमेटिक राइफल से हमारी जो सुरक्षा बल हैं, फ्रंट लाइन फोर्स हैं, उनका मनोबल काफी बढ़ा है। इस तरह महोदय हमारी सेनाएं जो हैं, सुरक्षा बल हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सब आज दुनिया की एक आधुनिकतम सेना है, मजबूत सेना है और उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। महोदय, अब आती बात है देश की आंतरिक सुरक्षा। देश के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए माओवाद ये बहुत हद तक जिम्मेदार रहा है, आतंकवाद जिम्मेदार रहा है। सभापति महोदय, 2024 में जब मोदी जी की सरकार यहाँ पर आई तो ये जो माओवाद का आतंकवाद था उसको हम लोगों ने काफी हद तक कम कर लिया गया। महोदय, यूपीए सरकार में मैं कुछ घटनाएं याद कराना चाहता हूँ। 6 अप्रैल 2010 को गांव मेटला थाना चिंता गुफा दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में 73 जवान मारे गए थे, जिसमें 75 CRPF के थे, एक दिन में मारे गए थे। महोदय, यह घटना नक्सलियों द्वारा की गई थी और यहाँ JNU में उसका जश्न मनाया गया था। वही JNU जहाँ ये कहा जाता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये महोदय, तो ये इसी तरह से 12 जुलाई 2009 को छत्तीसगढ़ के कोराकोट्टी राजनांदगांव में 29 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2004 में नक्सलियों ने एक ही दिन में कोरापुट टाउन में SP ऑफिस, 5 पुलिस स्टेशनों, कोरापुट जेल, उड़ीसा स्पेशल आर्म्ड बटालियन मुख्यालय पर हमला करके भारी मात्रा में हथियार लूट लिए थे। महोदय, ये नक्सलिज्म जो है इसका समापन तब होता है जब इसके लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से कदम उठाए जाए। महोदय, इसके लिए हम अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह को भी धन्यवाद देते हैं और उनके निर्देश पर, उनके नेतृत्व पर उग्रवाद की जो वामपंथ का उग्रवाद का, उसके लिए 3 प्रमुख कदम उठाए गए। उसमें है उग्रवादी हिंसा पर कड़ाई के साथ कार्रवाई करना। नक्सली ये ना समझें कि हमारे साथ कोई मुरव्वत की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय। तीसरा है जन भागीदारी के माध्यम से विकास की गति को बढ़ाकर वामपंथी उग्रवाद को मिल रहे समर्थन को खत्म करना। महोदय, मैं 2010 में एक राष्ट्रीय स्तर के नक्सलाइट का मैं इंट्रोगेशन कर रहा हूँ, चिंतन दा, JNU के MPhil, यहाँ के PhD। और जब मैं उनसे पूछा कि आप उत्तर प्रदेश में क्यों सफल नहीं हुए, तो उन्होंने कहा हम यहाँ इसलिए सफल नहीं हुए कि आप लोग कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से आदिवासियों के बीच में जा करके, गरीबों के बीच में जा करके और तमाम जो आपने इनकी सेवा किया है, उनका विकास किया है, उसके कारण हम यहाँ नहीं घुस पाए। और उन जगह जहाँ वैक्यूम था, वी ऑक्युपाइड वैक्यूम को ऑक्युपाइड किया। सेंट्रल यूपीए गवर्नमेंट थी सेंटर में। महोदय,
सबसे बड़ा रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जब वो सीआरपी और बीएसएफ भेजती है, कोबरा भेजती है। तो उन्होंने कहा साहब हमने ऑक्युपाई कर लिया। तो आज ये हालत है कि जो विकास हुआ, क्योंकि नक्सलाइट जो होता है वो विकास नहीं होने देता, सड़क नहीं होने देता। मेरे परिवार का भी एक लड़का डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ है, और ये हालत है कि जब माननीय शोक वाजपेयी जी, वक्ता बोल रहे हैं, प्लीज आप बीच में ना आए, प्लीज अपनी सीट पे बैठे। सड़क बनाती है तो वो माइनिंग करते हैं, इसलिए कि अगर ये आदिवासी, ये गरीब, ये मजबूत हो जाएंगे आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो उनकी इसमें नहीं चल पाएगी। महोदय, आज हम लेफ्ट विंग टेररिज्म पर पूरा कंट्रोल किए हैं। जहां तक आतंकवाद की बात है, भारत के हिंटरलैंड में ब्लास्ट होते थे, चाहे यूपी के ब्लास्ट हो, जयपुर ब्लास्ट हो, अहमदाबाद ब्लास्ट हो, चाहे 29/10/2005 सरोजिनी नगर दिल्ली ब्लास्ट हो, 13/9/2008 दिल्ली ब्लास्ट हो, और तमाम जगह जो होते थे हिंटरलैंड में, आज क्यों नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उस जीरो टॉलरेंस का है कि आज ये आतंकवादी यहाँ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारण यूपीए की सरकारों में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते। मेरे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, एक राजनीतिक पार्टी ने 14 मुकदमे एक दिन वापस लिए। महोदय, जब यहाँ पर अफजल गुरु को फांसी हुई तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया, याकूब मेनन के फांसी की सजा हुई, दरवाजा खुलवाया, और ये मैसेज दिया वो आतंकवादियों के साथ है। लेकिन आज मोदी जी का विजन बड़ा क्लियर है, और यही कारण है आतंकवाद का खात्मा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ, और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय पवित्र मार्गेरिटा, प्लीज आप देखें, प्लीज प्लीज प्लीज, नो पॉइंट ऑफ व्यू, द डिस्कशन इज ओवर। नो प्लीज प्लीज, माननीय पवित्र मार्गेरिटा, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, मैं बहुत गर्व, आशा, विश्वास के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में यहाँ खड़ा हूँ। महोदय, मैं असम तथा पूर्वोत्तर से आया हूँ। अपने भाषण में माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा कही गई प्रत्येक बात ने समग्र देश सहित उत्तर पूर्व को भी स्पर्श किया है। इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले असम तथा उत्तर पूर्व के विषय में कुछ बातें उल्लेख करना चाहता हूं, एंड इट हैज गॉट रेलेवेंस टू द सब्जेक्ट। महोदय, महाकाव्यिक युगों से ही असम एवं नॉर्थ ईस्ट अखंड सांस्कृतिक भारत से जुड़ा हुआ है। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में कामरूप के राजा भगदत्त ने युद्ध किया था। मां सती के मृत शरीर का अंग कामरूप में गिरा था, और वही स्थान में है मां कामाख्या का मंदिर। शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी यही है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। किंतु उसी शक्तिशाली आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को कामरूप के महाराजा पृथु ने हराया था। नो डाउट इट वाज नॉट टॉट इन आवर टेक्स्ट बुक और हिस्ट्री, लेकिन ये तथ्य है। महावीर लासित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने औरंगजेब की सेना को पराजित कर खदेड़ दिया था। मुगलों को असमिया सेना ने 17 बार पराजित किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध हमने भी किया था। उत्तर पूर्व के देश प्रेमिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, जेल गए थे, अपने प्राणों की आहुति दी थी। गोमधर कुंवर, रानी गाइदिनलियू, वीर तिकेंद्रजीत सिंह, विद्रोही रत्नमणि, रियांग, हेलेन लेप्सा, यू तीरथ सिंह, श्याम, रानी रपुलियानी, मजेरीबा, संगुधन, पंगलो के आदि अनेकों ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था। हमारे उत्तर पूर्व में 200 से भी अधिक जाति जनजाति है और 220 से भी अधिक बोली भाषाएं हैं। तमिल भाषा के बाद 14वीं शताब्दी में रामायण का अनुवाद असमिया भाषा में हुआ था। हेमकोश असमिया भाषा में, ब्रेली में भी अभिधान है। सन 1935 में पहला असमिया सिनेमा जयमती का निर्माण किया गया था। यह भारत के प्रथम 10 बोलने वाले सिनेमाओं में से एक है। महान गुरु श्रीमंत शंकरदेव असम के संतान हैं।
भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका से आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, रतन श्याम, अरिबाम श्याम शर्मा, मेरिकम से लेके हिमा दास, लावलीना बरगुहाई, मीराबाई चानू, क्रीड़ा और संस्कृति के अनेक उज्जवल सितारों की जन्मभूमि है उत्तर पूर्व। उसी तरह महान अहोम वंश ने असम को 600 साल शासन किया था। एशिया महादेश का प्रथम ऑयल रिफाइनरी असम के दिग्बोय में स्थापित हुआ था। देश के 50% चाय का उत्पादन हम करते हैं। हम उत्तर पूर्व केवल भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व में एक शक्तिशाली और सुसंस्कृत क्षेत्र है। फिर भी विभिन्न जोनों के बीच क्यों जन्म हुआ विच्छिन्नतावाद, उग्रवाद? स्वाधीनता के बाद असम में तथा उत्तर पूर्व हमेशा उपेक्षित हुई और उन्नयन से भी वंचित होती रही। Who was in power both in the northeastern states and in the center? This is the main question. और लेकिन फिर भी ऐसे तूफान के बीच भी उत्तर पूर्व साहस के साथ आगे बढ़ता रहा। Although we were exploited, we were ignored, we were considered to be on the periphery, not on the so-called mainstream. But उत्तर पूर्व में आज टेररिज्म नहीं है, उत्तर पूर्व में आज टूरिज्म है। इसी समय राइट एट दिस मोमेंट G20 का Y20 समिट अभी चल रहा है, लेकिन just 10 years ago we used to see headlines related to terrorism. ये संभव किसके लिए हुआ? I know even my friends from the opposition can answer it. It is because of Modi ji. The answer is known even to the friends from the opposition. और क्योंकि उत्तर पूर्व ही अब विशाल भारत का ग्रोथ इंजन है, जिसके चालक है हमारा परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के प्रधान सेवक का दायित्व ग्रहण करने के बाद ही उत्तर पूर्व में उग्रवाद का घटना 74% कम हुआ है। जो अपना दिग्विजय सिंह साहब बोल रहा था अमृतकाल किसके लिए, कहां के लिए, हम अमृतकाल इज फॉर नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। डिक्रीज ऑफ 70% ऑफ एक्टिविटीज इन द टेररिज्म। 8,000 से अधिक उग्रवादी ने आत्मसमर्पण किया है। राष्ट्रद्रोह नहीं, अब राष्ट्र निर्माण में वो लोग they are dedicated themselves. 95%, almost 95% of the terrorist rebel groups are in dialogue. उन लोगों का साथ समझौता हुआ है। Almost I can say all the list like कार्बी उग्रवादी संगठनों का साथ, NDFB का 5 गुटों के साथ, 8 आदिवासी विद्रोही संगठन का साथ, सबका साथ मोदी जी आने का बाद ही शांति प्रक्रिया शुरू हुआ है। और बाकी 2-3 जो है उनके लिए भी बढ़िया माहौल अब बन रहा है। Even the other separatist groups are showing their willingness for the dialogue. So this is the change. That is why I don't know for Congress people whether it is Amritkal or not. For the 4.5 करोड़ नॉर्थ ईस्टर्न के लिए यही है अमृतकाल। यही है अमृतकाल, क्योंकि in North East there is no terrorism now, only tourism. No, and again, because the love and respect for the Northeastern people of Modi ji, I want to just give an example. Chairman sir, with the people of Assam had sent a great scholar, economist to the parliament, after which he occupied one of the highest posts of Indian democracy. We sent, almost he occupied the post for 10 years. But during the tenure of that 10 years, he visited his own state, wherefrom he was representing only for 8 times. 10 साल में सिर्फ 8 बार गया, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व में in the last 9 years he visited 50 times. दौरा किया, उन्होंने प्रवास किया, नॉर्थ ईस्ट का लोगों का मन की बात, दिल की बात सुना. This is the difference between we the ND or BJP and the other people. And some facts I must say because it will reflect the scale of development. Both hai, I don't have so much time, so and I have to cover almost all the 7 states along with my friend Kanyak. So the central government ministries departments have spent over 3.04 lakh crore under 10% gross budgetary support to Northeast from 2014.
And by spending by approximately 13,000 crores, Tuirial hydroelectric plant of Mizoram, Paria hydroelectric project and Kameng hydro project of Arunachal Pradesh, Tripura gas-based power plant, Agartala gas turbine combined cycle extension project have been dedicated to the nation. The central government is developing AIMS in Guwahati. We generally, in Assam, we don't establish clinics at Mahalla, but rather we commission medical colleges in the districts. Jahan all the modern technologies and medical science can be availed. And in Guwahati, AIMS is established with a cost of rupees 1,123 crore. Mane Pavitra ji, please. 1 minute. Motion of thanks on President address पर शेष जो बचे वक्ता हैं उनको आज बोलना है और ये संपन्न होना है, तो हम तब तक बैठते हैं जब तक शेष वक्ता है 3-4 लोग बोल लेते हैं. थैंक यू. ठीक, आप बोले. हाँ, प्लीज गो. Yes, so I don't know. In between, I'll give 2-3 examples, then I also can conclude. So, since independence in 67 years, Assam had only 3 bridges over River Brahmaputra. That is one Horaighat Bridge, Kolia Bhumra Bridge, and Pancharatna Bridge. In 67 years, we had only 3 bridges. But when Modi came to power, our NDA, our BJP came to power, within 9 years, we got new 3 bridges and 3 other on the pipeline. And these are to be completed within a year or 2. So Modi ji aane ka baad, usi 10-11 वर्ष में, we are going to get 6 bridges, complete bridges, and 3 bridges are another pipeline. So 67 years में only 3 bridges, and during Modi's era, 9 bridges in 10 years. This is the scale, this is the pace of development in our Northeast. So till 2018, over 3,000 kilometers of roads have been built with the investment of 29,000 crore. And so many data I have, but I think I don't have time to say each and everything. So riverine connection hai, railway connection. So a very interesting point I want to mention. In 1903, our northeastern state, Nagaland, got its first railway station, 1903 mein. So you can imagine, you can say me, what is the second station should be built or commissioned? 2020, 1920, 1930, 1940, 1950? No. We the people of Northeast and the Nagaland and the state of Nagaland, we had to wait for 119 years for the second railway station, which was commissioned by Narendra Modi ji's government. 119 साल रुकना पड़ा हमको for the second station. And another, you'll be very glad to know that Mizoram, I'm talking about Mizoram. Railways saw the light of the day in Mizoram. First broad gauge train charged into the Mizoram on 27th May 2016, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji flagged off the Silchar Bhairavi daily passenger. Similarly, Manipur entered the railway map of India when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji flagged off the first passenger train from Silchar to Jiribam. Sikkim is also waiting eagerly to get its first railway connectivity, which is nearing completion under this tenure of Narendra Modi ji. So this is the connectivity, because Narendra Modi ji always says that Northeast, the mission of Northeast is transformation by transportation. So not only this, we have got airports now about air connectivity. Honorable Modi ji took keen interest in improving air connectivity in our region. With Uran scheme in force, aircraft movement in Northeast from August 17 to 22 rose to 7,973 flights. Further, Group C airport in Western Assam, which remained defunct since 1984, has been redeveloped under Uran and open to public in 21. So Maharaja Bir Bikram Airport of Tripura has increased threefold. Pakyong Airport is the only airport in the state of Sikkim and the first greenfield airport constructed in the northeastern region of India, which is inaugurated by Honorable Modi ji in 2018. So you had been the opposition
especially the Congress had been in power for so long. But सब कुछ तो आज मोदी जी का दिन नहीं हो रहा है. That's why we wholeheartedly support which is being addressed by Honorable Her Excellency the President of India. और बाकी, I want to mention one thing. The opposition, even from our treasury bench also, we are discussing about Bharat Joro. It's good. But Chairman Sir, before I conclude my speech in support of the address of Honorable President, I will mention about a few points about our youth and sports. But before that, because Bharat Joro is a topic we have been noticing that's being glorified by the Congress people. Bharat Joro Yatra, okay. The official tweet on 10/2/22 in the official handle, which was tweeted in 10/2/22, the numeral leader and the signatory of the Bharat Joro Yatra had narrated, I quote, "There is strength in our nation." It's not my version, it's been I'm quoting it. It was reiterated by one of the highest leader of the Bharat Joro Yatra, the main signatory, the center of attraction. He tweeted officially. Very interesting and very heartening for you Northeastern people. Just will be surprised to listen to these sentences. There is strength in our nation. Our union of culture, our union of diversity, our union of languages, our union of people, our union of states, from Kashmir to Kerala, from Gujarat to West Bengal. India is a beautiful in all its colors. Don't insult the spirit of India, I unquote. अरे नॉर्थ ईस्ट किधर है भाई? हम भी है. बंगाल का उस तरफ हम भी. We are 7 states. अखंड सांस्कृतिक भारत का अभिन्न अंग है हजारों सालों में. लेकिन the main hero of the Bharat Joro Yatra, he tweeted officially that his map of India, the concept of India, is Kashmir to Kanyakumari. सही है. From Gujarat to Bengal. अरे बंगाल का उस तरफ भी हम लोग हैं ना. Assam है. Political tourist होने का नाते, you visit very frequently during the days of election. अरे Please. Understand का बात क्या है भाई? You see, it's officially tweeted. ये सब समझने का बात क्या है सर? The leader has tweeted that his concept of India, his India. एक class 6 का student can understand this. That from Kashmir to Kanyakumari, for Gujarat to Bengal. This is his India. So जिसका Indian concept में हम उत्तर पूर्वी नहीं है, उनका भारत जोड़ो हमारे लिए तो भाई नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लिए एक मजाक है. It's a joke for us. अब लोग भारत जोड़ो बोल रहे हैं, लेकिन आपका भारत में हम 4,50,00,000 लोग हैं ही नहीं. असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड. With these 7 states, it's not in the Bharat Joro concept. भारत में हो ही नहीं आप. लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए अपना नॉर्थ ईस्ट है अष्टलक्ष्मी. ईशान कुंभ में स्थित अष्टलक्ष्मी. The growth engine of modern India. That is why people of Assam, people of Northeast, always in support of Narendra Modi ji. Thank you. Jai Hind. Please conclude. Indu Bala Goswami, please. माननीय इंदु बाला गोस्वामी जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का सुअवसर देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ. वैसे तो देश के विकास की गाथा लिखने वाला कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें पिछले 9.25 वर्षों में महत्वपूर्ण विकास न हुआ हो. लेकिन मैं आज सिर्फ महिलाओं के विकास से जुड़े हुए बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगी. उपसभापति महोदय, आज देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो देश की नारी शक्ति के लिए इससे अधिक गौरवान्वित होने वाला पल क्या होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्तुतिकरण भी एक महिला द्वारा किया गया और बजट भी एक महिला द्वारा पेश किया गया. भारतीय नारी की महत्वता पिछले 9 वर्षों में कितनी बड़ी है, ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं. आज के नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक भारतीय नारी की योग्यता का परचम लहरा रहा है.
नए भारत में संसद से लेकर सरहद तक भारतीय नारी अपनी योग्यता व दम्य साहस का परिचय दे रही है। सेना हो या स्टार्टअप, ओलंपिक हो या रिसर्च या फिर आईटी इनोवेशन, बेटियों के आगे बढ़ने की ललक आज पूरी हो रही है। यही तो आत्मनिर्भर भारत की सही तस्वीर है। वह तस्वीर नहीं जो 65 वर्षों में देश पर राज करने वालों ने देश के सामने रखी थी। उपसभापति महोदय, 6 दशकों तक देश पर राज करने वालों ने देश की नारी शक्ति को केवल वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित रखा। जिस पार्टी ने 6 दशक तक देश पर शासन किया, उसके लोक लुभावने वायदे और नारे सुनते ही हम सब पले और बड़े हैं। हमें लाओ, गरीबी हटाओ, हमारा हाथ गरीबों के साथ। लेकिन इनकी 6 दशकों की नीतियां और निर्णय ऐसे थे कि गरीब और गरीब होता गया। देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, दंगे, फसाद, आतंकवाद बढ़ता गया और इसका दुष्प्रभाव अगर सबसे ज्यादा किसी ने सहा है तो देश की नारी शक्ति ने सहा है। यहाँ महिला आरक्षण की बात हो रही थी। मैं वहां बैठे जिन्होंने महिला आरक्षण की बात की उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब वो देश के प्रधानमंत्री थे, लोकसभा में 33% आरक्षण का बिल लाया गया था, पेश किया गया था। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन लोग थे और कौन चेहरे थे और कौन पार्टियां थी जिन्होंने तब 33% आरक्षण का विरोध किया था। देश की जनता ये जानती है। उपसभापति महोदय, जो परिवार आवास, पानी, बिजली, गैस, स्वास्थ्य सुविधाओं, अन्न से वंचित होता है, उसका खमियाजा सबसे ज्यादा अगर भुगतना पड़ता है तो उस परिवार की महिला को भुगतना पड़ता है। हमें गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री पर कि उनके द्वारा गरीब को आवास, बिजली, पानी, शौचालय, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना लाकर आज गरीब परिवार की ही नहीं बल्कि महिला की सबलता की भी नई कहानी लिखी गई है। उपसभापति महोदय, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.25 वर्षों का कार्यकाल भारतीय नारी के विकास का स्वर्णिम काल रहा है। प्रधानमंत्री जी देश का आह्वान करते हुए हमेशा कहते हैं कि हमें देश की मातृशक्ति को निर्माता, उद्यमी, उपलब्धियों हासिल करने वाली और कर्मशील नेता बनाना है। उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी की महिलाओं के प्रति इसी संवेदनशील अप्रोच का ही परिणाम है कि आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर देश की बेटी सुशोभित है। वह वित्त मंत्री भी बनी है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी रही है तथा खेल जगत, कर्तव्य पथ और सरहद पर भी अपनी ताकत का लोहा मनवा रही है। उपसभापति महोदय, आज देश की बेटियों के मान, सम्मान व अभिमान को बढ़ाने का काम अगर आजादी के 75 वर्षों में किसी ने किया है तो देश के गौरवशाली नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जब वे देश की बेटियों के जन्म को बोझ नहीं बल्कि गर्व महसूस करने वाला 4 शब्दों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लेकर आए। इन 4 शब्दों ने देश में कितना चौंकाने वाला परिवर्तन पैदा किया है, ये आप सोच भी नहीं सकते। पहली बार देश में बेटियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों पर 1020 हुई है। उपसभापति महोदय, कन्या समृद्धि योजना में लगभग 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगभग 3.10 करोड़ कन्या खातों में जमा की जा चुकी है। यही नहीं, आज देश में लगभग 20,000 से अधिक गांव संपूर्ण कन्या ग्राम घोषित हो चुके हैं। स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनने से आज 15 लाख लड़कियों के लिए अलग संचालित शौचालय है। उपसभापति महोदय, जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो माध्यमिक स्कूलों में छात्रों का नामांकन 2014 में 75% था, वह 2021 में बढ़कर 80% हो गया है और
बच्चियों का ड्रॉप आउट कम होकर नामांकन में 33% की वृद्धि पाई गई है। मातृवंदना योजना, मातृत्व बंधन योजना, पोषण अभियान से सृष्टि की जन्मदात्री और सृष्टि का आने वाला भविष्य दोनों ही सुरक्षित और स्वस्थ हुए हैं। उपसभापति महोदय, मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन कर संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो 2014 में 78% थी, 2019-22 में बढ़कर 89% हो गई है, अर्थात 11% की वृद्धि हुई है। उपसभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनने से और 9 करोड़ महिलाओं को पहली बार उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने से उनके परिवार की गरिमा, अस्मिता व स्वास्थ्य पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, विरोध करने वालों को उस मातृशक्ति के पास जाकर उनके शब्दों में सुनना चाहिए। उपसभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि जब देश की महिला की क्षमता को पहचान कर उसे घर से गगन तक आत्मनिर्भर होने का मौका देश देगा तो वह स्वयं व राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण मिशन बनेगी। राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रधानमंत्री जी के इस विश्वास की जीती जागती मिसाल है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 8.62 करोड़ महिलाओं को 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल किया गया है। छोटे छोटे समूहों में प्रशिक्षित, प्रेरित, मार्गदर्शित हुई महिलाएं स्वयं व परिवार के आत्म स्वावलंबन का पर्याय बन रही हैं। अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए आज आत्मनिर्भर भारत को गति दे रही हैं। यही कारण है कि हमारी सरकार ने 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को 1625 करोड़ की सहायता प्रदान की तथा महिला स्वयं सहायता समूह की गारंटी ऋण देने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की है। आज प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत ऋण पाने वाले उद्यमियों में 68% और स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन पाने वाली 83% कंक्लूड करिए महिलाएं लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं के लिए 26 करोड़ के करीब खाते खोले गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब और गरीबों की बात करती है। देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि 6 दशकों तक आपने देश पर शासन किया, आपने गरीबों के लिए कितने घर बनाए? अगर आपने बनाए होते तो प्रधानमंत्री को आवास योजना क्यों लानी पड़ती? हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ वायदा नहीं करते हैं, वायदों को कागजों तक सीमित नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया उसको धरातल पर भी उतारा। आज मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि आवास योजना के तहत ही 2 करोड़ महिलाओं को आवास के साथ मालिकाना हक भी मिल चुका है। इतने तो कांग्रेस ने प्लीज कंक्लूड नाउ प्लीज मैं दूसरा नाम बुला रहा हूँ प्लीज 2 मिनट लूंगी। मैं एक बात एंड में बोलना चाहती हूँ। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ प्लीज अंतिम लाइन बोले। इसलिए 2 मिनट सर, समय नहीं है, मैं कंक्लूड कर रही हूँ। 2 मिनट सर, अगर आप कंक्लूड नहीं करेंगे मैं दूसरा हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के साथ संकल्पों की सिद्धि करें, नए भारत के निर्माण का संकल्प करें। माननीय राम जी प्लीज, अब कोई बात आपके रिकॉर्ड में नहीं जाएगी प्लीज। माननीय राम जी प्लीज। धन्यवाद प्लीज सभापति महोदय, प्लीज यहाँ आपने मुझे राष्ट्रपति जी के भाषण पे बोलने का अवसर प्रदान किया और साथ ही मैं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, मैं कुछ पॉइंटों पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। शिक्षा, रोजगार, कृषि, सफाई कर्मियों का जीवन और जातिवादी और नफरत, ऊंच नीच की भावना इस देश के अंदर। मान्यवर, अमृतकाल का प्रसार खूब किया गया।
जिस तरह से एक समय में इंडिया साइनिंग का प्रचार किया गया, और इसी अमृत काल में सरकार ने एजुकेशन के स्तर के बारे में मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं। सरकार ने धीरे धीरे शिक्षा को अमीरों को ही देने का मन बना लिया है। इसीलिए गरीबों के बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों के बच्चे आज अच्छी शिक्षा के लिए महरूम हो रहे हैं। यही नहीं मान्यवर, कई सारे प्रदेशों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई सारे प्रदेशों में सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। यही नहीं, जो SC ST के बच्चे पढ़ाई करते थे, उन्हें वजीफा या स्कॉलरशिप मिल रही थी, वो वजीफा धीमे धीमे बंद कर दी गई। 2003 में उत्तर प्रदेश में फ्री एडमिशन की व्यवस्था की गई। माननीय बहन जी, उस वक्त माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी। 2003 में कहा कि SC ST के जो गरीब छात्र होते हैं, इनको फ्री में एडमिशन मिलना चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। वो व्यवस्था सरकार ने बंद कर दी उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में दलित और आदिवासी बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई। और यही नहीं, शिक्षा के स्तर को लेकर सरकार कितना गंभीर है, मैं उसके बारे में एक बानगी दे रहा हूं। 58,099 टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्टें खाली पड़ी, माने कि नवोदय के अंदर, केंद्रीय विद्यालय के अंदर और हायर एजुकेशन के अंदर 58,099 नॉन टीचिंग और टीचिंग की पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसमें यूनिवर्सिटी भी आती हैं, IIM जैसे इंस्टीट्यूट भी आते हैं। तो मान्यवर, दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कृषि के बारे में। सरकार ने कहा था हम किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, वही आज किसान पूरी तरह बेहाल हो चुका है। आज अपने परिवार का पेट पालने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ती है। खाद, बीज, दवाइयाँ, डीजल, ये सारी इतनी महंगी हो गई कि किसानों की कमर टूट रही है। आज बढ़ते पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों की फसल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड के बिना संभव नहीं है। लेकिन ये सारी दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई कि उनको खरीदना उनके लिए संभव नहीं हो रहा। उसके बाद भी 18% का GST उसके ऊपर लगा दिया गया है मान्यवर। इसके बावजूद किसानों की फसल का उचित दाम नहीं मिलता। अभी मध्य प्रदेश के अंदर तमाम किसानों ने लहसुन की खेती करी, लहसुन का दाम मिला 1 रुपए किलो। 1 रुपए किलो की वजह से सारे किसानों ने अपने लहसुन की फसल को नष्ट कर दिया। मान्यवर, ये गंभीर विषय है। यही नहीं मान्यवर, इसकी वजह से तमाम किसान कर्ज के से दबे हुए हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं। मेरा जिला लखीमपुर खीरी गन्ना प्रधान प्रदेश है, क्योंकि वहाँ कई महीने बाढ़ रहती है। किसान गन्ने की खेती करने को मजबूर हैं, लेकिन वहां पे जितनी शुगर फैक्ट्रियां होती हैं, वो सारी किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। 1 साल नहीं, 1.5 साल, 2-2 साल बाद गन्ने का पेमेंट करती हैं। किसान बेचारा दवाई खरीदता है, खाद खरीदता है, पैसे खरीदता है, ब्याज देता है उसके ऊपर, लेकिन उसके पैसे पे फैक्ट्रियां ब्याज देती नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में किसानों को उन पर ब्याज मिलना चाहिए अगर फैक्ट्रियां उन पर पैसा देर में देती हैं। रोजगार के मामले में, रोजगार के अवसर के देने में भी सरकार पूरी तरह विफल रही। सरकार ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, लेकिन 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 20 लाख या 2 लाख नौकरी देने में फेल हो गई। 10 लाख नौकरियां केंद्र की सरकार में खाली पड़ी हैं, आज तक वो नहीं भरी गई। यही नहीं, करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवक आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं। मानवर दुखी है वो सब, वो चाहते हैं कि सरकार हमें नौकरी दे, लेकिन हमें नौकरी नहीं दे रही सरकार। गरीबी हटाओ का नारा अब केवल नारा ही रह गया। पिछले 9 साल में गरीब और गरीब हुआ, अमीर और अमीर हो गया। सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री में देते हैं। यह आपकी उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती जब 80 करोड़ की आवाम आपके 5 किलो राशन पर निर्भर नहीं होती। आप इनको मजबूत बनाते, उनको एजुकेशन के स्तर को बढ़ाते, आप उनको रोजगार देते, लेकिन इस पर आपका कोई ध्यान मान्यवर नहीं है। वहीं मैं जातिवादी और नफरत, ऊंच नीच की भावना के बारे में बात करना चाहता हूं। सरकार के अमृतकाल में दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों पर अत्याचार और जुर्म जाति बढ़ी है। इस अमृतकाल में दलितों के बच्चों को कहीं मूछ रखने पर, कहीं अच्छे कपड़े पहनने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहीं पानी के मटके को छू लेने पर मात्र छात्र को इतनी पिटाई होती है कि जिससे उसकी बाद में मौत हो जाती है। इसी अमृतकाल में दलितों के बच्चों को घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है। इसी अमृतकाल में मध्य प्रदेश में दलितों के बच्चों को स्कूल में रोटी फेंक कर दी जाती है। इसी अमृतकाल में मध्य प्रदेश के सिवनी में
मध्य प्रदेश के सिवनी में आदिवासियों को रात में घर से खींच करके पीट पीट के मार दिया गया। इसी मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के बच्चों को ट्रक में बांध के खींच के मारा गया। मान्यवर, ये सारी बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं आज लास्ट में बात को अपनी खत्म करने से पहले सफाई के बारे में बात करना चाहता हूं। जैव विज्ञान की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, लेकिन मान्यवर ये सारी की सारी बातें तब बेमानी लगती हैं जब सफाई कर्मी मजबूरी में उस गटर के अंदर, सीवर लाइन के अंदर बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के उतरता है और उसकी मौत हो जाती है। मानवर, गटर में जाके उसकी मौत हो जाती है, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक गरीब मरा, सरकार पे फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार चाहे तो बड़ी बड़ी मशीनरी खरीद सकती है, सेफ्टी इक्विपमेंट खरीद सकती है, ये सारे काम कर सकती है, लेकिन मानवर ऐसा कोई काम नहीं होता। और यही नहीं, सफाई कर्मियों पे एक सर्वे हुआ कि कोई भी सफाई कर्मी 90% सफाई कर्मी 60 साल की उम्र को क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें गंभीर से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि इनके लिए मशीनरी और नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। मान्यवर, और साथ ही मान्यवर, मैं लास्ट में अपनी पॉइंट में 2 बातें सरकार से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि मान्यवर, सरकारी उपक्रमों को बेच करके डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की अभी भी पूरी देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मान्यवर, प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के बच्चों को रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल लाया जाए, और साथ ही मान्यवर, गरीबों के बच्चे, दलित और आदिवासियों के बच्चों को फ्री में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन दिया जाए, ताकि बच्चे उनके पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बन सके। मान्यवर, और साथ ही मान्यवर, प्रमोशन में रिजर्वेशन एक गंभीर मुद्दा है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कई सारे सांसदों ने बात रखी कि हम सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, लेकिन आज भी मान्यवर, प्रमोशन रिजर्वेशन में जो हमारा जो प्रमोशन मिलना था, वो उसका बिल राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन आज तक लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, उन पर सरकारों ने गंभीर मुकदमे लगाए। एक नहीं, 17, 20, 25 आज भी मुकदमे चल रहे हैं मान्यवर, डकैती जैसे मुकदमे चल रहे हैं मान्यवर। और इसकी वजह से गरीब बच्चे, कई सारे बच्चों ने गरीबी की वजह से मुकदमे नहीं लड़ पाए, उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। लास्ट में मान्यवर, 1 सेकंड में अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, सामाजिक परिवर्तन के महानायक, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हर साल आप लोग भारत रत्न देने का काम करते हो, तो मेरी मांग है, माननीय बहन जी ने भी मांग की कई बार, कि सामाजिक परिवर्तन के महानायक, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले और सामाजिक न्याय के पुरोधा, कोल्हापुर विरासत के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले माननीय श्री कांशीराम साहब को भारत सरकार भारत रत्न देने का काम करे। यही मेरी आपके माध्यम से मांग थी। जय भीम, धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती एस फोनगन कोन्याक। Deputy Chairman, sir, for giving me this opportunity to speak on the motion of thanks of the presidential address. As I stand here today in support of the motion of thanks, अभी जस्ट बाहर के आ रहे हैं, प्लीज। I begin by stating that the India we live in since 2014 is the new India, and our first tribal women president, a fact that I as Hey, 1 minute, just 1 minute. Point of rule. Sir, rule. 130. Please rule. Sir, 132. Sir, this is when there is a budget discussion going on. Honorable Chairman, sir, is very strict to a rules, procedure, precedents. Yes. So हमारे यहाँ पे आज ये डिबेट चल रहा है प्रेसिडेंट थैंक 132 is disposal of amendments. Sorry. एक भी not entertain. No, you have quoted wrong rule. एक भी कैबिनेट You have not quoted wrong. You have quoted wrong rule. कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं आ रहे हैं वो, प्लीज। कैबिनेट प्लीज आप प्लीज माननीय शक्ति सिंह गोयल जी, प्लीज टेक योर सीट। You have quoted wrong rule, so not allowed. प्लीज गए हैं माननीय मंत्री, प्लीज आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय मंत्री नहीं, माननीय सेंट्रल मिनिस्टर। I begin by placing on record
that the Please, India we Abole. live in since 2014 is the new India. Yes. And our first tribal women president, a fact that I, as a tribal, Rule sahi am quote also kariye, proud of. please. In her presidential speech, Yes. has amply highlighted the path our country has undertaken to come forward. Please let her speak. Please, you speak. आपका समय अभी से, please आप बोले. This is seen all over the country as well as in the northeastern region and my state Nagaland too. Without doubt, India is growing by leaps and bounds, and the northeastern region is also experiencing a paradigm shift under our leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. Being from the region, I know how deprived we were and how far Delhi felt. There was no real effort to reach out to the region. Today, the northeastern region is getting its due share of attention and affection it deserves. As a witness to the unprecedented development and progress across the region, most importantly, it must be stated that the northeastern region is now emotionally integrated with the rest of the country. The northeastern region is poised to play a bigger role in the years to come with the Act East policy, which earlier was the Look East policy. The northeastern region will play an increasingly important role in the development of the country as a whole. India now is going through a very crucial phase where the next 25 years will set the tone for India's growth and progress. In this journey, the northeastern region will shift from the periphery to the mainstream and contribute towards national progress. In health sector, one of the most revolutionary schemes introduced by the central government is the Ayushman Bharat Yojana. In my state, Nagaland, the beneficiaries of this scheme amount to over 2.3 lakh households. I have personally seen the impact that this scheme has in the lives of the people who now have access to quality health care. And everywhere you go in Nagaland, you hear people saying constantly, Modi ke piche khushi paishe, which means we are very grateful to Modi. It is a fact that Honorable Prime Minister Modi ji is hugely popular across the northeastern states because of his wise and astute leadership. When our president spoke about the infrastructural development, the northeastern region has been a major beneficiary of infrastructural development. I was also there present when on 18th December 2022, when Prime Minister Modi laid the foundation stone, inaugurated and dedicated projects worth over 2,450 crores for Meghalaya during the Golden Jubilee celebration of the Northeast Council. In Assam, the Bogibeel Bridge connects Assam and Arunachal. And this is a standing testimony of the infrastructural development taking place in the Northeast. While in Manipur, the world's tallest pier bridge is on the verge of completion, and also the first national sports university is set to be established in Manipur. We see the commitment of the Modi government in the Northeast. In Nagaland, we now have 2 medical colleges coming up, one in Kohima and one in Mon district. Connectivity in Nagaland has also increased. For a small state like Nagaland, where agriculture is the mainstay of the people, its famous ghost chili, the king chili, has been exported. A total of 2,04,477 beneficiaries have registered under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, the PM Kisan scheme in Nagaland. Similarly, another northeastern state, Tripura, is seeing a lot of positives in the field of agriculture. And this is a result of the proactive policies pursued by the Modi government. In fact, in 2022, Tripura exported pineapples worth 14 crores to Dubai, Qatar, and Bangladesh, besides exporting other fruits and horti products to countries like England and to Germany. It was the first of its kind. It was a waterway consignment. Kisan Rail and Kisan Udan schemes of the central government are benefiting the farmers of Tripura immensely. In the pursuit of making India the logistic hub of the world, the introduction of the PM Divine scheme, which is the Prime Minister's development initiative for Northeastern region, will play a massive role. It aims at rapid and holistic development of the Northeastern region by funding infrastructure and social development projects. In the spirit of PM's Gadi Shakti, it will ensure livelihood for the youth of the region and fill the developmental gaps in various sectors.
The Naga political issue, which has been mentioned twice today in the motion of thanks, the people of Nagaland are grateful that under Honorable Prime Minister Modi ji, the framework agreement has been signed in August 2015. Talks which had been going on for decades have, under Honorable Prime Minister Modi, proactively moved forward, and we are hopeful that the negotiating parties will come to a conclusion soon with a solution that is honorable, acceptable, and sustainable. Women empowerment has been the hallmark of the Modi government, and I, as the first women MP to represent my state here in the August House, after Nagaland attained statehood in 1963, is an example of inclusive governance. Successive earlier political parties and governments never thought of this. But under the double-engine government of Narendra Modi ji, today I am here representing my state. Also, I like to thank the inclusive vision of our Honorable Prime Minister that has brought in a luminary, an icon from the field of sports, and a small-time worker like me from the most backward area of Nagaland, where, as mentioned earlier, 100 years, after 100 years, we're getting a second railway station, which has been commissioned in Sukhumvit last year. With gratitude, I accept the Honorable Senior Member gave his congratulations, and with gratitude, I accept his congratulations because my election has also given a lot of hope to the women of Nagaland. It has given a lot of hope to the women across northeastern region and also the well-wishers across the country. I accept the congratulations without the rider that followed it. Harnessing Nari Shakti has been a crucial factor in moving India upward in the developmental index. And in the northeastern states, schemes like Ujjwala Yojana, Jal Jeevan Mission has brought much relief to our mothers, sisters, and daughters. Women empowerment is about many things, including creating an enabling environment for women to come forward. It is about opening sainik schools for female students. It is also about commissioning women officers in the armed forces. It is about bringing in women in the cabinet with key portfolios like external affairs, like defense, like finance. It is about celebrating the girl child with schemes like Beti Bachao, Beti Padhao, and which has led to the increase in female sex ratio of 120 females for every 1,000 males. As I conclude, I would like to state some figures because this morning, education also came out, educational institutions. Female students outnumber their male counterparts at every level of higher education in Nagaland. The All India Survey on Higher Education for 2021, released on 29 January by the Union Ministry of Education, reflected that out of 46,954 students enrolled at various levels in Nagaland, there are 21,750 males and 25,204 females. Overall, the enrollment in higher education institutions rose from 37,125 in 2012-13 to 46,954 in 2020-21, which represents an increase of 26.51 in the past decade. Nationwide, male students slightly outnumber females. But in the northeastern region, however, female enrollment stands at 6.14 lakhs in 2021, which is higher than the male enrollment of 5.92 lakhs. And this trend has been seen since 2018-19. In 2012-13, 4 universities in Nagaland, there was 1 central and 1 open university, as well as 2 private universities and 59 colleges. In 2020 and 21, now, the number of universities increased to 5 with an addition of 1 private university, and the number of colleges has gone up to 68. All these facts and figures show that the northeastern region is now on the path of peace, progress, and development under Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. And with these words, I welcome and support the presidential address. Thank you. Shrimati Mawa Maji. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर रही हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने संबोधन में वर्तमान केंद्र सरकार के पिछले 8 वर्षों की उपलब्धियों को गिनाया।
मैं वर्तमान सरकार को बधाई देती हूँ, परंतु साथ ही विनम्रता के साथ यह कहना चाहती हूँ कि पिछले 8 वर्षों में अपनाई गई सरकारी नीतियाँ गरीबी उन्मूलन, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विकास, महिला एवं बाल विकास, समावेशी विकास के संबंध में पर्याप्त नहीं थी। सभापति महोदय, 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जनजातीय समुदायों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जहां भी हमने सरकार बनाई है, जनजातीय कल्याण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की लूट को बढ़ावा देने वाली आदिवासी विरोधी नीतियों को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया है। 2022 में प्रस्तावित वन संरक्षण अधिनियम मेरे दावे की संपुष्टि करता है। पुराने नियमों में जहां आदिवासी क्षेत्रों में शुरू होने वाली परियोजनाओं में ग्राम सभा की सहमति आवश्यक थी, उसे सरकार ने निरस्त कर दिया है। इससे प्रकृति निर्भर आदिवासी संस्कृति एवं जंगलों का विनाश अवश्यंभावी हो गया है। आदिवासी संस्कृति जल, जंगल और जमीन की संस्कृति रही है। आदिवासियों के जितने भी संस्कार होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वे सभी जंगलों पर आधारित होते हैं। उसमें साल के पत्ते, नदी, झरने, पहाड़ जिसे बुरु कहते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर ही वे अपने संस्कार करते हैं, चाहे वो विवाह हो या कोई भी पर्व त्योहार, जैसे कर्मा, सरहुल, माघे पर्व, सोहराय, जतरा, हर पर्व त्योहार में जंगलों का बहुत बड़ा साथ होता है। और मुझे लगता है कि विकास का जो आदिवासी मॉडल है आज के समय में, वही इस धरती को बचा सकता है, न कि विकास का पश्चिमी पूंजीवादी मॉडल। तो मुझे लगता है कि इस तरह से ग्राम सभा के अधिकार को छीनना बहुत बड़ी भूल होगी। इससे हर जंगल कट जाएंगे और आदिवासी, गरीब आदिवासी जो सदियों से लघु वनोपज, जो जिनकी आजीविका का साधन रहे हैं, जैसे घोंगा, खुकड़ी, रुगड़ा, फिर आपके नदी से मछलियाँ, या पत्ता जो होता है केदू पत्ता जिससे कि बीड़ी बनता है, इन तमाम दतवन, इन तमाम चीज़ों को जंगल से ले जाकर वो बेचते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलती है। जब तक कि सरकार उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती आजीविका के, तब तक इस अधिनियम को उन पर थोपना बहुत बड़ी भूल होगी, जबकि ये सरकार कहती है कि वो आदिवासी कल्याण की बात कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने बार बार सरकार को, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस अधिनियम का विरोध किया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है। मानव तस्करी की घटनाएं सबसे ज्यादा गरीब आदिवासी बहुल इलाके से होती है। भाजपा कार्यकाल में पन्नालाल जैसे तस्करों ने लगभग 15,000 आदिवासी लड़कियों की तस्करी की, उन्हें नौकरी देने के नाम पर, और जो अभी जेल में हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही हैं। इसलिए महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए एक बड़े बजट की आवश्यकता थी। उसे क्यों नहीं दी गई? सिर्फ यह कह देने से कि सरकार महिला और आदिवासी के लिए बहुत काम कर रही है, काफ़ी नहीं होता। जमीनी कठिनाइयों, हकीकतों की पड़ताल के बाद ही बजट बनाना कारगर होता है, जिसका अभाव इस बजट में स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार 2021 में ध्वनिमत से पारित हुई खान और खनिज संशोधन विधेयक केवल पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। यह नियम खान मालिकों को हमारे देश की बहुमूल्य खनिज संपदा को मुक्त बाजार में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सरकार की विकास की नीतियों ने पर्यावरण और खनन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के भविष्य के साथ पिछले 8 वर्षों से इसी प्रकार बस समझौता ही किया है। माइंस में काम करने वाले मजदूरों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या बजट है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब सभी जानते हैं कि कोडरमा एक ऐसा जिला है जहां मायका निकालते हैं और उसमें जो बच्चे और औरतें होती हैं, तमाम दिन भर वो लोग उसको निकालते हैं और कहते हैं ढिबरा, उसका नाम ढिबरा बोलते हैं लोकल भाषा में। उसको चुनते चुनते कितने लोग बीमार पड़ते हैं। क्या इन चीज़ों पर ध्यान है? सिर्फ रॉयल्टी के पैसे सरकार का ध्यान उस पर है। हमारे राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है रॉयल्टी के पैसे कोल इंडिया के पास, लेकिन बार बार पत्र लिखने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक केंद्र सरकार उस पैसे को वापस नहीं कर रही है। जबकि आप जानते होंगे कि झरिया, धनबाद में बहुत महत्वपूर्ण जगह है झरिया, जहां वर्षों से आग लगी हुई है कोयले के खदान में और जमीन के नीचे नीचे वो आग फैलती ही जा रही है। उसके लिए कोई बजट नहीं है कि कैसे उस आग को बुझाया जाए। किलोमीटर पर किलोमीटर
पूरा नीचे से खोखला हो गया है क्योंकि अंदर अंदर आग है। वो राख के ढेर पे वो शहर बसा हुआ है झरिया। मैं गई थी विगत दिनों उसे देखने के लिए। रात में लगता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है। ऐसे में इन चीज़ों पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? सिर्फ उस राज्य को लूटने के लिए वहाँ पर तरह तरह के माइंस हैं, वहाँ से खनिज संपदा लेकर पूरे राज्य को, पूरे देश को समृद्ध करती है सरकार, लेकिन क्यों नहीं वहाँ के लोगों के बारे में सोचती कि जो आग की ढेरी में जिनके घर है उन्हें रात में नींद नहीं आती यह सोचकर कि कभी भी वो धस जा सकते हैं, वो आग में जमींदोज हो सकते हैं और उनके घर के बीच से कभी कभी फट जाती है जमीन और वहाँ से जहरीली गैस निकलती है। आप सोचिए उनके बारे में जो उस आग की ढेरी में सालों से रह रहे हैं। ये झरिया धनबाद में से फिल्में भी बनी है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इसके लिए कोई भी कारगर उपाय नहीं अपना रही है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर बिल आया, अच्छी बात है। 10 लाख की फाइन के बारे में कहा गया कि कोई स्कूटर भी अगर पुराना चलाएगा और कार्बन उत्सर्जन होगा तो गरीब को भी 10 लाख फाइन देना पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो प्रदूषण इस तरह के माइन से निकल रहा है, सरकार की गलती से, कोयला कंपनियों की गलती से, उसके लिए सरकार से फाइन कौन लेगा? जो कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, जो वहाँ पर काम करते हैं, जो वहाँ के उन इलाकों में बसते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी कि अडानी पावर प्लांट आपको पता होगा कि झारखंड में है और नया नया खुला है, जो कि बांग्लादेश को बिजली बेच रही है। और वो अडानी पावर प्लांट से जो प्रदूषण होता है वो वहाँ के लोकल आदिवासी, वहाँ के लोग उसे झेलते हैं। उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। और ऊपर से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि राज्य को 25% उसमें से बिजली देनी है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में किस तरह की बिजली की किल्लत हो गई थी और जिसके लिए बार बार उसे बदनाम किया जा रहा है कि वो बिजली क्यों नहीं दे रही है। तो वो 1,36,000 करोड़ अगर केंद्र सरकार दे देती राज्य सरकार को, तो उससे छोटी सी राशि लेकर वो डीवीसी को देती तो निश्चित रूप से ये बिजली की किल्लत दूर होती। क्या वहाँ पर गैर भाजपा सरकार है? इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है कि ताकि जनता की नजरों में सरकार बदनाम हो। और आडवाणी 25% क्यों नहीं बिजली दे रही है हमारे देश को? सॉरी, अडानी इस देश को हमारे राज्य को 25% बिजली क्यों नहीं दे रही है? अगर वो दे तो बिजली की किल्लत दूर होगी। और वो दादागिरी दिखा रही है कि हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे? क्या उनको केंद्र का सपोर्ट है? अगर केंद्र का सपोर्ट है तो क्यों है? क्यों नहीं केंद्र दबाव बनाती कि तुम उस राज्य को बिजली दो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तुमने और जहां से बिजली लेके तुम दूसरे देशों को बेच रहे हो? मुझे लगता है कि इन चीजों पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, वरना इसी तरह से राज्य जो गरीब राज्य है, आदिवासी राज्य, हमसे बोल दे कि हम आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये काफी नहीं होता। वो काम में भी दिखना चाहिए, निश्चित रूप से दिखना चाहिए। 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड विधानसभा से पारित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और उसे राज्यपाल ने वापस कर दिया। और केंद्र सरकार उसे पारित क्यों नहीं कर रही है? अगर आप आदिवासी के पैरोकार हैं तो निश्चित रूप से इसे आप तुरंत पारित कीजिए, क्योंकि हर राज्य में, चाहे वो कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हर बिहार हो, हर जगह स्थानीय लोगों के लिए वहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी होती है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उन्हें जगह मिले, क्योंकि बाहरी लोग आकर कई बार उनकी नौकरियां खा जाते हैं और वो पिछड़े रहते हैं। तो हमारे राज्य में इसकी मांग हो रही है और इसीलिए खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग हमारी सरकार कर रही है, जो अभी तक नहीं दी गई है और उसे तत्काल दिया जाए, ये हमारी मांग है। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, लेकिन 2014 के बाद से महिला हिंसा में लगातार बढ़ोतरी दिखती है। निर्भया कांड के लिए, निर्भया फंड कांड के बाद जो 1,000 करोड़ की राशि हर साल एक अकाउंट में जमा किया गया, देश जानना चाहती है कि उस राशि का क्या उपयोग हो रहा है और क्यों लगातार महिला हिंसा बढ़ रही है। मुझे लगता है कि महिलाओं पर हिंसा इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि दोनों सदनों में महिलाओं की संख्या आज भी बहुत ज़्यादा कम है। जब नया नया हमारा देश बना था उस दौरान 1952 में लोकसभा में 4.5% और राज्यसभा में 16% महिलाएं थी। आज 2023 में, इतने सालों बाद, जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मात्र 14.4% है। जब यहाँ पर माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा महिला आरक्षण बिल लाया गया था और वो क्यों नहीं पारित हुआ अभी तक, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसे तत्काल पारित किया जाए। और मुझे लगता है माननीय राष्ट्रपति महोदय खुद एक महिला है, अगर वो चाहती हैं कि सचमुच में महिलाएं इस देश में सशक्त हो तो अविलंब महिला आरक्षण बिल पारित किया जाए, ताकि महिलाएं अपने हाथों से अपने लिए कानून बना सके, उन कानून का उल्लंघन हो तो उसके लिए वो कारगर कदम उठा सके। और इस तरह से मुझे लगता है महिला हिंसा तभी रुकेगी जब महिलाएं खुद यहाँ पर संसद में अधिक संख्या में होंगी। एक और
बात कहना चाहूंगी कि हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध में प्रकाशित विश्व समानता रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 10% अमीर लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है। वह लोग जो पहले से ही अमीर थे, पिछले एक दशक में उन अरबपतियों की संपत्ति में लगभग 10 गुना बढ़ोतरी हुई है और उनकी कुल संपत्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत के पूरे केंद्रीय बजट से अधिक है, जो कि 24,422 अरब रुपए की। महोदय, मैं एक जनजातीय आदिवासी बहुल इलाके का प्रतिनिधित्व करती हूं और दावे के साथ यह कह सकती हूं कि वर्तमान सरकार की नीतियां केवल अमीरों के पक्ष में झुकी हुई हैं। वंचितों और जरूरतमंदों को सरकार ने हाशिए पर रख छोड़ा है। करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, मगर बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दे पर बजट में बात ही नहीं की गई। ये बहुत ही दुखद है। गाय और गोबर गैस को बढ़ावा देने की बात करती है केंद्र सरकार, ये अच्छी बात है, लेकिन गोबर से निकलने वाले जो खतरनाक मीथेन गैस हैं, उससे आप सभी जानते हैं कि बहुत गर्म होता है, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ते हैं इससे। तो उन्हें कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट के में क्या सोचा गया है, क्योंकि अनसाइंटिफिक तरीके से काम नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं कि बायोगैस बने, गोबर गैस बने, तो निश्चित रूप से इसके लिए सोचना होगा कि उससे निकलने वाले मीथेन गैस से कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है केंद्र सरकार। झारखंड जैसे राज्य में जहां माइंस की बहुतायत है, वहां सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए क्या बजट बनाया गया है, यह झारखंड जानना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जोस के मनी। I was waiting to speak in my language because they had told me, so I have not even gone out, sir. I'm just sitting here from 7.5 years to speak something. Please kindly give me one opportunity because I got a news that there is no time. No. Please, sir. It's my Call your request. name. Please, sir. श्री जोस के मनी। श्री जगेश Sir, thanks for the opportunity. I would like to speak in my language. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು, ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದು ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೈಯೆತ್ತು, ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗುವುದು ಇಸ್ ದ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕವಿವಾಣಿ ದಿಸ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಂದರೆ, ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಈ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಂದನೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಾನಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಾದ ಇದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದಂತೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಮೋದಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಾದರೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಥರ ಒಂದು ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು. ಮೋದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬುಡಮೇಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬುಡಮೇಲಾದಾಗ ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೋದಿಯವರು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿ 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 ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ಮೋದಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದ್ರೆ, ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಜನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು, ಭಾರತದ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಅಷ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡಿ ಯಾರು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಭಾರತೀಯರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೇನೇ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಲೆಬಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶರಣು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಾಯಕತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಅಂತ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೂ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಭಾರತವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಇದ್ದಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಾರುವಾಕನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆ ಚಾರುವಾಕನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಏಕ್ ದಿನ ಕಾ ಸುಲ್ತಾನ್, ಊಟ ಮಾಡು, ಮಜಾ ಮಾಡು, ಸಾಲ ಮಾಡು, ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಅವತ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಅವತ್ತು ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆದಿಶಂಕರರು 4 ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅವತ್ತು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಧರ್ಮವನ್ನ ಉಳಿಸಿದಂತ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಕಲಿ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನೀವು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ನೀವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಭಾರತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ ತಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸೋ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಾಗೇನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಊಟವನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದವನಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೋದಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಸವಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಅಂಧಕಾರ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಎರಡು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವ ಅವತ್ತಿನ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಸವಣ್ಣ ಆನ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ 12th century. ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಧರ್ಮ, ಅನ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು G20 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅವ್ರು ನಮ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? 24 ಗಂಟೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತವ್ರು ಜಾತಿಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಇಡೋದು, ಜಾತಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ 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 ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಶ್ರಮದ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವ್ರನ್ನ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಡಮ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಲು ಎಳೆಯೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು. ಇದು ನಾನು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಸವೇಶ್ವರರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ತತ್ವನ ಆಧರಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮೋದಿಜಿಯವರ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬು ಕಂಠದಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. Please conclude. ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್. Conclude. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಟ್ ಟು ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಸರ್. I got after so many days I got opportunity because most of the time others would be there in the chair. Madam, I am very happy. Please. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. And it was excellent speech. Well, we have lot of talent, Professor Jha, in the house, including yours, and we will have some functions to see explosive talent with no disturbance, in complete order. Srimati Thank you, sir. Rajni Patil. प्रथम धन्यवाद करते हुए, क्योंकि हमारा पार्टी का टाइम खत्म हुआ था, फिर भी आपने मुझे टाइम दिया, इसलिए पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपका डिस्क्रिशनरी कोटा है ये सर। Well, frankly, I don't believe in any discretion, and I wish to give up all discretionary quotas. Discretionary quotas per se are not very appropriate. I have already given up one nomination in the Health Committee. I have given up. Let it be available to those who deserve it. Yes, ma'am. महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने जो अपना एड्रेस किया है, उसके ऊपर मैं कुछ विचार मेरे व्यक्त करना चाहती हूँ। हमें अभिमान है कि एक महिला इस देश की राष्ट्रपति है। इससे पहले भी यूपीए गवर्नमेंट ने प्रतिभाताई पाटिल को राष्ट्रपति बनाया था। प्रथम स्पीकर भी हमारी मीरा कुमार हुआ करती थी, उसके बाद में सुमित्रा महाजन जी को भी किया था। तो महिलाओं के ऊंचे ऊंचे ओहदों पर ले जाना ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है सर। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा खंत व्यक्त ये करना चाहती हूँ कि जिस देश में महिलाओं को हमेशा बोलते हैं कि यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, लेकिन उसी देश में जब आप नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, उस बेटी को बीजेपी से कौन बचाएगा? ये मेरा सवाल है। क्योंकि हाथरस की घटना जिसमें हमारी 2 दलित की महिला मारी गई, जिंदा जला दिया गया, उत्तराखंड की हमारी अंकिता या उन्नाव की घटना, इसमें सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, लेकिन उन पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसकी हमारे लिए मन में दुख है, इसकी हमारे लिए मन में बहुत खंत है। श्रद्धा वालकर का केस आता है, उसके लिए भी हमें बुरा लगता है। और जब हम देखते हैं कि आज के तारीख में 86 रेप्स एवरी डे इस देश में होते हैं, तो कहां से बेटी को सुरक्षितता दे रहे हैं? ये मेरा सवाल है। उज्ज्वला योजना, हमारी एक बहन ने बोला उज्ज्वला योजना, लेकिन सर उज्ज्वला योजना का जो कैग का रिपोर्ट है, 82% महिलाएं उज्ज्वला योजना का सिर्फ एक बार यूज किया, उसके बाद में सिलेंडर बाजू में रख दिया है, यूज ही नहीं किया क्योंकि उनको प्रवृत्ता ही नहीं है। फिर वो चूल्हे में चली गई है। तो ये वस्तुस्थिति है, इस वस्तुस्थिति को बाजू करके हम आगे नहीं जा सकते, ये मुझे यहाँ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारी हिमाचल की बहन है, उन्होंने आरक्षण के लिए बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारा एजेंडा था पहले से, राजीव गांधी जी ने पहली बार हमारा 33% आरक्षण पंचायत राज में 77 एंड 78 अमेंडमेंट करके हमें आरक्षण दिया। और सर मैं आपको बताने के लिए मैं खुशी से कहूंगी कि पहली बार मैं जिला परिषद से आई, जिला परिषद से यहाँ तक का फासला मैंने पार किया। अगर तब राजीव जी ने वो नहीं दिया होता तो हम महिलाएं यहाँ तक नहीं आते हैं, ये मुझे यहाँ पे कबूल करना पड़ेगा। और आज इसकी स्थिति क्या है? जो महिला आरक्षण बिल, जो हमारी बहन ने बोला कि किसने विरोध किया, विरोध भारतीय जनता पार्टी की एक महिला एमपी ने किया था। 96 में मैं उस सदन में थी और तब वो फाड़ने का काम एक महिला एमपी ने किया था। और फिर हमारी गीता मुखर्जी की सिलेक्ट कमेटी बनाई थी और गीता मुखर्जी की सिलेक्ट कमेटी के अनुसार हमने वो करना था बिल। उसके बाद में फिर सरकारें आती रही, जाती रही। फिर भी सोनिया जी की पहल से एक ऐसा हमारा प्रयास हुआ कि राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। और इसके तहत हमने ये बिल राज्यसभा में पारित भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य से अगली सरकार जो आई, उन्होंने हमें वायदा किया था, 9 साल हो गए सर, 9 साल में उन्होंने हमें वायदा ये किया था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम महिला आरक्षण बिल लाएंगे। 9 साल में किसने रोका है आपको? पूरा बहुमत आपके पास है।
कोई भी विरोध नहीं कर सकता। अगर विरोध करेंगे तो उसको बुलडोज करने की ताकत आपके हथियार है, तो दे दीजिएगा महिलाओं को आरक्षण, दे दीजिए हमें हमारा हक। उसमें क्यों कतराते हो आप? हम आपके साथ रहेंगे उस बारे में। मैं ये यहाँ पे आपके सामने करना चाहती हूँ। तो सिर्फ 2 मुद्दे ही बोलूंगी मैं। किसान के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप जैसे मैं भी किसान परिवार से आती हूँ। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था सर, दुगनी आयु करेंगे हम। 22 में दुगनी आयु, हम 14 गया, 19 गया, हमें लगा 22 आ गया, अभी हमारी दुगनी आयु होगी। दुगनी आयु तो हुई नहीं, उल्टी हमारी आयु कम 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 होते जा रही है। और दूसरी बात सर, आज किसान की ये हाल है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें हमारा किसान पिसा जा रहा है। बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है और किसी को फायदा हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लखीमपुर खेरी सर के जैसे जो कुछ मसले होते हैं, उसमें हमारे किसान पिस जाते हैं, मर जाते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ सर। बेरोजगारी के लिए यहाँ पे 2 मिनट में बोलना चाहूंगी सर। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली, जिसमें हम भी शामिल हुए। लास्ट में मेरे ही स्टेट में, जहाँ पे मैं प्रभारी हूँ, जम्मू कश्मीर, वहां पे वो आए थे। और मुझे भी आश्चर्य लगा कि जब जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे, जहाँ पे 5-5 फुट बर्फ थी, वहां पे लोग आएंगे कि नहीं, ये हमें डर लग रहा था। वहां पे 20-20 हजार लोग आ गए। तो मैंने सोचा हमने तो कुछ किया नहीं है, इतने लोग कहाँ से आ गए? तो मोदी जी ने किया होगा जी। तो मोदी जी का ही काम है ये। इसका कारण ये है कि जिस तरह से एक आदमी फिसल गया है, एक आदमी पिसा गया है, त्रस्त है। जम्मू कश्मीर का हर कोई व्यक्ति आक्रोशित है, त्रस्त है। उनका 370 निकाल दिया, उनका स्टेटहुड का दर्जा निकाल दिया, उनको यूटी में डाल दिया। वो त्रस्त है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है जम्मू कश्मीर में। और वहां के जो कश्मीरी पंडित है, उनको हमेशा यहाँ पे एक्ट्रेस है, उन्होंने बोला दिया गया कि कश्मीरी पंडितों के लिए हम हैं। कश्मीरी फाइल दिखाई गई, कश्मीरी फाइल पिक्चर का इतना बड़ा नाम लिया गया, लेकिन वहां पे वस्तुस्थिति बहुत अलग है सर। कश्मीरी पंडित जो है, उनको जो दिया वो हमारे मनमोहन सिंह सरकार ने दिया। उनको एक स्पेशल पैकेज दिया गया था, उनको घर दिया गया। वो कश्मीरी पंडित राहुल जी को मिलने जब आए, उनके गले लगा के रोने लगे और उनको बताने लगे राहुल जी के लिए जो लोग आए थे, वो इसीलिए आए थे कि उनकी दर्द, उनका दुख, उनका दर्द समझने वाला, संवेदना और संवेदना समझने वाला व्यक्ति उनके बीच में आया, इसलिए वो आए थे। इसलिए सर मैं बहुत आपकी आभारी हूँ, आपने मुझे टाइम दिया, तो मैं आपकी आभार करूंगी। धन्यवाद। श्री भूपेंद्र यादव। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण सरकार की दर्शन और कार्यपद्धति को बताता है। मैंने जब इस अभिभाषण को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि सरकार ने इस दर्शन को कहां से ग्रहण किया, और यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि सरकार ने अपने इस अभिभाषण का जो दार्शनिक आधार है, वो भगवान बसवेश्वर के उस वाक्य को बनाया, काया कवे कैलासा, अर्थात कर्म ही पूजा है। और इस देश का सौभाग्य है कि विगत 8 वर्षों से कर्म को पूजा मानने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है। और इसीलिए इसकी उपलब्धि में जो लिखा गया है कि आज भारत में एक स्थिर, निडर, निर्णायक, बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबों को स्थायी समाधान और स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार। इस फिलॉसफी को लेकर के इस अभिभाषण को, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सरकार ने यहाँ पे प्रस्तुत, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने उस पर चर्चा करी। हमारे सामने बैठे लोगों ने अपनी बहुत सारी यात्राओं के विषय को बताया, लेकिन मेरे को एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है। जो पार्टी इस देश को 70 साल तक राज करती है, बहुत सारे विषय बताती है, वो अपने पूरे भाषण में
भारत के किसी भी एक भी आंकड़े में विश्वास नहीं करते। जो भारत के आंकड़े में विश्वास नहीं करते वो भारत को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं आपको समझ में आता। देश में रोजगार में पीरियडिक लेबर सर्वे के आंकड़े, रोजगार की वृद्धि में ईपीएफओ के बढ़ने के आंकड़े हैं, इंडस्ट्री के रजिस्ट्रेशन के बढ़ने के आंकड़े हैं। इस देश के अंतर्गत अभिभाषण के अंतर्गत भी जो पूरा विषय दिया गया है उस पूरे विषय में देश में गरीबों को औसत हर रोज 11,000 आवास बने इसके आंकड़े हैं। 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से हर रोज जुड़ रहे हैं इसके आंकड़े हैं। 55,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए इसके आंकड़े हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया इसके आंकड़े हैं। 8-9 वर्षों में हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना, हर दिन 2 कॉलेजों की स्थापना हुई, 2 साल में 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के डोज लगे और सोशल सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इसीलिए ये भारत के अमृत काल का पहला राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है जिसपे पूरे भारत को गर्व है। और पूरे भारत को जो गर्व है, मैं पहला विषय कहना चाहता हूं, जिसपे भारत गर्व करता है उस पर शायद कांग्रेस गर्व नहीं करती। ये पहला मेरा कंक्लूजन है। दूसरा, देश में पिछले 9 सालों में सबका साथ सबका विकास की राजनीति शुरू हुई और इस अभिभाषण में भी अगर आप देखेंगे तो भारत के उस जो मूल परंपरा है, जहां इस सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सहित तमाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े संग्रहालय का विचार किया गया, बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थ का विचार किया गया, देश के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाने वाले प्रधानमंत्री संग्रहालय के निर्माण का विचार किया गया, देश के बाल दिवस को पूरे देश में श्रद्धा के साथ बनाया गया और उसके साथ ही साथ आप इस बात को मत भूलिए, इस अभिभाषण में लिखा है कि इस देश के गौरव को जानने के लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की भी शुरुआत करी ताकि ये देश अपनी एकता के भाव को लेकर के आगे करे। लेकिन आपको इस पे भी संतोष है और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम जिस सहिष्णुता के माहौल में पिछले 9 साल में सरकार लेकर के चल रही है, कांग्रेस जरा अपने गिरेबान में जाके देश को संविधान देने वाले बाबा साहब लोकसभा में न आए, उनको हराने का काम आपने किया। देश में ओबीसी समाज के लिए काका कालेलकर कमीशन बना 1956 में, उसके बाद उस कमीशन को रद्द करके ओबीसी को रिजर्वेशन ना मिले, ये काम आपने किया। देश में जब लोकतंत्र आगे बढ़ने लगा तो लोकतंत्र को कुचलने के लिए आपातकाल लगाने का काम आपने किया। देश में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सारी सीमाओं को लांघने का काम आपने किया। और उसके बाद भी मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के बाद ये जो सरकार आई है, सबसे बड़ी बात है कि 10 सालों यूपीए के शासनकाल में जिस पॉलिसी पैरालिसिस को जकड़ने का काम आपने किया, उसको तोड़ करके देश को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और इसलिए कोई सरकार जब अपने विषय को, अपने विजन को रखती है तो देश की स्टेट ऑफ इकोनॉमी के माध्यम से भी वो बात आती है। जयराम जी बैठे हैं, जब भी हमारे देश में बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे आते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में हमेशा देश की स्टेट ऑफ इकोनॉमी को बताया जाता है और वो एकदम सरकार से बाहर एक स्वायत्त रूप से सरकार की अर्थव्यवस्था को निष्पक्षता से देश के सामने रखने की एक परंपरा देश ने विकसित करी है और इसको सब स्वीकार करते हैं। और हम ये जानते हैं कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में जो रिकवरी के बाद की जो ग्रोथ है, वो रिकवरी के बाद की जो फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो फोरकास्ट की गई है, वो तेजी से विकसित होते हुए भारत के लिए 6 से 6.8% की गई है। उसके साथ ही देश में जो एमएसएमई की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 30.6% एवरेज इकोनॉमिक सर्वे में दर्शाई गई है। कोविड की रिकवरी के साथ ही साथ भारत ने दुनिया में ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए अपने आप को, अपने विभिन्न विषयों को मजबूती से स्थापित करने का काम करिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं पिछले 9 वर्षों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा रिफॉर्म आया,
जीएसटी का रिफॉर्म आया, पूरा हिंदुस्तान एक सिंगल मार्केट में बदला गया। क्या ये असहिष्णुता नहीं थी कि 15 अगस्त को संसद के सेंट्रल हॉल में सब देश इस आर्थिक परिवर्तन का स्वागत कर रहे थे और कांग्रेस बहिष्कार कर रही थी क्योंकि इनटॉलरेंस आपके अंदर भरी थी। जब देश पूरे जीएसटी का उत्सव मना रहा था तो आप बाइकआउट कर रहे थे, आप बाइकआउट कर रहे थे और उसका भी जवाब जयराम जी उसका भी जवाब है। यशवंत सिन्हा जी की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। जीएसटी की सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन मैं था, उस समय के हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने भी रखा था। आपका जो 5 साल में हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास थे, आप पे राज्य सरकारों का विश्वास नहीं था। राज्य सरकारों को आप सहमति के मॉडल पे नहीं ला पा रहे थे, सबको सहमति, माननीय सभापति महोदय, सबको सहमति के मॉडल पे साथ ला करके पूरे देश को एक तरीके से रिफॉर्म के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, लेकिन बाइकआउट करने का काम आपने किया। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके सामने बड़े विनम्रता और विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि सहिष्णुता की राजनीति केवल एक परिप्रेक्ष्य में नहीं होती। सहिष्णुता की राजनीति का ये अर्थ होता है कि जब हम सत्ता के अहंकार भाव से अगर बाहर निकले और सत्ता के अहंकार भाव से निकल के जब देश को बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाए, वो सहिष्णुता कही जाती है। लेकिन जिनके मन से ये अहंकार ही नहीं निकला है कि ये सत्ता हमारे और हमारे परिवार की है, वो कभी देश के सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव विषयों में आगे नहीं बढ़ पाए। वो यात्रा करने के बाद भी अगर आपका अंतःकरण नहीं सुधरता है, अंतःकरण में कलुषता, अंतःकरण में सामंतीवाद, अंतःकरण में परिवारवाद है, तो ऐसी यात्राओं का कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये मैं कहने वाला हूं। थैंक यू। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मुझे पता है ये कुछ कभी सत्य के जो दर्शन होते हैं वो काफी कठिन होते हैं। हम सुबह से बहुत तसल्ली से उनको सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि उनके पास भारत को लेकर के कोई आंकड़े नहीं है। भारत की अंतरात्मा के जो दर्शन वरना जिस पूरे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के सारे संतों का, देश के विषयों का, देश के सांस्कृतिक विषयों का, ऐतिहासिक धरोहर का और एक टेक्नोलॉजी पे आधारित नए इनोवेशन और साइंटिफिक भारत के निर्माण की बात की गई है, उसका कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आता तो ये मैं मान के चलता कि ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा होता। इसलिए मेरा पहला विषय बहुत स्पष्ट है कि जो लोग, मैं बोल सकता हूँ लास्ट 2 मिनट्स। इसलिए मेरा दूसरा विषय है कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत ने पिछले 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था की गति की जो रफ्तार पकड़ी है, गवर्नेंस और के विशेष रूप से डिजिटलाइजेशन से जो ट्रांसपेरेंसी का मॉडल खड़ा किया है। तीसरा, देश में पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए सरकार के जो संकल्पवान विषय उठाए हैं, उसके साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था की मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए जो कदम उठाए हैं, वो पूरे इस राष्ट्रपति अभिभाषण में हमको पूरी तरीके से ध्यान में आते हैं। लेकिन ये अभिभाषण देश के संसद के माध्यम से जो सरकार के विषयों की अभिव्यक्ति है, वो अमृत काल के भारत के निर्माण की है। मैं यहाँ पर की कहना चाहूँगा और मैं बहुत आपके सामने कहना चाहूँगा कि जिन्होंने देश के लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले जेपी को लाठियों से घायल किया हो, जिनका इतिहास इस प्रकार का रहा हो कि देश के लोकतंत्र पे जिन्होंने आघात किया हो, उनके द्वारा इस प्रकार की जो एक निरर्थक विषय और आलोचनाएं की जा रही हैं, वो मेरी समझ में कम से कम नहीं आती है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मेरे को आपने 2 मिनट कहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश को एक परिवार मान करके और एक वसुधैव कुटुंबकम के विषय को लेकर आज G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के पर्यावरण के विषयों को भारत जिस प्रकार से संबोधित कर रहा है और इसमें इनोवेशन के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विशेष रूप से एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पे भारत के बढ़ने के संकल्प जो इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हम लोगों को दिखते हैं, वो देश की बेहतरी के आने वाले दिनों को सुनिश्चित करता है। हम सब मिलकर इसका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
वो इतना बोल चुके हैं कि आप इसको डाइजेस्ट कीजिए। ना ना ना, एक एक शब्द नपा तुला था। इट वॉज कैप्सूल्ड। आज जरूर मेरी बात मानिए, सोने से पहले 5 मिनट भूपेंद्र जी के भाषण पर रिफ्लेक्ट कीजिए, एंड यू विल साउंड स्लीप। Honorable members, the reply by the Honorable Prime Minister will be at 2 p.m. tomorrow. I intend to take all these special mentions, and they are 15 number. This is on the request of the Honorable members, and we must offer them as much platform as we can. Shri Naresh Bansal. धन्यवाद सभापति जी। नीड फॉर मास अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन एंड लेजिस्लेशन फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रीज। सिंचाई कार्यों के लिए स्प्रिंकल ड्रिप सिंचाई जैसी स्कीमों को ज़्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके साथ साथ वर्षा जल का समुचित संग्रह किया जाना भी आवश्यक है, जो बदल रही जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज हाउस, लेकिन प्लीज सबसे पहले जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण की दिशा में जल जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसे जन जन की मुहिम बनाने की आवश्यकता है। स्कूली पाठ्यक्रमों में न केवल इसे अनिवार्य करने की जरूरत है, बल्कि विद्यार्थियों के साथ इसे प्रैक्टिकल के रूप में भी करने की जरूरत है, ताकि वह इसकी महत्ता को समझ सकें। शायद नई पीढ़ी में जागरूकता ही जल के संकट को दूर करने में कारगर साबित हो सकती है। वहीं औद्योगिक विकास की आड़ में जल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए भी कड़े पारदर्शी कानून बनाए जाए। सरकार कृपया आवश्यक कदम उठाए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। थैंक यू माननीय बंसल जी। सिर्फ जो स्क्रिप्ट है वही पढ़ें। ऑनरेबल श्री GVL नरसिंह राव, please kindly read the approved text. Thank you, Deputy Chairman, sir. My approved special mention is about the need for assistance If somebody wants to lay, he can lay, provided Jairam ji agrees. The need for assistance to RINL for better functioning of Visakhapatnam steel plant. So, due to the non-availability of working capital, high raw material cost, and adverse market conditions, the capacity utilization of Rashtriya Ispat Nigam Limited, RINL, has been lower this year, which adversely impacted the financials of the company. Banks have not been extending loans to RINL due to low credit rating of RINL. Further, rate of interest charged to RINL by banks is significantly higher than market lending rates. At present, only 2 of the 3 blast furnaces are operational, and funds are required for arranging the oxygen supply to operationalize the 3rd furnace and to increase its production substantially. So the employee morale is also low at this time, as the wage revision for workers in RINL has not been done since 2017, although an MOU was signed between the management and employee unions on 6th April 2022. The promotion of executives has been held up, though its financial impact on the company is very limited. To help RINL improve its financials and to ensure effective functioning of RINL, it has to have working capital available. This can be arranged internally by divesting some non-core assets like the forged wheel plant at Raebareli and 22-acre land plot in Visakhapatnam city. So this will provide the immediate liquidity for the RINL to increase RINL's production. But a stronger impetus or infusion of funds is required to ensure that the RINL becomes fully operational and profitable.
RINL is the largest industrial unit in Andhra Pradesh, and its performance is vital for the state's economy. Thank you. Thank you, sir. Honorable Sri P. Wilson. Honorable Sri P. Wilson. Deputy Please, Chairman, nothing sir. to do. Please. Thank you, Deputy Chairman, sir. I'm raising an important issue relating to reviving of Sedu Samudram Shipping Canal project. Sir, the Sedu Samudram Shipping Canal project is a 150 years dream of the Tamils, including Peraranyar Anna. The project proposes to make a sea interface between Pak Bay and Gulf of Mannar so that ships do not need to go around Sri Lanka and will facilitate movement of ships like Panama and Suez canals and boost economic growth. It will also help fishermen travel from Gulf of Mannar to Pak Strait, prevent transshipment of Indian goods at ports in Sri Lanka, besides cutting short sailing of an additional distance of 254 to 424 nautical miles and save about 21 to 36 hours of sailing time, besides fuel and cost, provides jobs to more than 10 lakhs people. Particularly now, when Sri Lankan ports are coming under the influence of China, time is right to prevent transshipment of Indian goods through these ports. The project will also help both coastal and international maritime trade in Tamil Nadu and coastal states. Another benefit is that the canal will enhance national defense and security by enabling easier access between the coast for the western and eastern fleets. Tamil Nadu State Assembly, on the motion moved by the Honorable Chief Minister Mr. M.K. Stalin, unanimously adopted a resolution to implement the project without any further delay. I therefore request the Honorable Prime Minister to take all efforts to revive the Sedu Samudram project to ensure India's national security and boost economic growth. Thank you, Deputy Chairman, sir. Thank you. Honorable Sri Avir Ranjan Vishwas. Not present, absent. Honorable Sri Sandosh Kumar P. Thank you, Deputy Chairman, sir. The human-animal conflict has become a serious concern in Kerala. Almost every day, the death of people due to tiger, elephant, or wild pig attacks were reported from the three most affected districts in Kerala, namely Wayanad, Idukki, and Palghat. The farmers in these districts often witness the entry of animals into their farms, which has made their life and livelihood under threat. The wildlife population in Kerala's forests has exploded in recent years, and there is no space left for them, despite the increase in forest cover. According to the official data, Kerala had 190 tigers, of which 80 are in the Wayanad sanctuary. 144 compensation cases were filed for human casualties due to animal attacks in 2021-22. Wild pigs, elephants, and tigers have killed people and regularly trespass on farmers' properties and rob them of their produce. The farmers have been demanding that the government should allow them to cull wild animals, but the Wildlife Protection Act denies humans the right to defend themselves from animal attacks. Under WLPA, people are not free to defend themselves against raiding animals and driving them out of their homes, and the agriculture field needs official permission. While admirable in their intent, these strict legal provisions make it very difficult for local people to deal with life-threatening situations of human-animal conflict. Therefore, there is an urgent need to implement the most pragmatic policy that can effectively address the sentiments of the people in these districts. Thank you. Honorable Sri Sant Balveer Singh Ji, absent. Dr. Ashok Kumar Mittal, absent. Sri Ilamaram Kareem, absent. Srimati J.B. Mathir Hisam. Thank you, Honorable Deputy Chairman, for the opportunity. My approved special mention is on the subject need to revamp football training facilities in the country. The involvement of Indians in the meticulous management of various sectors connected with the organization of FIFA World Cup 2022 has won us accolades. While this is a moment of pride for us, we also need to address the grim reality that
the international football arena is still a distant dream for us. A major impediment in the progress of Indian football is the lack of football-specific stadiums. In my home state, Kerala, craze and passion for football is immeasurable. More than 5 lakh children actively participate in football training programs in Kerala. These kids are training in mud football pitches without any proper training facilities. I request government to set up training facilities in all districts with the support of state governments and private partnerships. Catch them while young should be the motto in training. Identifying talented kids and providing them international exposure by sending them abroad for a 5 to 10 years exclusive coaching in reputed football academies will be a sure success formula in crafting the future footballers. The FIFA president commented recently that they are interested to invest heavily to develop football in India. In this context, I request government to discuss this matter with the AIFF and AFC officials and prepare a detailed roadmap to develop the game in the country. A football academy with state-of-the-art training facilities should be given emphasis in the discussions. We should leave no stone unturned in ensuring our participation in the 2026 World Cup. Thank you. Thank you. माननीय श्री सुजीत कुमार जी, माननीय सुजीत कुमार जी एब्सेंट. Honorable Tiruchu Siva. Thank you, Chairman, Deputy Chairman, sir. Sir, the subject of my special mention is concern over time-consuming and prolonged organ donation procedures in India. Sir, organ donation in India is regulated by the 1994 Transplantation of Human Organs and Tissues Act. The Act aims to control the storage and transplantation of organs and prevents any commercial dealings. At the same time, the National Organ and Tissue Transplant Organization facilitates the procurement, allotment, and distribution of organs within India. However, despite such legislation, there is a disparity between this colossal demand and low supply. About 5 lakh people in India die every year from causes that could have been prevented by organ transplants. Organ donation rates in India stand at 0.86 per million population, a minuscule figure in comparison to countries like Spain, which stands at 46.9 per million population. If India's donation rates were to be improved to at least 1 donation per million deaths, it would satisfy the country's organ requirement. Despite the convenient donor registration process, wherein any person willing to donate his or her organs can do so by filling out the donor consent form, organ donation is associated with numerous difficulties, namely lack of awareness and the spiritual belief of life after death. I urge the government of India to come together with NGOs, CSOs, and non-state stakeholders to not only spread awareness and dispel myths and apprehensions in the minds of the people regarding organ donation, but also to simplify the rules for cadaver organ donations and transplantations to save precious lives through timely intervention. Thank you very much. माननीय श्री दिनेश चंद्र जेमल भाई अनावाडिया. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय जी. मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का. उन्होंने उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना शुरू की है. उससे देश में आम आदमी को विमानी सेवा का लाभ मिला है. गुजरात में मेरा गृह जिला बनासकांठा के ईसा एयरपोर्ट बंद हालत में पड़ा है. मेरा जिला राजस्थान की बॉर्डर और पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ जिला है. उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, पाटण, अरावली, साबरकांठा, महसाणा और दक्षिणी राजस्थान के सिरोही,
जालोर, बाड़मेर, पाली जिलों में विमान की सेवा उपलब्ध नहीं है। मेरे बनासकांठा जिले में 52 शक्तिपीठों में से एक बड़ा शक्तिपीठ अंबाजी माताजी का मंदिर है, जहां बहुत सारे लाखों दर्शनार्थी माताजी के दर्शन के लिए आते हैं। उन्हें विमानी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु और यहाँ के व्यापारी हीरा उद्योग, कपड़ा उद्योग और मेटल उद्योग से जुड़े हुए हैं और भारत भर में फैले हुए हैं। उनको विमानी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु यह एयरपोर्ट चालू करना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के बाद अंबिका एयरलाइंस की विमानी सेवा यहाँ चालू थी, जो मुंबई, डीसा, जोधपुर की हवाई सेवा देती थी। करीब 1985 से 90 के बीच वायुदूत एयरलाइंस ने भी यह एयरपोर्ट चालू करने की कोशिश की थी और ओपनिंग करने के बाद कार्यरत नहीं हो पाया था। इस एयरपोर्ट से पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीक है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एयरपोर्ट चालू करना जरूरी है। इस एयरपोर्ट का रनवे तैयार है, बाउंड्री वॉल भी तैयार है और पुरानी बिल्डिंग भी है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि ईसा का एयरपोर्ट चालू करके उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के आम आदमी को विमानी सेवा उपलब्ध करवाए। धन्यवाद। ऑनरेबल श्री महाराजा संजा ओबा लिशंबा। Thank you, Deputy Chairman Sir, for giving me this opportunity. The subject of my special mention is demand to allow writing both in Bengali and the Meitei script in UPSC or IS exam Manipur literature optional paper. Sir, in UPSC or IS exam, there are two optional papers, 1 and 2 in Manipur literature, with a total mark of 500, 250 plus 250. At present, only the Bengali script is allowed to write the paper of Manipur literature. As a matter of state policy, the government of Manipur has introduced Meitei script for writing Manipuri language since 2006 in place of Bengali script in phase-wise manner. Colleges and universities in Manipur have started producing BA and MA written in Meitei script for Manipuri language. Now the problem is that those students who pass BA and MA written in Meitei script in Manipuri subject are not getting the chance of appearing UPSC and IS main exams for Manipuri optional paper, as they did not learn Bengali script. Hence, they are being deprived of appearing from UPSC main exams Manipuri optional paper. The students are demanding to allow them to appear UPSC or IS Manipuri paper in Meitei script. The issue has become a serious problem of the state, as their demand is genuine and quite logical. To solve this burning issue, I request the government of India to this House to allow writing both in Bengali and Meitei script in UPSC or IS Manipuri literature optional paper by amending the UPSC main exam Manipuri literature papers instruction, as answer must be written in Manipuri, Bengali, within bracket Bengali or Meitei script. Instead of the present instruction, answer must be written in Manipuri, within bracket Bengali script. Thank you, sir. Thank you. Dr. Fauziya Khan ji. Dr. V. Siudasan. This opportunity. My subject of the special mention, burning issues faced by ASHA workers in our country. Sir, the accredited social health activities in the country are doing remarkable works in rural India. There are 10.4 lakh ASHA workers in our nation. The World Health Organization has appreciated them as health leaders, global health leaders. This was a proud moment for the whole nation, but their allowance and incentives are very minimal. Even these minimal allowances are not disbursed on time. They are assisting the poor and needy people in their most difficult times by giving health care. But
Sir, the ASHA workers are not getting any assistance from the union government to care for their own health. Sir, every day they are spending long hours for the health care of the persons in their locality. But even a minimal insurance package is not arranged for them. They are not given even minimum wages. The majority of the ASHA workers have started their job many years back, but they are considered as volunteers. The government is telling they have no right to receive the salary as employees because they are the social security volunteers. Government is not treating it as a job. The union government should provide the social security to the social security workers. They should be given job security and health facilities. Thank you, sir. Thank you. Honorable Sri A. Rahim. Deputy Chairman, sir, thank you for this opportunity. My subject is menstrual and maternity leave in higher education. The Higher Education Department of Kerala government released an order granting menstrual and maternity leave in higher education institutions. Menstrual leave will be through a 2% relaxation in attendance and maternity leave of 60 days is ordered. This landmark decision will have a great positive impact for young women students. It's a step in the direction towards enabling a more equal space for education for women. It's also an important step which will enable conversation about menstruation. It's a completely natural biological process which is stigmatized in our societies. Women have been treated as impure and polluting. This kind of thinking is unbecoming of a modern democratic society. This is also a reason for the lower rates of access to education for young women. A policy of menstrual leave will have far-reaching impact in transforming attitudes towards educating girl children as well. This policy must be implemented across the country in higher educational institutions. The central ministry should take this up and bring about a policy and implement it across central institutions and encourage other states where such a policy does not exist. Further, it is high time that the issue of menstrual leave in all sectors is also brought for discussion. For this, the government must carry out studies to understand the difficulties faced by working women in various sectors with regards to menstruation and what methods would be best to lessen their difficulties. I hope the government takes this issue seriously and takes the necessary steps. Thank you, sir. Sri Ravangwara Narjari. Thank you, sir. My subject is demand for upgradation of AIR Ukrajar at par with AIR Guwahati and establishment of a branch of news unit for broadcast of news in the Bodo language under regional news unit AIR Guwahati. All India Radio Kukrajar commissioned on 15 August 1999 with Bodo as the link language is the only program originating station of Lower Assam situated at Kukrajar, capital of the Bodoland Territorial Region. Since then, this station has been continuing to produce and broadcast programs in various formats in Bodo, Assamese, and other dialects. The main purpose for establishment of this station was to bring upliftment of the vibrant culture of the Bodos and other communities and impart educative and informative knowledge
to the people inhabited in its jurisdiction. Bodo is one of the 22 languages included in the 8th schedule of the Indian Constitution, an associate official language of Assam, and widely spoken language, particularly in the Bodoland territorial region. So giving due respect and importance to the Bodo language and progress of cultures and literatures of all sections of the communities within its jurisdiction, it is quite desirable to upgrade the AIR Ukrajar Atpar capital station. As the Bodo language is the widely spoken language within the jurisdiction of AIR Kukrajar, it will be very beneficial for the listeners if a branch of news unit is established under the regional news unit AIR Guwahati for broadcast of news items in Bodo. This will help the Bodo knowing people in better understanding of circulated information and news items. So I ask upon the Minister of Information and Broadcasting to take measures for upgradation of AIR Kukrajar at par with AIR Guwahati and establishment of a branch of news unit at AIR Kukrajar. Thank you, sir. Thank you. माननीय नीरज डांगी जी. धन्यवाद उपसभापति महोदय. जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी मल्टी विलेज स्कीम के कार्य आदेश जारी करने की समय सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई है, बशर्ते यह कार्य 2024 तक पूर्ण कर लिए जाएं. राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में लगभग 45 लाख फिजिबल हाउस टैप कनेक्शन FHTC के कार्यादेश किया जाना शेष है, जिनमें से 31 लाख FHTC 49 सतही स्रोतों पर आधारित परियोजनाओं से उपलब्ध कराए जाएंगे. इन 49 परियोजनाओं में से 26 परियोजनाओं में प्रत्येक की लागत रुपए 300 करोड़ से अधिक है. इनमें परवन अकावद परियोजना, नर्मदा आधारित राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन परियोजनाएं, चंबल आधारित परियोजना, ईसरदा परियोजना, नोनेरा परियोजना जैसी कुछ असाधारण बड़े आकार की परियोजनाएं शामिल हैं. इन परियोजनाओं से 11 जिलों के 5,377 गांवों में जल जीवन मिशन का कार्य किया जाना शेष है. ऐसी बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन में लगभग 3 से 4 वर्ष लगते हैं. कोविड-19 महामारी एवं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के परिणाम स्वरूप कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, उपकरणों की आपूर्ति में कमी और अन्य कारणों से मिशन के तहत कार्यों की प्रगति धीमी हो गई है. माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से अप्रैल 2022 से लगातार वर्तमान जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया जा रहा है. अतः माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि वर्तमान जल जीवन मिशन की कार्य अवधि सीमा 31 मार्च 2024 को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक किया जाए. धन्यवाद. माननीय श्री मानस रंजन मंगराज, एब्सेंट. माननीय श्री अभी रंजन विश्वास. Thank you, sir. Sir, my subject is need to address increasing malnutrition in the country. Sir, in 2019 to 21, between 2019 to 21, 35.5% of kids below the age of 5 years were stunted, and 32.1% were underweight. India positions 116th out of 174 countries on the Human Capital Index. Lack of venture in health and education makes economic growth slow. In Ministry of Women and Child Development, the Ministry of Women and Child Development has clubbed all the schemes which include Integrated Child Development Services, that is ICDS, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, PMMVY, and the National Crash Scheme. But the budgetary allocation for Chaksham, Anganwadi and Pushan schemes is only 0.5% of the total budget. Most deplorably, sir. India ranks 101 out of 116 countries in the Global Hunger Index of 2021. According to NFHS, that is National Family Health and Welfare Services data, 5 that is, the rural population of stunted children in India is 37%, and urban areas it is 30%. The NFHS 5 survey indicates that more than 57% of women
and over 67% of children suffer from anemia. Therefore, there is a need to tackle these issues for mothers and children, for holistic development of children during and after the pregnancy. Hence, reduce stunting with special emphasis on the marginalized. I urge the government to look into the matter urgently, as the issue of malnutrition is waiting to become an impending doom. Thank you, sir. Thank you. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 hours on Thursday, the 9th February 2023. Honorable members, as agreed to by the House yesterday, there will be no zero hour, no question hour, and further discussion on the motion of thanks on President address will start immediately after laying of the papers and other business of honorable members, as agreed to by the House yesterday, there will be no zero hour, no question hour, and further discussion on the motion of thanks on President address will start immediately after laying of the papers and other business of formal nature, and will continue without lunch break. The answers to questions listed for today are, however, deemed to have been laid on the table of the House. Papers to be laid on the table. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy of the Maritime Anti-Piracy Bill 2022 passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. करोड़ रुपए खुली शिक्षा में भारत सरकार ने आवंटित करके शिक्षा का क्षेत्र का ये काम किया। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, Please conclude. Try to conclude. You have one more minute. Ghanshyam ji, that is the. मैंने सर आपको शुरू में कहा था कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं. That is the time allotted, Ghanshyam ji. So you have one more minute. Please carry on. Please carry on. तो मैं निवेदन ये करना चाहता था कि मुझे कहा गया था कि आपको 15 मिनट का टाइम है. It is only caution bell. One more minute. Please carry on. हाँ, yes. 1.5 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ डिजिटल में, 18 लाख विद्यार्थी और 14,500 स्कूलों का विकास हुआ. इसी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय हैं, उनका भी हमने 1049 से बढ़ाकर 1249 किए. नवोदय विद्यालय खोले हैं. उच्च शिक्षाओं में हमने 42,343 कॉलेज जो हमारी हो गई है. इसी प्रकार से यूजीसी की संख्या में बढ़कर 90% की बढ़ोतरी हुई है. शिक्षा के हर क्षेत्र में काम किया है और शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण करने के लिए, मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए और 2 डिग्री एक साथ लेने के लिए, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस शिक्षा नीति को भारत के सभी प्रांतों ने भी स्वीकार, सरकारों ने भी स्वीकार कर लिया है और ये शिक्षा नीति भारत के लिए एक नई दिशा का काम करेगी. अंत में Thank you, Ghanshyam ji. Please conclude. Thank you very much. Thank you. मैं कंक्लूड कर रहा हूँ साहब. अंत में एक जो राजस्थानी भाषा के कवि हैं, उन्होंने कहा, सबने अपनी कविता की बात कही है, तो मैं 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ. आजादी के अमृत काल में हम अमृत पुत्रों की आस फलित हो गई, कुर्सी कलित हो गई, कुलित हो गई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अति दलित हो गई, पिछड़ी अगड़ी अब उपराष्ट्रपति धनखड़ प्रचलित हो गए, जगत मान प्रधान नरेंद्र मोदी भारत माता ललित हो गई, G20 जय शिरोमणि बड़ी साख हमारी है, गणतंत्र शीर्ष सिंहासन सत्य स्वरूपा नारी है. श्रीमती जया बच्चन प्लीज. श्रीमती जया बच्चन जी.
Thank you, sir. This has been a test of endurance. All the members sitting here should all be applauded for being here almost the whole day, since 11 in the morning. जी, कुछ कह रहे हैं आप? आप बिल्कुल इंटरप्ट मत करिए. हाँ. मैं आपको बहुत humbly रिक्वेस्ट कर रही हूँ. So I'll read because the time is very little and reading is faster than speaking. So while thanking the President of India for her benevolence, I'd like to discuss the life of every Indian of the country, a life which they should live in the Amrit Kal with pride and dignity and security. The first point, again, a lot of my MPs have spoken about, especially the women. Such a tragedy that men never talk about women and empowerment. The first, I warned you to not. Please do not interrupt when honorable members speak. Whenever you get an opportunity, you can express your views. Please carry on. And sir, you'll have to give me this time. Please carry on, Bachchan. Thank you. Please carry on. The first point is women welfare, their presence in the society and their dignity. Dignity. If you see the mention in the address, there is only proclamation of what the government has done, but no mention of what the government has achieved or bettered in the life of women. जिस देश में माँ, बहन, बेटियां, यहाँ तक कि 2 महीने की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं, उस देश को अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने का कोई हक नहीं है. जहां तक महिलाओं का सम्मान के साथ जीने का सवाल उठता है सर, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है. चेष्टा जरूर है, ये मैं कहूंगी, चेष्टा जरूर है, आप लोगों ने तो नहीं किया. It is said in the address that from education to career, the government is trying to remove obstacles for our daughters. How is my question? It's a huge question. I think all women are asking this. How are you going to do it? I don't see it in the address. Just proclaiming that they have built toilets for women, the government cannot claim that dignity to women has been provided. I want to give a small example. I know a lot of NGOs who work in villages, and I know a little young girl who wants to do some work, went to Madhya Pradesh. वो जा रही थी भोपाल से छिंदवाड़ा तक. In the middle, she needed to use the toilet. So there was an old lady, she asked her, मुझे टॉयलेट जाना है, मैं कहाँ जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा वो खेत में चले जाइए. This young girl was very shocked because she came from a very different environment and she was told that there are toilets provided, dignity to women is provided. सर, ये है सच्चाई स्वच्छ भारत अभियान का. This is the actual truth. I've been to villages, I have seen what's happening. Now, I would also like to know why there is no mention of the Nirbhaya fund in the speech. What's happened? Nirbhaya has vanished. The fund has vanished. As it is, the fund was reduced. Now, there is no mention. I think there should have been a mention. मेरा दूसरा point is about sanitation workers. There is a little mention, but who also need to lead a life of dignity and pride. Unfortunately, there is no mention about their welfare and safety in the address. अमृत काल के समय में हम ये सोच रहे हैं कि आधुनिक मशीनरी कब तक और कितनी आएंगी और कब हमारे sanitation workers को राहत मिलेगा. When will their dignity as a human will be given duly deserved by them? My third point is, sir, दुर्भाग्य की बात है
that there is no mention as to what the government has done to provide dignity and livelihood to the senior citizens and to live in this country with pride. India's elderly population aged 60 years and above is projected to touch 194 million in 2031, from 138 million in 2021. A 41% increase according to the National Statistics Office. What is the government's action plan? May I ask, what is the government planning to do for these senior citizens? There is complete negligence towards this section in a progressive country. All over the world, social security is provided to the handicapped, disabled, and elderly by the government. But in our country, no such provision is given. Millions of senior citizens have served the country to bring the country up to this standard. They have been completely ignored, deprived of any dignity of age since hard work and dedication to the country. Lastly, sir, I would like to point out the government's absolute disregard for the artistic community. We have had Bharat Ratnas like Pandit Ravi Shankar. We have had Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji, Bhimsen Joshi, M.S. Subbulakshmi ji. Many more are also a nation where great painters have been conferred with Padma Awards like Jatin Das ji, M.F. Hussain Sahib, writers like Nirala ji, Panch ji, Harivansh Rai Bachchan, who have also been conferred with the Padma Awards. We are also a nation where great artists, cine artists, performing artists like Prithviraj Kapoor, Dilip Kumar, and Satyajit Ray have made our country proud. इन्होंने अपने जीवन और अपने कला से इस देश को गौरवित किया है और इस देश का नाम रोशन किया है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में. Thank you, Jaya Bachchan. Thank you. Time is over. Time is over. 1 minute. This is my request to you, sir, but it's up to you. I will listen to you. Please conclude. Please conclude. मैं ये सोचती हूँ कि सरकार को इन बड़े बड़े कलाकारों के नाम पर भी कुछ करना चाहिए. इनको केवल अवार्ड न देके सम्मान स्वरूप कुछ काम करना चाहिए. मेरा सजेशन है सर सरकार से कि नए पार्लियामेंट में सिर्फ पॉलिटिशियंस के पोर्ट्रेट्स न लगाए जाएं और सिर्फ उनको ही माला न चढ़ाया जाए. ये बड़े बड़े कलाकारों ने जिन्होंने who are the true ambassadors of this country should be also respected by creating this. Sir, no history of a nation is made by politics and politicians. The history of a nation is written with the achievements of art and literature. और आखिरी एक पॉइंट कह दूं, आप अगर इजाजत. Please conclude. Thank you. One more. Just a demand from the government. Time is already. You have taken 2 more minutes. Please conclude. Please conclude. अभी वो कह रहे हैं बोल दीजिए. Yeah. He is also one of the deputy chair. So I will take the liberty. सर मैं आखिर में जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार चलाती है, उनमें से अधिकतर बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओबीसी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, एससी, एसटी की संख्या का आधार बनाते हैं. लेकिन 1931 के बाद भारत में जाति अधिकरण आधारित जनगणना नहीं हुई, जिससे हमें ओबीसी की संख्या का पता नहीं चला. On this opportunity given, we demand, I think I have the support of the entire House, the census due soon should be caste-based so they can get the advantage and due share in welfare schemes, government jobs, and other walks of life. Thank you very much. Thank you, Jaya Bachchan. Thank you very much. Sri Ramchandar Jangra. धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया.
अधिकतर विषयों पर बात हो चुकी है। मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद इस बात पर भी करता हूं कि उन्होंने अपना संबोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया। पूजनीय गुरु गोलवलकर जी ने एक जगह लिखा है कि अगर किसी राष्ट्र को समाप्त करना हो तो उससे उसकी भाषा छीन लो। अगर वो भाषा से कट जाएगा तो अपने साहित्य से कट जाएगा, साहित्य से कट जाएगा तो अपनी संस्कृति से कट जाएगा, और भाषा, साहित्य और संस्कृति से कट जाएगा तो अपनी राष्ट्रीयता से ही कट जाएगा। और जिस देश की राष्ट्रीयता नहीं रहेगी वो राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम मातृभाषाओं का आदर करते हुए, जितनी भी हमारी मातृभाषा है देश की, उनका आदर करते हुए राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना भाषण, अपना उद्बोधन हिंदी भाषा के अंदर दिया है। मेरा विषय मेरी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मैं सोशल जस्टिस पर कुछ अपनी बात करूं। मान्यवर, आदमी केवल रोटी के ऊपर जिंदा नहीं रहता है, आदमी के पास एक मन भी होता है। और इसी को दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है चिति, जिसको चित्त कहते हैं। आदमी भूख को कठोरता से बर्दाश्त कर सकता है, शारीरिक चोट को भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मन के ऊपर जो चोट लगती है, उसकी आस्था के ऊपर जो चोट लगती है, उससे आदमी तिलमिला जाता है। और उस अपनी आस्था और स्वाभिमान की रक्षा के लिए आदमी कोई भी बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। माननीय लक्ष्मण जी ने अपने पहले संबोधन में वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा की थी। तो नाबालिग साहिबजादों ने किस तरह से अपनी आस्था को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, ये इतिहास के अंदर पन्नों के ऊपर दर्ज है। मैं एक और वीर बालक की चर्चा करना चाहूंगा। वीर हकीकत राय का जिक्र आता है इतिहास के अंदर। जब उनको कहा गया कि हकीकत नाम है तेरा, तू समझता नहीं हकीकत को, तू उल्टा जा रहा है छोड़कर राह तरीकत को, कुफर को छोड़ दे पाक कर ले नियत को, गुनाह धुल जाएंगे ले मान अकाम शरीयत को। यहाँ और आकबत दोनों जहां में सुरखरू होगा, नहीं तो ये देख ले तलवार होगी और तू होगा। 12 साल के हकीकत राय ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास है आत्मिक शक्ति, तुम्हारे पास खंजर है, मेरे पास है ओम की भक्ति। ये वो दिल है जिसमें ज्योत परमेश्वर की है जगती, करो तुम लाख कोशिश जो कभी पत्थर को नहीं लगती। तुम में इतनी तो हिम्मत है, मेरा सर तुम उड़वा दो, लेकिन बहादुर तब जानो जब मेरा धर्म तुम छुड़वा दो। मान्यवर, आस्था के ऊपर जब चोट लगती है, यह सबसे बड़ी चोट इंसान के ऊपर होती है। और करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर मरहम जो लगाने का काम किया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर की नींव रख के किया, केदारनाथ के जीर्णोद्वार करके किया, काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्वार करके किया। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आदमी के पास एक मन भी होता है, केवल मात्र रोटी के ऊपर आदमी निर्भर नहीं होता है। और हम ये तो सुनते हैं ताजमहल किसने बनवाया, हम ये सुनते हैं लाल किला किसने बनवाया, लेकिन ये कभी नहीं सुनते कि ये बनाया किसने। और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने राम मंदिर की नींव रखी, तो उसके शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा को सामने बिठा के उससे भूमि पूजन करवाया। ये पहली बार शिल्पकारों को सम्मान दिया गया है, वरना कोई चर्चा नहीं होती। ये बनाया किसने, बनवाया किसने, ये चर्चा होती है। मैं मान्यवर सामाजिक न्याय की बात कर रहा था। सामाजिक न्याय केवल रोटी से या घर से भी पूरा नहीं होता है, वस्त्र से पूरा नहीं होता। मैं चर्चा कर रहा था, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर अंडमान निकोबार द्वीपों का परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर नामकरण किया गया। यह भी एक सामाजिक सम्मान है।
ये सैनिकों का भी सम्मान है, समाजों का भी सम्मान है। इसलिए सामाजिक सम्मान केवल मात्र रोटी तक निर्भर नहीं होता है। मान्यवर, मैं अभी चर्चा कर रहा था राम मंदिर जी की। माननीय राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा कि केवल मात्र मंदिर निर्माण नहीं करवाए। हमारी सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने उद्बोधन में कहा कि मेरी सरकार ने मंदिर के साथ साथ मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण करवाया और नए बजट के अंदर 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नर्सेज कॉलेज का भी प्रावधान किया गया, क्योंकि नर्स नहीं होंगी तो मेडिकल के अंदर हमारी फिर देखभाल कौन करेगा। भारत की यह संस्कृति है। भारत की संस्कृति में देवताओं का स्वरूप बहुत बड़ा है और विदुर नीति को अगर हम पढ़ेंगे तो धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। विदुर जी ने लिखा है महाभारत के अंदर कि धर्म की परिभाषा बहुत विस्तृत है। वृक्षों की हरियाली की रक्षा करना भी एक धर्म है, पानी को शुद्ध रखना भी एक धर्म है, वायु की गुणवत्ता रखना भी एक धर्म है, माँ बाप की सेवा करना भी धर्म है और एक अबला की इज्जत की रक्षा करना भी धर्म है। अपने राष्ट्र के ऊपर बलिदान हो जाना भी एक बहुत बड़ा धर्म है। धर्म की परिभाषा पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वायु को भी देवता की संज्ञा दी गई है, अग्नि को भी देवता की संज्ञा दी गई है, जल को भी देवता की संज्ञा दी गई है और जिसने भी मानवता के लिए जो भी उपकार का काम किया है उनको देवता की संज्ञा दी गई है। और पहली बार भारत के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करोड़ों दलितों के उद्धारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देवता की संज्ञा देते हुए उनके 5 कर्मस्थलों को तीर्थ के अंदर पंच तीर्थ घोषित किया। ये इतिहास के अंदर पहली बार इतना बड़ा सम्मान उस करोड़ों दलितों के उद्धार करने वाले देवता को दिया गया है। ये मैं सामाजिक न्याय की मैं बात कर रहा था। यहाँ तो मत्स्य तक को भी अवतार माना है, यहाँ तो वराह को भी अवतार माना है। इसलिए मान्यवर, अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी। मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ। मैंने वो दिन देखे, अंधेरा होने से पहले महिलाएं शौच आदि के लिए नहीं जा सकती और जाती खुले के अंदर बैठती, कोई आदमी दिखाई देता, अरे भाई कोई आदमी आ गया, उठ लो, खड़ी हो गई, फिर बैठ गई, फिर कोई आदमी आ गया, भाई कोई आदमी आ रहा है, उठ लो। कितना जिल्लत का जीवन हमारी माँ बहनें जिंदगी जीती थी, किसी ने कोई इस बात के ऊपर परवाह की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 9.5 का 11 करोड़ 7,70 लाख परिवारों को शौचालय देके भारत की महिलाओं को इस जिल्लत की जिंदगी से मुक्ति दिलवाई और उनको इज्जत और सम्मान का जीवन देने का काम किया। ये सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। अभी चर्चा हो रही थी गैस कनेक्शनों की। 9 करोड़ 60 लाख गैस कनेक्शन जो धुएं के अंदर फूंक मार मार के हमारी माताएं आज समय से पहले अंधी हो जाया करती थी, उनको मुहैया करवाए। और केवल मात्र इतना ही नहीं, अभी वो चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर साहब चले गए कहीं, मातृत्व की बात। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। मैं मान्यवर एक बात कहना चाहता हूं कि लंबे समय तक हिंदुस्तान के दलितों को, पिछड़ों को एक सब्सिडी के जीवन के ऊपर आधारित करके अपने वोट बैंक के रूप में परिवर्तन करने की कोशिश की गई कि मैं समय आएगा तुम्हें कन्यादान की राशि दे देंगे, तुम्हारे स्कूल को बच्चों को स्कूल में बस्ता दे देंगे, तुम्हें 3 रुपये किलो चावल दे देंगे, तुम्हें 2 रुपये किलो आटा दे देंगे, 12 रुपये किलो दाल दे देंगे, 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सब्सिडी सहारा है, सब्सिडी समाधान नहीं है। मैं लंगड़े को लाठी के सहारे नहीं चलाना चाहता, मैं लंगड़े को टांग लगाना चाहता हूं ताकि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाए। इसलिए इस मौजूदा बजट के अंदर जो प्रावधान किए गए दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उठाने के लिए, वो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे जो प्रावधान किए गए वो पहली बार किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो आदमी को प्यारा होता है वो अपना घर होता है। मान्यवर, आदमी घर की बड़ी चाहत होती है। पहली बार 7 वर्षों के अंदर 2 करोड़ 79 लाख घरों का निर्माण किया गया और 2023-24 के अंदर
66% बजट में बढ़ोतरी करके 79,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार इस बार ये बजट के अंदर प्रावधान किया गया। इसलिए मान्यवर, मेरे जिम्मे था तो केवल मात्र सामाजिक न्याय के ऊपर बात करने की, लेकिन मैं शिल्पकार समाज से ताल्लुकात रखता हूं, मैं विश्वकर्मा समाज से ताल्लुकात रखता हूं, इसलिए मैं वो अपनी बात कहना चाहता हूं। कंक्लूड भारत के अंदर क्या रहा? आपका समय खत्म हो रहा है, आप कंक्लूड करें। मैं 1 मिनट में बस अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। आज तक विश्वकर्मा परिवार के जितने भी वंशज हैं, उन वंशजों के हाथ को काम देने के लिए क्या किया गया? कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए योजना नहीं चलाई गई, कोई नए हुनर उनके अंदर विकसित करने की योजना नहीं चलाई गई, कोई उनको विदाउट कोलेटरल गारंटी के ऋण देने की योजना नहीं चलाई गई, कोई उनके उत्पादों को एमएसएमई के साथ जोड़ के, उस चेन के साथ जोड़ के उनकी बिक्री की व्यवस्था नहीं करवाई गई। पहली बार भारत सरकार के बजट में देश के करोड़ों विश्वकर्मा वंशजों को, देश के शिल्पकारों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय निर्मला सीतारमण जी का इसके लिए धन्यवाद करता हूं और हम सदैव इस बात के लिए भारी रहेंगे। आपने जो मुझे समय दिया, बहुत